सूरज जी Namaskar. Friends, very good morning to all of you. I am Mr. here from the University Department of Legal Science. And on behalf of the department, I welcome you all to this international conference. Senior scholars, guests, distinguished guests of honor, dignitaries, eminent scholars from abroad, more than 70 scholars are here on the panel. And local scholars of great repute, our respected friends from media, dear students, heads of departments, deans of different faculties, I welcome you all. Friends, we assemble here to celebrate and pay our homage, our tribute to the great and luminary freedom fighter, the great revolutionary, Lok Nayak Jayaprakash Narak. This great revolutionary of modern India fought against the British Empire and the Quit India movement, and most of the leaders of the front line, they were put behind the bars, and there was none to lead the movement. In those days, he took the responsibility and led the movement. Went to the jail and they scaled down the great walls of the jail. That is more than 51 feet. Our distinguished guest, the Honorable Vice Chancellor, so have a big hand. Professor Sanjeev Sharma sir is here with us. He is from Mahatma Gandhi Central University, Motihari, and I'm really thankful to him. Respected head of the department, political science, is requested to welcome him to the dais. Please, sir. So everything is on time. Let me welcome the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, Professor Sanjeev Sharma sir. The distinguished guest. This is the mutual respect. The president of the session is also coming to the dais. Give him a big hand. Guests of honor, Professor G. Gopal Reddy sir, Pro Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, is here with us. Professor Kavish Rajha sir, the big name, the Vice Chairman, Sir Professor M.S. Verma, retired professor, distinguished scholar of the University Department of Political Science. Professor R.K. Verma sir, the Secretary, IIPA, Indian Institute of Public Administration, Bihar, Patna.
This is the mutual respect among their scholars, and we must learn it. You start. Oh, Keshav, Siddharth. Very good. Sir, now this, it is scholars of our society. I had the opportunity and I have been promoted to this place. It's simply because of Professor Sanjeev Sharma sir. I got the blessings and I have been promoted to this place. And I'm really indebted to him. I'm very grateful to him. From the inner core of my heart, I express my gratitude to the great scholar and the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, Motihari. So in the case with Professor G. Gopala Reddy, I was there in Indian Political Science Association and he was in the chair. So I enjoyed his scholarship and it was really there to enlighten me and I'm really indebted to him. Our president of the station needs no introduction. He is Professor Prabhakar Pathak. You know, we are proud of him. Now, I don't know who is first, who is second. I'm not going to deal with the sequence because all of them are the recent figures and we are really grateful to them. Professor Kameshwar Chhasta, he is the Vice Chairman of Rashtriya Uttara Shiksha Abhiyan, Bihar, Patna. I would request Professor Pathak sir to felicitate the Honorable Vice Chancellor of Mahatma Gandhi Central University, Professor Sanjeev Kumar Sharma sir. So our president of the station, the great scholar, भैया मोबाइल वाले कैमरा लगा क्या फायदा होगा साइड हो जाइए ना पूरा साइड हो जाइए Spark, Chalar, Momentum, Bouquet, now the organizing secretary Munishwar Yadav is there to welcome the Vice Chancellor sir. So Munishwar Yadav is requested to go there. Professor Jayakumar Jha is requested to come to the dais and welcome
our guest, the distinguished guest, Professor Kameshwar Jha sir. Professor Jai Kumar Jha. Dr. M.P. Burma is in the queue. He should also come to the dais. And welcome Professor M.S. Burma, the eminent historian of political science, retired professor, University Department of Political Science. Professor Alok Kumar Tiwari. He is deputed in the PC Department of Political Science. Now, Professor Mukul Bihari Burma sir. Our students know it very well that Professor M.P. Burma is always in a contemplative mood. He is always thinking, right? See. I'm MS Verma, I'm not in Verma. That's a little Burma. Yes. It's a Burma is quiet, sir. Thank you, sir. Now, Professor Alok Kumar Tiwari, sir. Please come to the dais. He is deputed in the University Department of Political Science. He has been there in the Air Force. Now he is serving in the department. He is Professor Alok Kumar Tiwari. So he is going to welcome Professor R.K. Burma, sir. Secretary, Indian Institute of Public Administration. Yeah, Patna. Thank you, sir, for your kind cooperation. For the lighting of the land, I will Adhyaksh, sir. I'm extremely sorry. The president of the organizing committee is to felicitate the president of this session, Professor Prabhakar Pathak, sir. Thank you, sir. Now the next step, that is lighting the lamp. So all the dignitaries on the dais are requested to kindle the light.
Sir? No. Now for the garlanding. The statue of Lord Prakash Narayan. Thank you, sir. Now, our students is going to have the university could be, and at this moment there will be no clapping. All the students, teachers, they will stand up there, and Kuldeep will be there. There will be no clap. Please.
Thank you. I'm really thankful to the University Head, Department of Music and Dramatics, and her students. Thank you. जुबली हॉल के The 5 state बजे तक अपना के बात is होला important. And the president of the organizing committee, Professor Jitendra Narayan sir, is there to welcome the dignitaries, the media persons, senior scholars, deans, and professors, dear students, media person, the great orator, excellent scholar, Professor Jitendra Narayan sir. हेलो सम्मेलन पहले अति विशिष्ट अति सम्मानित मंच को यहीं से मैं एक साथ सम्मिलित प्रणाम करता हूँ और सभा में जो उपस्थित हैं वो भी अति विशिष्ट हैं। अच्छे के रूप में मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे गुरु जी भी थे लोग प्रोफेसर हमने कहा कि सर बताएंगे जो लोग आए हैं उनको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज बड़ी विकट परिस्थिति है। दुर्गा पूजा नवरात्रि चल रहा है, जो लोग आए हैं उन लोगों की व्यक्तिगत कृपा भी है और जो कार्यक्रम हो रहा है उनके उनका प्रेम भी है जो यहाँ पर आया। दूसरी बात है कि विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित कर दी थी। जब मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों ने अफसोस व्यक्त किया कि हमको मालूम नहीं था, नहीं तो हम होते। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, इसमें आप सब लोग आए हैं। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस परिस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसका थोड़ा सा मैंने आपको एक वर्णन किया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि विभाग विश्वविद्यालय का ये कार्यक्रम है वैसे, क्योंकि विश्वविद्यालय के कैलेंडर के हिसाब से मिथिला विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग को जयंती कुछ मनाने का दायित्व दिया गया था, जिसमें मैंने गांधी जयंती ही मनाई, उसमें भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विभाग ने किया। उसके बाद बाबू जगजीवन राम की जयंती माननीय विभाग की जयंती, वो भी काम हम लोगों ने किया। और उसके बाद अम्बेडकर जयंती भी विभाग ने मनाई। तो विभाग विश्वविद्यालय का आदेश माननीय कुलपति बैठे हुए हैं हमारे मित्र गौरवपूर्ण वाइस चांसलर
जो आदेश होता है विभाग के लिए होता है, लेकिन विभाग को इतनी छूट होती है कि वो क्या करे। उसी के तहत मैंने सोचा कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनको भी, और यूनिवर्सिटी का फलक कॉलेज से बड़ा होता है। मैं संकेत में बात कर रहा हूँ, बहुत बात नहीं कर सकता, इसलिए उस फॉर्मेट में मैं विश्वास नहीं करता जो बनाया करके भेजा जाता है। हमारे माननीय डीन भी बैठे हुए, तो मेरा मानना है कि रिसर्च का विभाग से कुछ फलक बड़ा हो, तो उसके लिए ये मैंने जहमत झेली कि नहीं, ये कार्यक्रम किया जाना चाहिए। इसके बिना पर तो मैंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। आदरणीय मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों, मैं दूसरी बात करता हूँ कि जो आप लोग देख रहे हैं, जो डिस्प्ले में लगा हुआ है, जो दिखता है उससे बहुत ज्यादा है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा, हमारे जो लोग बैठे हुए ये विशिष्ट इसलिए है कि मेरे गुरुओं से सजा हुआ मनुष्य है। दूसरा, माननीय कुलपति, प्रति कुलपति के पद को सुशोभित करने वाले ऐसे लोग हैं जो कि विशिष्ट हैं, उनके वजह से वो पद विशिष्ट हो सकता है। उनकी विशिष्टता क्या है, मैं आपसे निवेदन करूं। तो इसलिए मैं एक बार पुनः श्रद्धा से सब मैं झुका रहा हूं। आप लोगों में बैठे हुए हैं पत्रकार, हमारे विज्ञान जी भी हैं, अभी सीनियर IAS विवेकानंद झा जी बैठे हुए हैं, सोशल साइंसेज भी बैठे हुए हैं। इस नाते हमारे जो मित्र लोग हैं, पुष्पम नारायण जी विभाग अध्यक्ष हैं, भाई चांसलर महोदय से बात हुई थी, माननीय कुलपति महोदय का रेड्डी साहब कह रहे थे कि जितेंद्र जी वो नहीं आएंगे, मुझको भरोसा था कि वो आएंगे। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बात है, मित्र है ये लोग, उनको मालूम होता है, तो वो भी निश्चिंत है कि दोनों मित्र जा रहे हैं और कुछ ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं आए। लेकिन कौशलानंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो लिख भी दे दिया गया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि वो नहीं रहे यहाँ पर अभी कार्यक्रम। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हूँ, ये मान करके आप कार्यक्रम करें, तो ये परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में आप लोग सब लोग आए हैं, तो सब लोग के प्रति मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो जिनके संचालन में हम काम कर रहे हैं, जिनेश्वर जी, उन्होंने हमको 5 मिनट का समय दिया था, और कुलपति जी नहीं है, इसलिए 5 मिनट का और हमको अतिरिक्त समय मुकर्रर है, इसलिए 2-4 बात मैं करना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उनके बारे में कहा जाए, और आप लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो लगता है कि 1-1.5 घंटा समय चला। तो मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी, दर्शन का विद्यार्थी, मैं संक्षेप में आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जो परम सम्मानित कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं, जब कुलपति की उसमें नियुक्ति हुई तो मैंने कहा कि आपको कुलपति को बनाया जरूर गया है, लेकिन आपको वहाँ निर्माण करने के लिए भेजा गया। यहाँ कुछ नहीं डाल दीजिए। तो प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा एक ऐसा नाम है कि उसको रेखांकित चरितार्थ करके ही छोड़े। हमारे गुरु लोग भी जानते हैं, सब लोग ऐसे हैं जिनसे मैं खुल के कुछ बात मन की आज कर सकता हूँ, क्योंकि कोई यहाँ तक जेपी का सवाल सब लोग जानते हैं, विद्वान लोग बैठे वो कहेंगे। जेपी पर मैंने जो काम किया, जेपीएस ऑपरेटर्स सेटिस्फाइड, उसी से टाइटल दिया, हमारे डिपार्टमेंट ने उसको अप्रूव किया। उस पर मैं नहीं कहूँगा, इसके उस पर जो मेरे गुरु लोग यहाँ बैठे हुए हो, जहाँ प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा बैठे हुए हो, हमको कुछ कहना नहीं, अध्यक्ष के रूप में जो बैठे हुए कुछ कहना नहीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिफंक्ट हो गया। हम और डॉक्टर कामेश्वर हमारे जो हम लोग साथ में सर और हम लोग साथ में बने थे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो डिफंक्ट हो। हम लोग बहुत हताश निराश होकर के इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जाया करते थे। अचानक एक दिन डिपार्टमेंट में चिट्ठी पड़ी हुई थी, हमारा कोई परिचय नहीं, वही पहला मेरा परिचय हुआ। हम लोग मेरठ गए, मुर्दा संगठन को जिंदा करना, मुर्दा भी ऐसा छत कर दिया गया था कि उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। आपके वर्मा साहब जिसको कहते हैं, मेरा रोमांच इसलिए हो गया कि हमारा संबंध वहां से, उस जिंदा करने में जो होता है, कुल बन रहा था, तो गिलहरी प्रयास मेरा भी था, इसलिए लोग समझते हैं। और वो केवल कुलपति, एक बार ऐसा हुआ कि कुलपति का जो होता है वो समाप्त होने लगा था, तो मैंने कहा कि तो किसी ने कहा कि उनका तो समाप्त कराना है, तो हमको प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा ही चाहिए। वो कुलपति के पद पर है कि यूजीसी के मेंबर के पद पर है कि कहाँ है, उससे मतलब। दूसरी बात है कि उन्होंने केवल उसको जिंदा नहीं किया, राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उसको बेहतर समझते हैं, गुरु लोगों से तीनों बैठे हुए हैं, राजनीति विज्ञान के धुरंधर विद्वान हैं, दुनिया जानती है उनको, उनके बनाए हुए चीजें लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा के बारे में इससे ज्यादा कुछ कहने का सामर्थ्य हमको नहीं है। आप देख लेंगे उन्होंने कितना काम किया है। अनवरत एक सोशल साइंस का अगर कोई पत्रिका है, रिसर्च
ऐसे माननीय कुलपति का स्वागत करने का गौरव है हमको। और बगल में जो बैठे हुए हैं बड़े शालीन व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर जी रमा रेड्डी, गोपाल रेड्डी, ये प्रो वाइस चांसलर के पद को सुशोभित कर रहे हैं मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से। आप यूजीसी के मेंबर भी रहे हुए हैं, उससे भी बड़ी शालीनता इनकी ये है कि गंभीर से गंभीर कोई संगठन में बात हो, कोई लिखने पढ़ने की बात हो तो कुछ नहीं साहब दे दीजिए। तो और अलग से सर हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमने तो संजीव शर्मा जी प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब से निवेदन किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई एक मांगे थे हम दो आए, तो आप ऐसे दो इस विभाग के प्रति मेरे प्रति जो स्नेह है, मेरा जो संबंध रहा है सर, उसके लिए हम अलग से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं सर। क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं। हम क्या कहें, इंटर से लेकर के एमए तक हमको इस रूप में बनाने में प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, प्रोफेसर एमएस वर्मा का क्या योगदान हम कह नहीं सकते हैं। ये उनकी मार्गदर्शन में प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर झा जी, अभी कुछ लिखना पढ़ना होता है तो प्रोफेसर एमएस वर्मा के पास जाते हैं, सर जरा देख लीजिए गलती है, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे प्रेरणा के भी स्रोत, हम तो राजनीति शास्त्र के छात्र के रूप में थोड़ी बहुत जो पहचान है उसमें आप लोगों की जो भूमिका है वो मेरा रुआ भी खत्म करने में मेरा समाप्त नहीं होगा। पद पर हैं डॉक्टर कामेश्वर झा जी, सारे पदों को सुशोभित किया। अभी दूसरा बहुत बड़ा कोई संस्थान है, आप उसके संस्थापक उपाध्यक्ष भी रहे हैं, आज भी हैं। और पारिवारिक संबंध है, दोनों मेरे आचार्य, गुरुकुल की जो परंपरा होती है, कोई बात है घर की बात है उसको कर लेना, कोई चिंता हमारी है तबीयत खराब हो जाए उसके बारे में कर लेना। और बगल में राजनीति विज्ञान के बड़े निष्णात विद्वान हैं, सब लोग जानते हैं, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली का पूरे देश में ब्रांच है, बिहार ब्रांच को पूरे हिंदुस्तान में सेकंड पोजीशन पर प्रतिष्ठित करने जैसा व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में आज हमारे अतिथि के रूप में है प्रोफेसर आर। मैंने कहा कि ये विशिष्ट मंच है, आप समझ गए होंगे, इन लोगों का मैंने परिचय किया। और अंत में अध्यक्ष हमारे मित्र कहे, मैंने कहा कि अध्यक्ष सबसे बाद में हाउस में प्रवेश करता है, इसलिए मैंने सोचा था, लेकिन उनका भी सही है, पीठ वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि पीठ के बिना तो चल नहीं सकते, हमने ठीक किया। हम डॉक्टर प्रभाकर पाठक के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं सिवाय इसके कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा रिश्ता नाता है, वो व्यक्तिगत रूप ही। लेकिन अभी जो आप सुन रहे थे हमारा कुलगीत, उस कुलगीत के रचयिता अभी हमारे माननीय कुलपति मणिकांत भाई बैठे हुए हैं, ये गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, करेस्पॉन्डेंट हैं। हम लोगों की बात होती इतना मधुर और पूरे चरित्र को रेखांकित करने वाला गीत उसके रचयिता। पहली बार हमारे जो सम्मानित प्रोफेसर एसपी सिंह जी, उनको मैंने धीरे से कहा है सर के बारे में, सर पीछे बैठे हुए कि आप प्रोफेसर प्रभाकर पाठक सर ने लिखा है। उसके बाद जो उनकी भी जो अपनी दृष्टि है, सूक्ष्म जो दृष्टि है, उनके काम करने की जो दृष्टि है और बड़ों के आदर करने की, कुलपति नहीं है पसंद बैठे हुए हैं, सब लोग टीम बैठे हुए हैं। ठाकुर शादी तो मैं नहीं करता, लेकिन जो चरित्र में है वो मैं करता हूँ, और कहने से मुझको कोई गुरेज नहीं। कोई भी विषय हो, जब तक उसमें अपनी दृष्टि उनकी नहीं होगी तब तक भी बोलते हैं, वो नहीं उसका अभाव हमको जरूर फल रहा है। तो प्रभाकर पाठक सर के बारे में हम क्या कहते हैं, हमारे कुलपति हैं, वो किस तरह से नतमस्तक होकर के उनका इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोगों ने देखा। हम क्या कहना है, कोई सुख हो कोई दुख हो, जैसा मैंने कहा कि विषय के जो हमारे आचार्य लोग को बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंदी का तो मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन हमारे गुरु ने कैसे, तुम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, गुरु ने खुद फेसबुक पर लिख दिया तो क्या है, ऐसा शायद फेसबुक निकले होता होगा, शायद हमने आज तक नहीं देखा किसी ने, गुरु ने अपने फेसबुक पर अपने शिष्य के बारे में फोटो डालकर साथ में जो लिखा है वो असंभव है, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वो कहते हैं कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। मैं कहता हूँ कि जो दिखता है उससे बहुत कुछ ज्यादा ही है। और इस मंच का इस्तेमाल मैं करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। समय 10 मिनट का दिया था, 9 मिनट हो रहा है, तो मैं केवल इतना कह सकता हूँ, इस सभा में जो बैठे हुए हैं जिनका मैंने नाम लिया, ध्रुव जी मेरे मित्र हैं, मैंने कहा कुछ हमारे जो मित्र हैं उनको मैंने कहा कि भाई और जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, तो आपका इनॉग्रल सेशन है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें हम सबका स्वागत करना चाहेंगे जो इस इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल 114 माननीय कुलपति मित्र महोदय ये 114 पार्टिसिपेंट हमारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन था। उसमें जो स्वीकृति मिली थी 18 व्यक्तियों को अपने कुलपति सहित, वो कुछ नाम को कुछ लोगों को आप देख रहे हैं उसमें आज अभी एक नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुलपति का दायित्व ऐसा होता है जो वो लोग समझते हैं, उस मर्द को और दर्द को भी समझते हैं। तो उसमें हमारे कंटक के माननीय कुलपति जो श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, वो आज गवर्नर हाउस में उनका कुछ ऐसा उनकी व्यवस्था है जैसे अपनी कुलपति के लिए कुछ होगी, तो वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान उनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। बहुत सारे लोग उनकी किताबों को पढ़ करके हम लोग का जो कॉन्फ्रेंस सेमिनार होता है उसके सारे दायित्वों के निर्वहन करने में भाई संजीव कुमार शर्मा कुलपति नहीं भी थे, तो अगर किसी को कुछ कर दिया तो उसमें ऐसे व्यक्ति कुलपति हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सांची विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर मिर्जा ए गुप्ता हैं, हमारे बड़े भाई मित्र मुस्कुरा रहे हैं। ये सब लोग एक ही स्कूल के निकले हुए हैं, इसलिए सब लोग इतने दक्ष हैं कि उनको वहाँ जो दायित्व है गुजरात में आप देखते हैं आप प्रवासियों का जो सम्मेलन का जो आज जो स्थिति आप देख रहे हैं परिवर्तन, ये परिवर्तन करने वाले लोग, ये सामान्य कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं है। इसमें कितने लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया, कितने लोगों ने सहमति दी, अपने आप में सच मान ले तो एक वाक्य में कहें तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है वैसी हमारी है। एक बड़ा दूसरा नाम है, सब लोग राजनीतिक विज्ञान में सब लोग परिचित है, सोशल साइंस में जिसकी रिसर्च में बहुत सीरियस रुचि है उसमें प्रोफेसर ए.के. वर्मा। जब मैं लिखना प्रारंभ किया था उस समय ये एडिटर हुआ करते थे हिंदी जर्नल ऑफ क्रिटिकल साइंस, अभी सीएसएसपी के डायरेक्टर हैं। और प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सेट ला रहे हैं क्योंकि ये लोग इन लोगों की जो अपनी समझ रहे हैं जो कैसे इस प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाए हैं, रिसर्च का जो भी काम है उसमें बहुत ही सीनियर रिसर्चर ऐसे हैं कि उनके रिसर्च रिव्यू के आधार पर उनको विदेश बुलाने में गौरव महसूस करता है। ऐसे लोग, ऐसे मित्र हैं संयोग से मेरे पॉलिटिकल साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की वजह से मद्रास से उनके साथ मेरा नाता रिश्ता है, इसलिए उन्होंने स्वीकृति, उनके पास समय कम होता है जैसे कुलपति के पास समय नहीं होता है। जितने लोग हैं सब लोग ऐसे हैं, आज का दिन है, ऐसे भी बहुत व्यस्त लोग हैं। उसके अलावा प्रोफेसर आर नारायण राय, आप डायरेक्टर हैं सोशल साइंस न्यू दिल्ली में, वो प्रोफेसर एस वर्मा के हमको लगता है कि हम लोग एक दो बार बात में उनके सर में लिख करके पढ़ करके बुक करके लिखा करके जिसको कहता है आज वो बड़ा नाम है सोशल साइंस के फील्ड में। आज नारायण राय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर उनका जितना योगदान है शायद कम लोगों का उतना योगदान होगा। उसके बाद प्रोफेसर सरोज वर्मा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पढ़ने लिखने में अभी भी सत्य का किताब लिखना और भेजना ऐसे दिन वगैरह सारे दायित्व ले रहे हैं। विदेश के भी कुछ मित्रों ने समय दिया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक बड़ा नाम है प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा सरकार, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्रोफेसर हैं ब्रिटिश अमेरिकन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा यूएसए में। बड़ी कृपा पूर्वक इतने सरल लोग हैं अध्यक्ष जी, हृदय में क्या कहूं, विनम्रता की पराकाष्ठा अगर विद्वान होता है तो उसमें से एक नाम है मनोज कुमार मिश्रा का। मेरा डायरेक्ट परिचय नहीं था, प्रोफेसर आर.के. वर्मा की वजह से मेरा संपर्क हो पाया। उसी तरह से वागली नेगरी साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट है इथियोपियन सिविल सर्विस यूनिवर्सिटी में, जहां जैसे अपने यहाँ आईएएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है उस संस्थान के हैं। बड़े भद्र लोग हैं, बड़े, उनको ऐसा है कि सर भेज दीजिए बस हम इसमें आएंगे, तो ऐसी कृपा उन्होंने की है। और चूंकि जयप्रकाश नारायण जी का संबंध नेपाल से और नेपाल का संबंध हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी की जो शुरुआत हुई का पूरा एक्सपेरिमेंट है, जैसे गांधी ने, मेरा एक वाक्य में कहें तो गांधी ने जिस तरह से खुद के साथ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट को खुद लिखा, तो जेपी ने केवल एक्सपेरिमेंट किया इंडियन डेमोक्रेसी के साथ, जो डेमोक्रेसी इंडियन डेमोक्रेसी के साथ दुनिया के डेमोक्रेसी के लिए वो नजीर है, उस पर विद्वान लोगों को सुनेंगे, इतने विद्वानों को मैंने बुलाया है इसीलिए। तो इसी वजह से वहाँ रिटायर्ड प्रोफेसर है और एक्टिविस्ट भी हैं, तो उन्होंने कृपापूर्वक सहमति की है। प्रोफेसर देवेंद्र मिश्रा जी यूनिवर्सिटी के नेपाल के पर्पस था, मैंने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए लोगों की चयन किया, लोगों ने कृपापूर्वक उनको समय दिया, उसके प्रति आभार व्यक्त करने का समय। उसी तरह से कन्हैया जी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, यूनिवर्सिटी में है, टीचर एसोसिएशन में आप सेक्रेटरी भी हैं। एक नाम है मिहिर भोले साहब, मिहिर भोले जो है गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में प्रोफेसर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में है और संयोग से मित्र हैं, इसका विद्वान भी, उन्होंने इससे पहले भी शिरकत की है। और एक और नाम है, आप सब लोग जानते हैं, बिहार के सब लोग जानते हैं, हमारे माननीय कुलपति तो जानते ही हैं,
पॉलिटिकल साइंस का कोई भी ऐसा नाम देश में है जिसको नहीं जानते, प्रोफेसर एस एन सिंह साहब जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। ये नाम है जो लोग हमको आशीर्वाद स्वरूप समय उन्होंने दिया है। इसके अलावा कुछ अध्यक्ष महोदय गुरुदेव, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये इस जो डिस्प्ले हुआ सिद्धार्थ ने सारा काम किया, जितना बनाया, इतना आकर्षक बनाया कि कुछ लोगों ने उन लोगों ने आग्रह किया कि हमको लिंक दे, जो भी सामान्य नाम नहीं है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये आभार के समय में छूट जाता है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में लोगों के प्रति दायित्व है ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट का, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। एक काम है, वाइस चांसलर है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमृतेश विद्यार्थी, जानते हैं जो लोग हैं उनसे बेहतर कौन जानेगा। दूसरा नाम है सुदर्शन रामास्वामी का, ये प्रोफेसर है स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी सोनीपत। एक तीसरा और भी नाम है डॉक्टर पार्थ शाहकारी, फाउंडर प्रेसिडेंट है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी न्यू दिल्ली। उसके अलावा हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बड़े सम्मानित बुजुर्ग प्रोफेसर विष्णु चौधरी साहब, उन्होंने भी एससी केना साहब, इन लोगों ने भी कृपा पूर्वक जोड़ने के लिए मांगा। तो ये मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये इस कारण से ये संभव हो पाया, ये विशिष्टता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता अगर हमारे बच्चे, हमारे जो मित्र हैं वो अगर साथ नहीं देते, इस रूप में आयोजन नहीं कर पाते। धन्यवाद का तो वैसे दायित्व है, देंगे सब लोग, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि माननीय कुलपति ने एक और अच्छा काम किया हमारे लिए। जैसा कि कहा डिस्कशन में, अभी हम इसको बोलते हैं ना मालो माल होना, तो अभी हमारे यहाँ 6 टीचर का डिस्कशन हुआ जो अभी हैं रिसर्च के लिए आए हैं, वो अद्भुत हैं। सब लोगों ने बड़ा बड़ा जॉब छोड़ करके परित्याग करके टीचिंग में, ऐसे कम लोग आजकल आ रहे हैं टीचिंग को ऑप्ट करने के लिए। जॉब छोड़ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, एयरफोर्स का जॉब छोड़ दिया, सेक्रेटरीट का जॉब छोड़ दिया। ऐसे मित्रों से हमारा विभाग अभी गुंजायमान है। और प्रोफेसर यादव जी मुझे बिहारी वर्मा भी विभाग में है पदस्थापित, सब लोग जानते हैं, क्या कहें, कुछ कर ही नहीं पाएंगे इन लोगों के बिना। जय कुमार जी हैं, आलोक रंजन जी हैं सीएम कॉलेज में, रघुवीर रंजन जी हैं, शबनम जी हैं, नीतू जी हैं, ओम सिंह जी, दुर्भाग्यवश की बात उपस्थित नहीं। ये ऐसा नाम है जो कि जिसके कारण हम कुछ कर पा रहे हैं। हमारा एक बच्चा है सिद्धार्थ, हमने कहा कि कल तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे पास उपस्थिति का कोई हैंड नहीं। बच्चा है, रात दिन हमारे यहाँ दर्द हो गया, फिर भी वो रात दिन काम करने वाला बच्चा है। तो हम क्या कहेंगे, गणेश जी बैठे हुए हैं, पांडव है, पैसा दीजिए नहीं दीजिए, वाईफाई जितना है वो सब कर देता है। ये स्टूडेंट हमारे कुछ ऐसे हैं जिनको दुनिया किस रूप में देखती हो, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ करते हैं, डबल कहते हैं लोग, लेकिन बहुत ही शानदार बच्चे हमारे हैं जिनके दीपक हैं, संदीप है, सतान है, सनी है, केशव है, सुजीत है, तैयारा है, मेघा है, प्रिया है, कितने नाम हैं, हम क्या आपको बताएं। प्रेस में भी चंदन जी हैं, सारे प्रेस के मित्र, मणिकांत जी बहुत पूजा पाठ करने वाले, कुछ पत्रकार मित्र नहीं आए सीनियर को, उन लोगों ने हमसे कहा माफी मांगते हैं, ऐसा मत कीजिए। जैसे हिंदुस्तान में प्रोफेसर भी थे, दयानंद जी हैं, विष्णु जी हैं, ये तमाम लोग जो हैं, तो प्रीतम जी हैं, ये सब लोग जो है आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, कुछ लोगों ने लोगों को भेजा है। तो तमाम लोगों के प्रति का हम स्वागत करते हैं, स्वागत का मेरा दायित्व था। स्वागत के क्रम में मैंने इतनी बात इसलिए कही क्योंकि हमको कुछ समय मिल गया, तो भाग्य से ही मिला, लेकिन मिला हमारे माननीय कुलपति नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हूँ ये मानकर के करें, तो वो ये सब करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अगर नाम, हाँ विजय है, विजय को मैंने देखा, हमको एक्चुअली नाम याद नहीं रहता, इसलिए हिस्ट्री पढ़ते नहीं, फिर भी कुछ नाम छूट सकता है। विवेक है जो इसको काम को देख रहा है, संजय मीडिया के लिए, संजय नारायण होगा थोड़ा लेट आया, लेकिन हिस्ट्री पढ़ी तो कहा कि संजय तुम लेट आया हो। संजय है, जिन लोगों के भरोसे मैं काम करता हूँ, मैंने कहा कि इसमें से एक आध खाक अगर घट जाएगा तो भाई संजीव कुमार शर्मा जी माननीय कुलपति महोदय मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप इतने भाग्यशाली हैं, उसका थोड़ा सा भाग्य मिला है कि ऐसे गुरु, ऐसे मित्र बड़े दायित्व में है। 3-4 भाई सांसद और पॉलिटिकल साइंस के हैं, अन्नपूर्णा नौटियाल है, वो कहती भी है और इंटरनेशनल की विस्तार विद्वान है। जब कभी मैंने कहा तो प्रोफेसर राशि हरिदूत सिंह जी हैं, 2 बार भाई सांसद रहे हैं। तो हमने इस बार हमारे बच्चों की वजह से, रघुवीर जी हैं, आलोक जी हैं, इन लोगों के सिद्धार्थ है, जिसकी वजह से मैं इस बार प्रॉपर इन्विटेशन भेज सका, नहीं तो इस समय हो गया। हाँ तो इन्फॉर्म है, हाँ नितिन जी का नाम बोले हैं भाई, नाम
हाँ बिल्कुल नहीं सुने हैं, हाँ बोले हैं प्रोफेसर का नाम बोले हैं ना, नीतू जी बोले हैं। तो हम कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि ये समय हो गया है, मैं तो वो भी प्रोफेसर गोपी रमन सिंह जी का ही था, नाम नहीं कह रहे थे। बड़े भाई हैं, नाम में भी वही है, दूसरा कोई नहीं। सॉरी हाँ, नाम हम नहीं कह रहे थे। तो विवेकानंद जी बगल में बैठे हुए सीनियर आई से, मैंने कहा तो कहे आप नहीं बुलाते, बात ऐसे प्यार करने वाले लोगों की बदौलत में ये काम कर पा रहा हूँ, जो कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए सब लोगों के प्रति थोड़ा समय ज्यादा हो गया। हाँ ज्यादा हो गया। भगवान के जो होते हैं ना, सर्व हो गया। धन्यवाद सर। आपने सुना एक जबरदस्त प्रवाह और धारा प्रवाह। जब सर का प्रवाह होता है तो वो अवाध गति से चलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर। अब अध्यक्ष महोदय के अनुमति से विधिवत प्रारंभन की अनुमति चाहता हूं। जो हमारे लिस्ट में पहला स्पीकर और प्रथम स्पीकर के रूप में, वक्ता के रूप में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी सर हैं। मैंने कई बार सर को सुना। आप प्रो वाइस चांसलर हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी। सर से करबद्ध प्रार्थना है कि मंच तक आने की कृपा करेंगे और अपने उद्बोधन से हमारे बच्चों को लाभान्वित करने की कृपा करें। सर नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल साइंस, ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा, प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, प्रोफेसर MS वर्मा जी, प्रोफेसर RK वर्मा जी, प्रोफेसर प्रभाकर नायक जी पटक जी, कुलबिहार वर्मा जी, मुनीश्वर यादव जी, and Professor Sanjeev Kumar Sharma ji, Chief Guest of today's function, and Professor Surendra Pratap Singh, Honorable Vice Chancellor, LL Mithila University, Darbhanga. Namaskar to everyone. I am really happy to be present here on an important occasion on the eve of birthday of Lok Nayak क्रांतिवीर जयप्रकाश नारायण जन्म दिवस पर राजनीति विभाग के इस विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी जो यहाँ पर करा है, I am really happy and congratulate Professor Jitendra Narayan ji for organizing a seminar on the eve of Jayaprakash Narayan. My dear friends, Bihar is a place, it has its own historical place, the country. We go on recollecting the names, places, personalities belongs to this particular region. It's a very big length.
India to present day. The conference, the seminar is on democracy. If you go back to the ancient days, Lichavi, Vaishali, the oldest democratic institutions are existing in this particular area. This land belongs to Gautama Buddha, Chandragupta Maurya, Chanakya, Magadha Samraj, and many other things. You all know the establishment of Nalanda University in this particular region itself. Even after advent of independence also, though India was an independent country, democratic country, we formalized democracy through the constitution in this country after 1947. That formalization was done by none other than Dr. Rajendra Prasad, who belongs to this particular region. And another important personality, Sarvodaya leader Jayaprakash Narayan, who completely immersed, sacrificed for the liberation of this country, who was born on 11th of October 1902, educated in this country, and also left for higher education in America and elsewhere, and after educating himself abroad, coming back to India, did not settle for his own life. He was fighting for the cause of freedom for this country, great country. Fortunately, with the sacrifices of many leaders, lakhs and lakhs of leaders who have participated in this country, national movement, we got independence in the year 1947. And we have established our own governance system, and which was not to the likes of Sri Jayaprakash Narayan. We all know what Jayaprakash Narayan was expecting in this country after independence. He was a devotee of Marxism, but he never attracted by the Indian communism and also Russian communist philosophy. Youngsters, those who are in the particular age 16, 17, 20, 21, might have attracted towards the Marxism like Jayaprakash Narayan. But Jayaprakash Narayan, though he attracted towards the Marxism, he never liked the Indian communists and also Marxian philosophy, which is governing the Russia in those days. Friends, he was inspired by Balagangadhar Tilak, and he was associate of Acharya Kripalani, Sarvodaya movement, Mahatma Gandhi ji, and also other prominent personalities who are associated with the freedom struggle in those days. Friends, ultimately we got independence in this country. Jayaprakash Narayan, though he was offered many positions in independent India by Pandit Jawaharlal Nehru, did not accept. He was doing his Sarvodaya activities, and once again, early 70s, there was a compulsion to Jayaprakash Narayan to enter in active politics, not for the sake of power, to save the democracy in this country. That is how the Lok Sangharsh Samiti was formed, and Sampurna Kranti slogan, complete revolution, was the slogan given by Jayaprakash Narayan ji. And fortunately, as a student at graduate level, I was part of Lok Sangharsh Samiti movement. Friends, the Honorable Present Vice President of India, Sri M. Venkaiah Naidu ji, was the youth president for the Lok Sangharsh Samiti youth wing of the then Andhra Pradesh. We were all part of that movement. I have seen several times Jayaprakash Narayan ji visiting Hyderabad after emergency. I discuss about the emergency. And just think of the emergency, how it was imposed in those days, and what was the necessity. Just now I said Jayaprakash Narayan
ministerial birth after independence, and completely position is reverse direction. People are fighting for the chase. People are fighting for the power. But Jayaprakash Narayan never was the same. And that power ultimately, what it resulted, we all know. Jayaprakash Narayan ji, during the early 70s, led the movement, Sampurna Kranti movement. This Bihar itself against the then existing government, and also the Mrs. Indira Gandhi's oppressive rule in this country. That went on, Gujarat problem, Bihar and elsewhere. Ultimately, the imposition of emergency in this country, and Jayaprakash Narayan ji was arrested, and people say that he was even brought to Hyderabad jail for some time. That's how it happened. Ultimately, he was taken over. Where he was, there is no actual information. But ultimately, emergency went on for 19 months. Here we have to see the Jayaprakash Narayan role, which he initiated before the imposition of emergency, 1974 onwards, in Gandhi Maidan meeting at Patna, and that went on continuously. And Mrs. Indira Gandhi, to protect her chair, imposed emergency without discussing in the cabinet, that we all know as students of political science, and that went on for 19 months. And during this 19 months, what type of the oppressive activities, atrocities on people went on, we all know. See, Jayaprakash Narayan ji didn't like the communism because the oppressive, totalitarian rule in Russia. That is the reason he didn't accept the communism. And he was in favor of democracy, but not this type of democracy. Friends, ultimately, 19 months emergency lifted, and we all know many youngsters may not be knowing what happened in the 1977 elections. The Sampurna Kranti revolution, led by Jayaprakash Narayan, routed the then ruling party in 9 states without giving a single seat, sending a single MP to the parliament, including Bihar 54, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh 85, Madhya Pradesh 40, like that Delhi, Haryana, Gujarat, Rajasthan, all the 9 states were away from the Congress party, and new party emerged. And Jayaprakash Narayan, the contribution was big. In this country, we all know how the left and right are fighting, that is the then Jansan and leftist parties. And his biggest contribution to this country is to save the democracy, brought both of them. And ultimately, Janata experiment succeeded in the year 1977, after exactly 30 years of independence in this country. What happened to the Janata Party government, that is a different story. But he could awaken the people of this country toward the democratic setup of the great nation. He wanted to make democracy in this country a live democracy, a successful democracy, a communitarian democracy where people will actually participate, take part in the governance of this country. That is what it happened during the Jayaprakash Narayan. Friends, there are many things which Jayaprakash Narayan contributed for this country. And whatever democratic setup is there today, and that is because of the sacrifices made by the prominent personalities like Jayaprakash Narayan. Remember it, unfortunately in this country, my dear friends, especially in social sciences, literature and other things, we have forgotten our own philosophies, philosophers, literature, culture, and all other things. We are just searching what is happening elsewhere, Western countries, Europe, America, and all. And in this country, many were attracted towards the communism. The early days also, even after 47, many were attracted towards the communist philosophy. Why they were attracted, I do not know. But JP, when he realized around 1970, communist Russia established, and in the year 1954 onwards, by the time Russia put
successfully way forward, and because of suppressive rule and all other things, it could gain economically, and ultimately the economic power of Russia led its expansionist mindset and expansion internationalizing the company. Then it started the downfall. Otherwise, it would have continued. That is a different story. And they have oppressed so many years the people in this country. That is the reason 1989 what happened in Russia. So Jayaprakash Narayan felt that democracy is the only solution, but not this type of democracy, which is helping the individuals for their own personal glory and personal gain, and also the party's gain. That is what it is happening, which was not liked by Sri Jayaprakash Narayan. That is the reason he said we should have the communitarian democracy. Community should participate and actively participate in the democratic sector. People should feel that we are all part and parcel of democracy. We here and there say fruits of democracy not reach the grassroots level. That is what happened. That is the reason Jayaprakash Narayan was mentioning again and again, and that is how he was expecting that a communitarian democracy should be, communitarian democracy should develop in this country, so that the vast country like India, people feel we are all part and parcel of this democratic governance, and we are governing our own government. That is what Jayaprakash Narayan was feeling. My dear friends, and it is not too late. We as academicians have to realize to incorporate into the syllabi of university system the great personalities like Jayaprakash Narayan, Rajendra Prasad, Bal Gangadhar Tilak, Veer Savarkar, Mahatma Gandhi. Of course, Mahatma Gandhi already is there. Many more Indian intellectuals, Indian philosophers, their philosophies needs to be incorporated into the curriculum, so that the young mindset of this country knows and what is the greatest India. I am happy. I have been given permission to participate in this great seminar organized by Jiten Narayan. I congratulate Jiten Narayan for organizing an international seminar in honor of Jayaprakash Narayan. It was an important aspect, very dear subject for Jayaprakash Narayan. Thank you one and all for being here. Thank you very much, sir, for your excellent speech there. Friends, we are fortunate enough that Professor R.H. Shah, Dean of Social Sciences from BHU, is also connected with us. So we are really thankful to him. There are ills and evils of democracy, and respected sir has already underlined that yes, the ills and evils of democracy can be removed only by more and more democracy. And so Jayaprakash Narayan was there for more and more democratization of democracy itself. Now let me invite another eminent scholar, Professor Rameshwar Jha sir, the Vice Chairman, Rashtriya Uttar Shiksha Abhiyan, Bihar, Patna. Sir. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सर्वप्रथम मंचासीन महान विद्वानों के बीच होने का और भावी भारत के समाज वैज्ञानिकों, आदर्श नागरिकों के बीच होने का, मिथिला विश्वविद्यालय के नाम को रोशन करने वाले सितारों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनके वजह से
जिसमें जेपी आंदोलन में वे हमारे विभाग के सीएम कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट तक थिंक टैंक थे, विचारक मंडली में थे। जेपी की बहुत सी बातें, राइट टू रिकॉल, पीपुल्स पावर, टोटलिटेरियन रिवॉल्यूशन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल काउंसिल एट द ग्रास रूट लेवल, ये बातें जब समझ में नहीं आती थी तो हम उनसे पूछते थे, प्रोफेसर वर्मा से। ये हमारा सौभाग्य था कि प्रोफेसर वर्मा हमारे साथ काम भी करते थे और एक महाभट विद्वान जो जेपी पर, लोकनायक जयप्रकाश बाबू पर सामाजिक शास्त्र की दृष्टि से एक विवेचनात्मक दृष्टि रखते थे, उनके अधीन उन्होंने पीएचडी किया था डॉक्टर सच्चिदानंद के अंदर। तो वो उस दृष्टि को हम लोगों को बता देते। मुझे आज खुशी है, वैसे ही उन भट विद्वानों के बीच संजीव कुमार शर्मा जी, अभी जिन्हें आपने सुना, गोपाल रेड्डी जी, आर के वर्मा जी पटना में पौधा, उनसे मेरी मुलाकात होती है। गुड गवर्नेंस पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उनके लिखे आर्टिकल को हमने अपनी दो किताबों में उपयोग किया है। ये ह्यूमन राइट्स पर यूजीसी के प्रोजेक्ट के रूप में बहुत बड़ा एक सेमिनार ये जेके झा जी ने कुंवर सिंह कॉलेज में किया था, शायद दरभंगा का सबसे महत्वपूर्ण सेमिनार, वर्कशॉप नाम उन्होंने दिया था, कई दिनों का था। डॉक्टर अनिल कुमार झा जी ने सहयोग किया था उस समय, वे हेड भी थे पॉलिटिकल साइंस में, और उन्होंने संपन्न कराया था। वो मुझे अभी तक उसके मुकाबले में कोई वर्कशॉप पॉलिटिकल साइंस में नहीं मिला है अभी तक। और इंडिया रेडियो के मणिकांत जी को जहां मैं देख लेता हूं, मैं हृदय से गदगद होता हूं। उनकी उपस्थिति, उनके स्वर और वो आह्लादित होता हूं मैं। आपको, आपके बीच जब लोकपाल की कम से कम चर्चा थी, तो जेपी की चर्चा हमने, जेपी के फिलॉसफी की चर्चा, उनके डेमोक्रेटिक नॉर्म की चर्चा, करप्शन पर एक अभिभाषण देने की हिम्मत हमने लोकपाल के संदर्भ में कुंवर सिंह कॉलेज में किया था। डॉक्टर गोपी रमन जी के स्वार्थ से आज वे कुलपति नहीं है, तो विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में, कानूनन पदेन कुलपति के रूप में प्रो टेम्पोर कुलपति का वर्ड यूज होता है उसमें। प्रो टेम्पोर कुलपति के रूप में मेरी दृष्टि में यहां वो है। और यदि मेरे नाम में से थोड़ा सुधार करने आयोजक महोदय कामेश्वर झा ने जो चीज लगाया है, मुनेश्वर यादव जी ने, उसको यदि ठीक करने, तो सत्य है कि मैं रूसा तो एक समय में था, राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान 12 में बना, मैं 14 में भाग भी हुआ उसमें, लेकिन आज मैं रूसा का ही उपाध्यक्ष नहीं हूं। रूसा एक यूनिट है, एक इकाई है, हो गया है राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद। पूरे भारतवर्ष में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद हो गया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो रहा है, उसमें नैक का मॉनिटरिंग, प्रमोशन का मॉनिटरिंग, एप्ट इंस्टीट्यूट का रेटिंग भारत की सरकार ने
इसलिए अब मैं, क्योंकि मेरे लिए जो कोई यूज करते हैं नाम रूसा का उपाध्यक्ष, वे तो कोई गलती करते नहीं है, क्योंकि मैं 5 वर्ष वही था और सब जगह वही कार्ड भी हमने दिया था। उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है कि नया कार्ड हमने हायर एजुकेशन काउंसिल के रूप में इशू नहीं किया। वैसे अभी भी रूसा 3 शुरू हुआ है, वो एसएससी के अधीन ही शुरू हुआ है, इसलिए कोई अनर्गल कोई नहीं कर रहा है। अगर वही यूज होता है फिर भी हमने शुद्ध कर दिया। विषय पर कुछ अगर नहीं कहूंगा, ये विजय जिसके सौभाग्य से आज हमारे मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने पदार्पण किया और इस पुनीत मिट्टी को भाग्यवान बनाया है, वो विजय को अगर मैं निराश नहीं करना चाहता हूं, वर्मा जी को भी मैं निराश नहीं करूंगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरा एक भाई उस पद पर जाकर, एकेडमिक पद पर जाकर पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। वर्मा जी को ये उनको शासन करने का अधिकार है, वर्मा जी को भी शिकायत नहीं हो। इसीलिए मैं कुछ बातें जेपी के डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट के संबंध में कुछ बात कहूंगा, कह ही दूंगा, लेकिन जब जेपी की बात होती है और प्रभाकर पाठक जी को मैं यहां देखता हूं, मन में आता है कि सब कुछ को छोड़ दूं, एक बार रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों को प्रभाकर पाठक जी से सुनूं, पूरी कविता को सुनूं। सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगार उठी है, सदियों की ठंडी बुझी रात सुबुगार उठी है, मिट्टी सोने का ताज पहन इजलाती है, मिट्टी सोने का ताज पहन इजलाती है। दो रहा समय के रथ को, समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये सिंहनाद मैंने पूरी कविता नहीं पढ़ी, प्रभाकर पाठक जी को देखकर मैंने कहा उनसे पूरी कविता सुनूंगा और तब मैं समझूंगा कि प्रजातंत्र का प्रयोग क्या होता है, सिंहासन खाली कैसे होती है, सिंहासन बड़ा कैसे जाता है, बड़ा की प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, अटल जी विदेश मंत्री कैसे बनते हैं, और इंदिरा जी, संजय जी चुनाव में परास्त कैसे होते हैं। यह प्रजातंत्र का प्रयोग ऑथोरिटेरियन सत्ता को, ओलिगार्की को, अल्पतंत्र को, मुट्ठी भर तानाशाहों को अपदस्थ करने का प्रयोग रामधारी सिंह दिनकर ने भविष्यवाणी की थी और जेपी ने उसे एक्सपेरिमेंट को धरातल पर उतारा था। यह मैं प्रभाकर पाठक जी से अधड़ा है जितेंद्र जी का, जिन्होंने अध्यक्षता उसी वीर कवि को दिया। वैसे तो मैं प्रभाकर पाठक जी को नित्य ही, प्रभाकर को गायत्री जब सवेरे करता हूं तो प्रभाकर को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। यह प्रभाकर का दर्शन भी हो रहा है, तो जितेंद्र जी को मैं धन्यवाद देता हूं, अध्यक्षता के रूप में उनका दर्शन करा रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंट के पहले एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जेपी को बहुत से लोग ट्रेजिक हीरो मानते हैं,
इसी मिट्टी के थे, दरभंगा के। हमारा रिश्ता था जेपी से। बंगाली टोला में अभी भी घर है, परिवार है। ब्रज किशोर बाबू का परिवार बलभद्रपुर में, हमारे टोला के बलभद्रपुर में, कांग्रेस ऑफिस से थोड़ा उत्तर। तो ब्रज किशोर बाबू के वे दामाद थे। और मैं बेटी का रिश्ता से, मामा का रिश्ता से राजेंद्र बाबू के भी दामाद थे, राजेंद्र प्रसाद के। तो हमारा संबंध उनसे है। इसलिए भी मैं थोड़ा सा पहले से उनके बारे में, उस परिवार के जरिए भी जानता हूं। उस परिवार से मेरा प्रत्यक्ष भी रिश्ता था, किला घाट दरभंगा को लेकर, लक्ष्मण मुख्तार जी को लेकर, श्रीवास्तव जी को लेकर। तो जेपी से गांधी को जितनी सफलता मिली, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जितनी सफलता मिली, सरदार पटेल जी को जितनी सफलता मिली, उन सबों से ज्यादा सफलता मेरी दृष्टि में अगर संघर्ष में किसी को मिली, वैचारिक जीत से मिली, तो जयप्रकाश बाबू को मिली। ये मैं ताकत के साथ कहना चाहता हूं। वैसे जयप्रकाश जी कई मोर्चे पर कई बार परास्त होते दिखे। जैसे पहले तो उन पर साम्यवाद का प्रभाव था, मार्क्सवाद का प्रभाव था। 37 के अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ में एक प्रस्ताव आया कि हम लोग विधानसभा का डुअल सिस्टम लागू हुआ देश में, द्वैत शासन प्रणाली 19 में भी लागू हुआ। 19 में कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं किया। दूसरी कांग्रेस ने, कांग्रेस के एक गुट ने उसका समर्थन किया, स्वराज पार्टी ने, और वो चुनाव लड़े थे। लेकिन मूल कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला 2021 में नहीं किया। 37 के लखनऊ कांग्रेस में इसका प्रस्ताव आया। जब द्वैत प्रणाली में थोड़ा संशोधन हुआ, कुछ कांग्रेस के भी पहले से हुआ, तो चुनाव लड़ने का फैसला हुआ। उस फैसला के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू। वे समाजवादी विचार के थे, फेबियन समाजवादी जवाहरलाल थे। उन पर भी मार्क्सवाद का शुरू में प्रभाव था, जेपी पर भी मार्क्सवाद का शुरू में प्रभाव था। और वे लोग मार्क्सवादी धारणा के प्रजातंत्र में विश्वास करते थे। मार्क्सिस्ट अप्रोच जो था, मार्क्सिस्ट अप्रोच में प्रजातंत्र तो होता ही नहीं है। फिर भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की कल्पना थी उनकी। और अभी हमारे प्रथम वक्ता ने जिस वैशाली की बात की, जिस गणतंत्र की बात की, कोई भारतीय चिंतक गणतंत्र के खिलाफ कुछ नहीं जा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं जा सकता। गणतंत्र तो भारत के डीएनए में है। पंच परमेश्वर की प्रणाली भारत के डीएनए में है। तो पंच परमेश्वर को तो रहना ही है। और गांधी जी ने अपने स्वराज्य में 9 ईस्वी में, 1909 में उसी की बात की थी। बस गांधी जी से प्रभावित थे जेपी उस समय भी। वो भी कहते थे ग्रास रूट पर चुनाव होगा, और उसी चुनाव से जो लोग निकलेंगे वही व्यवस्थापिका का हिस्सा बनेंगे, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। यही उनकी मान्यता थी, गांधी जी के तरह। वो तो डुअल सिस्टम पर तो अंग्रेज की छाप थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की छाप थी। जेपी मानते कैसे, नेहरू मानते कैसे? तो नेहरू ने प्रस्ताव का विरोध किया। सरदार पटेल ने तो कहा कि अगर ये प्रस्ताव आएगा तो मैं सदन में ही नहीं जाऊंगा, मैं बैठक में ही नहीं भाग लूंगा। लेकिन जवाहरलाल जी बैठक में भाग लिए, बड़ी वोट से हारे। और इस तरह जेपी भी बड़ी वोट से हारे, सरदार पटेल जीते, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मार्ग पर देश
खुश नहीं थे कि जब देश में आजादी का दौर चल रहा था, संविधान बनने की बात आई, जवाहरलाल जी तो उसमें मुखर थे, लेकिन जयप्रकाश बाबू ने कहा नहीं, आप लोग जो मॉडल अपनाने जा रहे हैं, ब्रिटिश मॉडल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल, वो मॉडल थोड़ा सा ये सेमिनार है, इसलिए कुछ सच्ची बातों को, एकेडमिक बातों को हमें एकेडमिक स्पीड में ग्रहण करना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तब मां सरस्वती माफ नहीं करेगी हमें। गांधी जी पूरी तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, 100%। जितना खिलाफवाद मकसद है, नक्सलवादी है, कहता है स्टॉक एंड बैरल हमारा चलेगा तो हम इसको चेंज करेंगे, उससे ज्यादा खिलाफ गांधी जी थे, उससे ज्यादा खिलाफ। और जयप्रकाश नारायण सिर्फ खिलाफ नहीं थे, उन्होंने कहा यदि भारत का संविधान बनेगा और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाएगा तो मैं देश भर में उसका 2 मिनट देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका खिलाफ करूंगा, और इसके लिए उन्होंने कहा ही नहीं, 52 के चुनाव में उन्होंने खिलाफ किया। 52 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के तत्वाधान में, उनका बायोग्राफी में नहीं बताऊंगा, उन्होंने खिलाफ किया, लेकिन देश की जनता उन सब नेताओं को जिता दी जो संविधान निर्माण सभा के सदस्य थे। इस तरह यह भी जेपी की हार हुई उस तरह से, लेकिन आगे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम गलत हैं, वो गांधी के मार्ग का प्रचार करते रहे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, वर्ष 46 में गांधी ने उन्हें बुलाया, उनकी सम्मति ली और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने कहा। उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं बने। फिर एक समय आया जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको बुलाया भवन में और कहा कि आप अपनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को हमारे साथ कहिए, कोलिशन बनाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में आप सहयोग कीजिए। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बैतूल सम्मेलन हुआ, बैतूल सम्मेलन में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने बैतूल में उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। इस तरह सरकार के साथ उनका तालमेल नहीं हुआ। इस तरह की झटका से जेपी दुखी भी हुए, इंट्रोवर्ट भी हो गए। गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को लागू करने का उन्होंने निश्चय किया और विनोबा भावे से मिलकर सर्वोदय आंदोलन, फिर ग्रामदान आंदोलन में लग गए, सक्रिय हो गए। उसी बीच 69 में एक किताब उन्होंने खुद लिखी, बुकलेट 89 पेज की। वो किताब जो है वो प्रजातंत्र पर उससे ज्यादा सटीक किताब मैंने नहीं पढ़ी। 79 पेज की वो किताब है, सारे दुनिया के लोगों का उसमें मत है, इंटरनेशनली और समर्थन है। वो एक तरह से गांधी जी के स्वराज्य का, ग्रासरूट डेमोक्रेसी का, उसे जवाहरलाल नेहरू ने जरूर पढ़ा और उन्होंने उनसे पूछा हम क्या करें। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का एक मिनिस्टर उनके एक मित्र को बनाया, डे को, डे कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने और उन्होंने फिर जेपी की अनुशंसा पर उन्हें पंचायत
राज का भी मंत्री बना दिया। पंचायत राज के मंत्री के रूप में उन्होंने बलवंत राय मेहता समिति की बनाने की अनुशंसा की और बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा लागू हुई देश में। पंचायत समिति का उद्घाटन एक जगह जवाहरलाल जी ने किया और सैकड़ों जगह जेपी ने किया। कुछ दिनों के विराम के बाद, अंतराल के बाद आज पूरे देश में जो 73वां संविधान संशोधन, पूरे देश में जो पंचायत राज प्रणाली लागू है वो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर है। और मैं कहना चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ही यह पंचायत प्रणाली विधानसभा, विधान परिषद को, लोकसभा, राज्यसभा को अगर उनकी हुल्लड़बाजी बंद नहीं हुई, अगर पैसे का खेल चुनाव में बंद नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का नाटक बंद नहीं हुआ, तो कोई रोक नहीं सकता है जेपी की अनुशंसा पर इस देश में ग्रासरूट डेमोक्रेसी पंचायत से पड़ेगी। महिलाओं को 50% का अधिकार मिलेगा और भ्रष्टाचार का उन्मूलन होगा, वो जेपी की जीत होगी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पता नहीं अभी तो लग रहा था सिंहासन खाली करो की जनता आती है, उसी तरह से क्रांतिकारी आवाज, वही अंदाज, और ऐसा लग रहा था कि जनतंत्र वाकई मजबूत है और से और अधिक लोकतंत्र मजबूत होगा। सर के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी ने ये क्रांतिकारी ओजपूर्ण भाषण सुना, इसके लिए आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं जिस सर मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर कामेश्वर भाटी का, कि इन्होंने समय से पूर्व ही 3 मिनट पहले ही अपना अभिभाषण संपूर्ण किया। और मुझे प्रसन्नता होगी कि सभी लोग आत्मानुशासन रखेंगे। यारो एक बात, आत्मानुशासन शब्द है लेकिन मनानुशासन किसने सुना है? नहीं सुना। इसीलिए मनानुशासन बड़ा कठिन है। जनक भी नहीं कर पाए थे, जनक भी नहीं कर पाए थे। अष्टावक्र गीता बिल्कुल लिखित। धन्यवाद। हमारी बाध्यता है और जब कोई एंकर यहाँ आता है तो बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे दबाव, तनाव, खिंचाव रहता है। सर मैं जानता हूँ और सभी हमसे सीनियर हैं, इसीलिए मुझे शब्दों का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल यही तकनीकी सत्र की भी शुरुआत होनी है, 2 बजे से शुरुआत होगी, इसलिए समय हमारे लिए कम है। एक ही वक्ता काफी है कि आज इस सत्र को संभाल सकें, लेकिन यह हमारा सौभाग्य नहीं। हम एकल अभिभाषण भी सुनेंगे डिपार्टमेंट में, एक दिन एक ही वक्ता को टाइम देंगे और दिन भर सुनेंगे। धन्यवाद सर, हृदय से आभार सर। मैं अब जिस सशक्त हस्ताक्षर को आमंत्रित करने जा रहा हूं वो हमारे आज के डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और पॉलिटिकल साइंस और प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर, जो ऑनरेबल वाइस चांसलर है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दोनों में जो तादाद में है, पॉलिटिकल साइंस को माइनस नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर शर्मा सर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष मेरे अत्यंत आदरणीय प्रभाकर पाठक जी, आदरणीय प्रोफेसर कामेश्वर झा जी, आदरणीय प्रोफेसर MS वर्मा जी, मेरे मित्र प्रोफेसर RK वर्मा जी, मेरे मित्र प्रोफेसर जी, महात्मा गांधी के
केंद्रीय विश्वविद्यालय के सम्माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी जी, मुकुट बिहारी जी और मेरे अत्यंत आत्मीय बंधु प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के मेरे सम्मानित शिक्षक साथियों, विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति और मेरे बहुत पुराने मित्र प्रोफेसर एस.पी. सिंह का उनकी उपस्थिति में आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। प्रोफेसर जितेंद्र नारायण मेरे कई दशक पुराने पारिवारिक मित्र हैं। बहुत आग्रह से कई बार उन्होंने बुलाया, लेकिन मेरे दुर्भाग्य से विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व में कुछ ऐसे काम भी होते हैं कि निकलना थोड़ा कठिन हो जाता है। आज उनका आग्रह इतना अधिक था कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का सौभाग्य मिला। मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न दायित्वों में आने का अवसर मिला है। मैं इन समितियों में भी आया हूँ, मनेश्वर जी ने उल्लेख किया था, कुछ सेमिनार्स में भी पहले आया हूँ। 2012 में मुझे लगता है भाषण देने के लिए अंतिम बार आया था। तब से आज पुनः आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए एक बार पुनः संपूर्ण आयोजक मंडल का, विभाग का, अपने मित्रों का, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिस स्थान से आ रहा हूँ वह भारत में महात्मा गांधी की पहली कर्मभूमि है। मोहनदास करमचंद गांधी को भारत में महात्मा गांधी बनाने वाली भूमि चंपारण है। मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक ऐसे तीर्थ स्थान में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहा हूँ, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं और संपूर्ण विश्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार के रूप में भी जानता है। और जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करते हैं तो उसमें महात्मा गांधी के पदार्पण के बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन मानते हैं। और यह भी संयोग है कि भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जयप्रकाश जी को जाना जाता है। प्रोफेसर कामेश्वर झा इतनी ऊर्जा से बोल रहे थे, उनकी इस आयु में इस ऊर्जा को भी प्रदान करता हूं। इतनी ऊर्जा मुझमें तो नहीं है, लेकिन मुझे दिनकर याद अवश्य आए। सेनानी करो प्रयाण अभय, भारी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। दिनकर ने राष्ट्रीय आंदोलन में ही कविता लिखना प्रारंभ किया था। हुंकार, सामधेनी, रेणुका, कुरुक्षेत्र सबकी रचना राष्ट्रीय आंदोलन में हुई। महात्मा जी के आत्मबल के सिद्धांत को, क्षमा के सिद्धांत को, दया के सिद्धांत को सैद्धांतिक और वैचारिक चुनौती देते हुए दिनकर राष्ट्रीय आंदोलन में दिखाई पड़े। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास जरूर है, हमने सबने सुना है। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का नाम, ये दिनकर लिखते हैं। रे लोग युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उसको स्वर्ग ही, ये दिनकर लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में लिखते हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा विस्मय है कि रामधारी सिंह दिनकर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में राजनेताओं की दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वो महात्मा गांधी की ओर नहीं करते, वो नेहरू की ओर नहीं करते, वो जयप्रकाश की संभावना देखते हैं। है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास संवाद देता है, पढ़कर जिसके पद चिन्हों को अपने ऊपर अंकित करता है, वो जयप्रकाश की संभावना देखते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को सामान्यतः हमारी आज की स्मृति में 1975 के आपातकाल विरोधी आंदोलन मात्र से संयुक्त कर दिया गया है। उससे पहले की राष्ट्रीय आंदोलन की उनकी स्मृति, उनके अवदान को प्रायशः उपेक्षित किया गया। और मैं बहुत निर्भीक
पक्षित नायकों की बात भी करनी है, उनकी भी बात करनी है जिनकी गाथा, जिनकी कथा, जिनके आख्यान सामान्य रूप में हम तक नहीं पहुंचे। और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि वे आख्यान विश्वविद्यालयों में भी नहीं पहुंचे, वे राजनीति विज्ञान इतिहास की कक्षाओं में भी नहीं पहुंचे, हमारी पाठ्य वस्तुओं में नहीं पहुंचे, हमारे शोधार्थियों के शोध विषयों तक नहीं पहुंचे। और सामान्यतः हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में से कुछ एक व्यक्तियों के आभा मंडलों का निर्माण किया और उन आभा मंडलों में ही हमारी दृष्टि चकाचौंध में आ गई। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जितेंद्र भाई को अपने इस बात के लिए बधाई दूंगा कि हम जयप्रकाश जी की आज 119वीं जयंती मनाते समय इस विषय को, जिसके उल्लेख किया प्रोफेसर गोपाल रेड्डी ने, उनके विचार को, उनके राजनीतिक आंदोलन में अवदान को, उनके सैद्धांतिक विमर्श को अपनी पाठ्य पुस्तकों तक, अपने शैक्षणिक विभागों तक भी ले जा सकें, तो इस राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण पाठ ये होगा। मुझे एक बात और लगती है, सामान्यतः, मुझे क्षमा करेंगे निर्भीकता से बात करने के लिए, सामान्यतः हम समाज के पूर्व पुरुषों का जब स्मरण करते हैं तो ऐसा होता है कि नेहरू जयंती पर हम ये कहते हैं कि हमें नेहरू जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हम यही कहते हैं और गांधी जयंती पर भी हम यही कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी यही कहते हैं। और फिर मुझे लगता है कि नेहरू जी के और गांधी जी के विचार तो थोड़ी दूर तक साथ चल ही पाते, तो किसके बात पर चलना है? ये कैसे तय होगा किसके बात पर चलना है? अंबेडकर तो गांधी जी के रहते हुए उनके विरोध में थे, तो फिर किसके बात पर चलना है? इसका अर्थ है कि हमें अपने पूर्व पुरुषों को अंधानुकरण ना उन्होंने अपेक्षा की थी, ना आज वांछनीय है। इसलिए यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र की गाथा गाते हुए और आधुनिक लोकतंत्र, जिस आधुनिक लोकतंत्र की गाथा हम भारतीय राष्ट्रीय संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हो जाने की तिथि से निरंतर इस गाथा को गा रहे हैं, हमें यह स्वीकार भी करना होगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में हमें यह समझ होनी चाहिए कि लोकतंत्र सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र केवल उपलब्ध विकल्पों में सर्वश्रेष्ठ है। आज हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें वो सर्वोत्कृष्ट है। यदि लोकतंत्र को एक शासन व्यवस्था के रूप में श्रेष्ठ मानना है तो राजनीतिक
सवाल से प्रारंभ करना कितना भयावह रहा होगा एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी के लिए। मैं इसका मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ। हमारे जिस कस्बे में मैं रहता था वहाँ के सज्जन, उनको 26 तारीख को सवेरे 25 की रात में इमरजेंसी लगी और उन्हें हरिद्वार गए हुए थे, तो उनको मालूम हुआ, तो उन्होंने सोचा कोई ये ना कह दे कि भाग गए। रात में उस जमाने में उनके पास एक पद्मिनी गाड़ी होती थी, उसे लेकर वो आ गए। सवेरे उन्होंने कहा कि मौन जुलूस निकालेंगे, तो सब आयु वर्ग के उनके साथ कई हजार लोग चले गए जेल में गिरफ्तारी देने के लिए। मैं भी चला गया किशोरावस्था में, साथ 4-5 लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, बाकी को घर भेज दिया। हम घर आ गए, जेल तो नहीं गए, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाओं की, राजनीतिक व्यवस्था की, राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि विकसित होने का एक अवसर और समय हुआ। उसका परिणाम ये हुआ, और मैं प्राय कहता हूँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में कि हम आपातकाल के बहुत सारे दूषणों को जानते हैं, बहुत सारे दुखों को जानते हैं, कष्टों को जानते हैं। प्रोफेसर रेड्डी ने कुछ का उल्लेख किया, लाखों लोग जेल में गए, बहुत सारे लोगों को जेल में मरते हुए हमने देखा। मैं शहर में पढ़ता था, उसके इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जेल से वापस ही नहीं आए, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन मुझे लगता है कि आपातकाल ने भी कुछ अच्छे काम तो किए, और एक सबसे बड़ा काम ये किया जयप्रकाश जी ने, चाहे उस आपातकाल के आंदोलन का नेतृत्व इस रूप में किया था कि राजनीतिक व्यवस्था अत्याचारी, आतताई, निरंकुश, एकाधिकार संपन्न हो गई थी और लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण के लिए वो आगे आए थे। लेकिन परिणाम होता है, मुझे लगता है कि हमारी जो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रति हमारा प्रेम है, हमारे मताधिकार के प्रति हमारी जो आश्वस्ति है, और लोकतंत्र में जो हमारी मूल अंतर्निहित निष्ठा है, ये सब सुदृढ़ हुई। ये सब आपातकाल का बहुत सुखद परिणाम है। ये एक बात और समझने की है, जब राजनेताओं का आकलन करते हैं, जहाँ साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम संगोष्ठियों में केवल महिमा मंडल नहीं कर सकते, राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को, समाज विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रायशः अपने समालोचनाओं में निर्भीक होना चाहिए। हालांकि इसके खतरे भी हैं, इसके बहुत सारे खतरे हैं। मैं बिहार में बहुत दिन से सेवा कर रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ क्या उतना खतरा नहीं है। राजनीतिक विज्ञान के एक शिक्षक राजस्थान के विश्वविद्यालय में ऐसे ये कार्यक्रम में बुलाए, एक कथा सुनाता हूँ मैं आपको, मुझे कथाएं सुनाने का बड़ा अभ्यास है। एक कथा सुनाता हूँ। राजनीतिक विज्ञान के एक शिक्षक एक ऐसी सभा में गए, राष्ट्रीय आंदोलन पर बोल रहे थे। वो एक ही वक्ता थे, जैसा भी मिनिस्टर जी ने कहा एक ही वक्ता बुलाएंगे कभी, तो एक ही वक्ता थे, राष्ट्रीय आंदोलन पर बोल रहे थे। और भरा हुआ था, लड़के लड़कियां टीचर सब बैठे थे, और एक बच्चे ने 40 मिनट के भाषण के बाद बीच में कहा, साहब आपने राष्ट्रीय आंदोलन पे इतना सारा बोला, आपने अमुक राजनेता का, अमुक नेता का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने प्रवाह में कहा, मैं जिन राजनेताओं का उल्लेख कर रहा था, मुझे लगा उनका योगदान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कहते वो आगे बढ़ गए। वो बच्चा निकल गया। 10-15 मिनट बाद 30-35 लड़के हॉस्टल से आए, उनके पास लाठियां थी, लोहे की रॉड थी, हॉकियां थी, और उन्होंने वक्ता और आयोजक सबको, सबके सिर ढंग से फोड़े। जो वक्ता आए थे उस दिन के कार्यक्रम के लिए, उन्हें 20 दिन हॉस्पिटल में वहीं एडमिट रहना पड़ा, और अध्यक्ष महोदय कोमा में रहे काफी दिन तक। बिहार में ऐसा नहीं होता है, जो मैं जानता हूँ, इसलिए बहुत निर्भीकता से फिर से कहूंगा। हमने अपने पूर्व पुरुषों के आभा मंडलों के निर्माण करते समय एक बात और की, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद मैंने उल्लेख किया, दिनकर गांधी जी के जीवित रहते हुए उनके आत्मबल की आलोचना करने की सामर्थ्य रखते थे, और उन पर किसी ने पत्थर नहीं फेंके। हम परंपरा में सैकड़ों वर्षों से कहते आए थे, हमने किसी गैलीलियो को पत्थर से नहीं मारा, हमने किसी सुकरात को जहर नहीं दिया। हमने जिस व्यक्ति ने कहा यह वेद आर्ष नहीं है, यह मूर्ति पूजा गलत है, उसको भगवान बुद्ध बनाया। चाणक्य को ऋषि कहा, औधनायन को ऋषि कहा, हमारी परंपरा ने नेति कहा। ऋषि कहता है मुझे इतना ज्ञान है, उसके बाद कहता है नैति, यह अंतिम नहीं है। और उस परंपरा का ऐसा निर्वाह किया इस भारतवर्ष में, साहिब लुधियानवी ने बहुत साल बाद लिखा, कल और आएंगे लगनों की कीर्ति कलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये परंपरा है, ये संस्कृति है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होते ही हम इतने असहिष्णु हुए, विचार के प्रति इतने असहिष्णु हो गए, जो भी हमसे सहमत नहीं है इसके बारे शत्रु है। और
ये जो स्थिति बनी ये इसलिए बनी कि हमने आभा मंडलों से बाहर विचार करना संभव स्वीकार नहीं किया। निष्पक्ष, निर्मम, तटस्थ समालोचना हमारे विमर्श से अनुपस्थित हो गई। इसलिए मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं अकादमिक समुदायों को बहुत तटस्थ भाव से अपने पूर्व पुरुषों का, अपने राजनेताओं का, अपने समाज सुधारकों का, सबका समालोचनात्मक अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए। और फिर ऐसे में याद करिए महात्मा जी जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का विरोध करते थे, झा साहब ने कहा, उन्होंने हिंद स्वराज में बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। और हिंद स्वराज में कठोर शब्दों का प्रयोग करते समय गांधी जी, मैं कहता हूँ जीवन में बहुत कुछ उन्होंने लिखा। 21 साल अफ्रीका में रहे, 2 समाचार पत्र निकालते थे, भारत में भी समाचार संपादन करते थे, वो बहुत सारा लिखा गया, 100 खंडों में प्रकाशित हो गया। बहुत सारे लोगों ने उनकी किताबें लिख दी, शोध हो गया, कविताएं लिख दी, लोगों ने गीता तक लिख डाली, उन पर संस्कृत में, हिंदी में, हर भाषा में लिखा गया। इतना सब साहित्य लिखने के बाद भी गांधी की समालोचनात्मक दृष्टि में अब थोड़े से भय खाते हैं। और परिणाम ये है कि हमने संपूर्ण भारतवर्ष में ये विचार कर लिया, किसी भी राजनेता के बारे में जैसे ही आप समालोचना करेंगे, कोई भी ऐसा पक्ष बोलेंगे। मैं अविभाजित बिहार में एक महाविद्यालय में भाषण देने के लिए आया ऐसे बहुत साल पहले, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र, इसके इवोल्यूशन, विकास यात्रा पर बोल रहा था। महिलाओं का कॉलेज था, शहर का नाम नहीं बताऊंगा। और छुट्टी के दिन उन्होंने मुझे बुलाया था। बोलते बोलते जब मैं बोलने लगा, जब इंदिरा जी का समय आया तो मैंने इंदिरा जी का राष्ट्रीय कर्म बैंकों का और जो बांग्लादेश का युद्ध, ये सब वर्णन किया, गरीबी हटाओ। और जैसे ही मैं 74-75 के इमरजेंसी के समय पर आया तो प्राचार्य महोदय ने कहा, आप ये महिला महाविद्यालय में एक महिला प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देख रहा हूँ, महिला के रूप में नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं चलने दूंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, बड़ी लंबी यात्रा करके आया था, बच्चियां बैठी थी, मैंने उनसे पूछा, बेटा आप लोग सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा हम तो सुनना चाहते हैं। वो प्रिंसिपल साहब बहिष्कार करके चली गई। मैं 20-25 मिनट और बोला। तो मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि लोगों को हमने सामान्य रूप से ऐसे कांचों में ढाल दिया है कि हम उनकी एक छवि निर्मित कर चुके हैं, इस छवि से बाहर देखने को तैयार नहीं है। तो गांधी जी जिस पश्चिमी लोकतांत्रिक अभिकरणात्मक संसदीय व्यवस्था की आलोचना करते थे, उसको हिंदू स्वराज में आलोचना करने वाले महात्मा गांधी, यदि आज उस हिंदू स्वराज के बहुत सारे पक्षों को आप देखेंगे, जो रेल के बारे में वो कहते हैं, जो वकीलों के बारे में वो कहते हैं, जो डॉक्टर्स के बारे में वो कहते हैं, जो समाज के अन्य पक्षों के बारे में कहते हैं, वो सारा स्वीकार्य नहीं हो सकता, असंभव है और वांछनीय नहीं है। ऐसे ही आज के लोकतंत्र के सामने जयप्रकाश जी को एक बात पढ़ा के देखिए। अब मेरे सामने प्रश्न आता है, जयप्रकाश जी ने दलविहीन लोकतंत्र की बात की थी। हमारा काफी दलदल युक्त लोकतंत्र है, और इस दलदल युक्त लोकतंत्र में राजनीतिक दलों ने अपने चरित्र में जो युगांतरकारी परिवर्तन किए हैं। हमारे झा साहब कह रहे थे कि बोर्ड डेमोक्रेसी, मैं बहुत विनम्रता से डरते डरते कहना चाहता हूँ, हमें तो लोकतंत्र के नाम पर पिछले कुछ वर्षों में हमने अति लोकतंत्र कर डाला है और लोकतंत्र के मूल मूल्य का विनाश कर दिया है। परिणाम यह है कि मेरा कोई विद्यार्थी, मैं पाए कहता हूँ, मेरा कोई विद्यार्थी, मेरा कोई सहयोगी शिक्षक, मेरा कोई समाज का नागरिक सड़क पर चलते हुए किसी नियम का उल्लंघन करता है, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको दंडित किया जा सकता है, उसे पुलिस पकड़ सकती है, उसको अपराध में जेल भेज सकते हैं, या हमारे मीडिया के मित्र उसको अपराधी घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि ये 100, 150, 400 लोग तय कर लें कि हम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे अपनी किसी बात के लिए, तो वो आंदोलन हो जाएगा लोकतांत्रिक। कैसे ऐसा संभव है इस देश में कि आप राष्ट्रीय राजमार्गों को जेसीबी मशीन लगाकर उखाड़ देते हैं? कैसे संभव है कि रेल की पटरियों पर बैठकर आप 20-20, 25-25 दिन खाना बनाने का एक आडंबर करते हैं और करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान पहुंचा देते हैं, लाखों लोगों के सार्वजनिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को अवरुद्ध कर देते हैं, और आप कहते हैं हमारी एक मांग है, हमारी मांगें पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी का अर्थ है कि व्यवस्था कहीं जाए, नियम कहीं जाए, संविधान
से परे भी कुछ है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे संविधान निर्माताओं के बाद, संविधान के प्रवृत्त होने के बाद 1976 के आपातकाल में पहली बार हमने जाना कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, हमारे कर्तव्य भी होने चाहिए। और दुख की बात है कि राज्य व्यवस्था को अपने संचालन के लिए जिन निर्देशक तत्वों का पालन करना था उनको हमने सामान्यतः नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया, जिन्हें हम जस्टिसिएबल भी नहीं बोलते, न्याय योग्य भी बोलते। और परिणाम ये हुआ कि आज नीति निर्देशक तत्वों में से कई तत्व ऐसे हैं जिनका उल्लेख यदि मैं इस मंच से मैं करूं या जितेंद्र जी करें तो सांप्रदायिक घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि वो संविधान निर्माताओं ने लिखी थी। समान नागरिक संहिता संविधान निर्माताओं ने लिखी थी, हम आज की सरकार ने नहीं लिखी है। लेकिन यह दुर्भाग्य इसलिए संभव हुआ कि हमारी सारी संरचना में हमने अभिकरणों को, हमने उपकरणों को, हमने संस्थाओं को, हमने संरचनाओं को, हमने प्रावधानों को, हमने संविधान को, हमने विधिक व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण मान लिया। सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के, सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाओं की उपेक्षा की, उन्हें तिरस्करणीय बना दिया। आप जयप्रकाश जी के संपूर्ण वैचारिक अधिष्ठान को देखेंगे, वह सामाजिक संस्थानों पर आधारित है, सामाजिक समरसता पर आधारित है। गांधी भी सामाजिक समरसता पर आधारित विचार चलाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समरसता पर आधारित विचार चलाते हैं। लेकिन संविधान के प्रवृत्त होते ही हमने अपने सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक दायित्व संवैधानिक व्यवस्थाओं को दे दिए। जिन समस्याओं के समाधान हमारे समाजों को, हमारे परिवारों को, हमारे मोहल्लों को, हमारे कस्बों को, हमारे गांवों को करने चाहिए थे, उनके लिए हम विधिक संस्थाएं खोजने लगे। और उसका परिणाम है कि दहेज जैसी सामाजिक समस्या के लिए हम विधि के पास गए, हम महिला उत्पीड़न, घरों में घरेलू हिंसा के लिए हम विधि के पास गए, हम जातिगत उत्पीड़न के लिए विधि के पास गए, हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए विधि के पास गए, और विधि किसी के पास नहीं गई। परिणाम ये हुआ, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा, पिछले 70-75 वर्षों में सर्वाधिक क्षति यदि व्यवस्था में किसी की हुई है तो हमारी न्यायिक व्यवस्था की हुई है। हमने उनकी न्यायिक सक्रियता के सम्मान के नाम पर उनके प्रति अपनी श्रद्धा, विगलित शब्दों को कितना ही अभिव्यक्त किया हो, लेकिन यह स्वीकार भी ना वो कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं कि 4.5 करोड़ केसेस हमारी न्यायपालिका में पेंडिंग है। और ये कहा जाता है कि आज यदि कोई केस पहुंचना बंद हो जाए तो 139 साल लगेंगे इन वर्तमान केसेस को समाप्त होने में। और वो ये निर्धारित करने में लगे हुए हैं कि दही हानि की हाइट कितनी होगी, प्रथा का छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए, वो इसमें लगे हुए हैं। हमें ये विचार करना होगा हमारी इस लोकतांत्रिक संरचना की संकल्पना में कोई मूल दोष हुआ है क्या? क्या हम एक बार, कोविड ने राय कहता हूँ, कोविड ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जब राजनीति विज्ञान के मेरे मित्र सब जानते हैं, जब विश्व भर के सामने इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत और साम्यवादी अवसान हुआ, आधिकारिक रूप से हुआ, उसके बाद पूंजीवाद की यशोगाथा विश्व भर में गाई गई और माना गया कि पूंजीवाद ही अजेय होगा। उसकी अजेयता को इस कोविड ने हमारे आपके सामने ध्वस्त होते हुए देख लिया। उसका परिणाम है कि भारत के सामने एक अवसर है, भारत के सामने एक चुनौती भी है, भारत के सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर आया है कि हम विश्व को क्या कोई वैकल्पिक विचार दृष्टि दे सकते हैं। उस विचार दृष्टि की निर्मिति में हमारी सहायता जयप्रकाश जी जैसे हमारे पूर्व पुरुष करेंगे। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और अपने वरिष्ठ मित्रों के साथ साथ अपने युवा साथियों से बहुत आशा रखता हूँ। प्रसाद जी की पंक्ति जो पंक्ति है वहां से अपनी वाणी को विराम दूंगा। शक्ति के विद्युत प्राण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयी मानवता। अभी आपने इस महत्वपूर्ण विद्वतापूर्ण भाषण को सुना और जब कहा गया निष्पक्ष निर्मम तटस्थ समालोचना की बात, वह रेखांकित करने के लिए काफी है। अब मुझे हमारे क्लास के विशिष्ट अतिथि के रूप
पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, उनके विद्युता पर भाषण पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वह अंतिम लकीर है, ऐसा मानकर हम चलते हैं। आगे इसी क्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर, University Department of Political Science, eminent scholar, Professor M.S. Verma is invited to the dais. Please come and enlighten us. Please. President of the inaugural session, distinguished Vice Chancellor, Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Pro Vice Chancellor, Dr. G.K. Reddy of the same university, Dr. organizers of the conference, including head of the Department of Political Science, I thank the organizers of the conference for giving me an opportunity to speak on this topic. I am particularly thankful to Dr. J. Narayan for his particular attention. First of all, I would like to pay my respectful tribute to JP in the memory of his services to the nation, particularly in the liberation struggle and the reconstruction of Indian society. JP was such a personality that he is more criticized than praised, more respected than accepted. Yet he had an abiding place in the history of Indian political life. He had a number of critics who do not see any logical connection between his views. A very popular argument against him is that there is no logical connection between his views. Without wasting time, I would like to come to the main theme. Is there any logical connection between his views or not? And all the criticism I feel is due to the fact that they don't distinguish between young JP and mature JP. In order to understand JP well, we will have to distinguish between young JP and mature JP, as we do in the case of Karl Marx. In the discussions, in the course of his experiments, he learned a lot and modified his views. In the discussions that follow, it is the duty of the scholars to find out the integrating thread running across the whole spectrum of the idea. And I earnestly hope that they will do also the same. At the end of my lecture, I would also like to hint towards that, and I hope you will appreciate. For a sound opinion about him, it is desirable to look at him when he has started his political journey. A great turn takes place in his life when he meets Gandhi after his return from the United States of America, after his 7-year-long stay and study there. In his first meeting with Gandhi, he was taken aback to know that his wife Prabhavati had taken a vow to lead a life of celibacy. What is astonishing is his reply in a strong and straight words that he was not so mean that he would break her vow and that he would also live like a married brahmachari. And it is from here that JP takes a turn and never returned to a life of worldly pleasure. Freedom of the nation was the main target for the leaders of the time. JP too threw himself into the liberation struggle. In the beginning, he did not share the commitment of Gandhi to Ahimsa. In spite of his love and respect for him, he was prepared to resort to armed struggle against the British rulers if there was no alternative. One thing more, Subhash Chandra Bose had also his approval for the plan, but his repugnance of fascism was total, and nothing could persuade him to repose faith in the Axis powers, including Germany, Japan, and Italy. He did not trust the Axis powers, and he was not hopeful that once India gets freedom with the cooperation
cooperation of the Axis powers, India may not remain so as it was, and that pushed him towards Gandhi, whose influence on him was so formidable that he allowed himself to become a foot soldier of Gandhi and realized that Marxism lacks incentive to goodness. It was in 42 that he came up with his own view, together with leaders like Lohia, to adopt a path somewhat away from the Gandhian principle. Like Lenin, he planned to launch an armed revolution for which Gandhi was not ready. Along with Lohia, he succeeded in persuading Gandhi to accept their plan of disrupting all lines of transport and communication to make the British government realize that the Indian people had arisen en masse and that it would no longer be possible for alien rulers to rule over them. JP, along with several other prominent leaders, was arrested and subjected to several kinds of torture, to which he, along with Lohia, protested and wrote a long letter to Harold J. Lasky, a labor leader and a great advocate of human rights, to raise his voice against the government, pleading that punishment does not mean torture. I would like to repeat it: punishment does not mean torture, to which they were being subjected. Lasky was so moved by their letter that he took up the case with the British government in right earnest and succeeded in getting relief. During the entire period of freedom struggle, historical forces at work largely shaped his views and molded him into a Gandhian, for whom the revolution did not end with the end of the freedom struggle. Gandhi had unequivocally suggested the dissolution of the Congress party upon the attainment of independence and its conversion into what he called Lok Sevak Sangh. With the freedom of the nation to translate Gandhian teachings into reality, a social revolution was the need of the hour. The Congress party became the ruling party and left the cause of social revolution, which was needed most, to leaders like JP. When his experiment of founding a political party met with utter failure in the 1952 elections, he took no time in plunging into the Bhutan movement started by Sant Vinoba Bhave. Touring in different parts of the country, the enthusiastic response he found caused a second turning point in the life of JP. Having met Jivan Das, he started Sarvodaya movement, adjuring the use of violence in resetting the society, and declared in 1954 openly that his objection to violence was not based on moral principles but on practical considerations, and further said that he did not consider violence immoral or a revolution, but was convinced that the basic objectives of a revolution could not be achieved by a violent revolution, and that through violence, violence-free society was not possible. The journey from Bhutan to Sarvodaya was not a liaison, what Vinoba Bhave upheld, but was just a compliment. As a Sarvodaya, he visited different parts of the country and earned enormous popularity from the Himalayas to Kanyakumari. It was a revolution of thought, a revolution of hopes, seeking to make the Gandhian principles applicable in the solution of the problems of Indian society. It also marked a departure from the Marxian class struggle. It was a struggle of all, a struggle for all, and a struggle by all to benefit everyone. What Lenin aimed at was predominantly a political struggle to create a new society, whereas JP's Sarvodaya movement was primarily aimed at a social revolution by the people themselves. The greatness of a revolution cannot be judged solely in terms of its immediate success. It can better be judged by what waves of thought it creates in the minds of the people, beginning a process of change. Any change imposed on the people by violence cannot stay long and ends up making the whole attempt to die in the long run. JP did not confine himself to the Sarvodaya movement. As and when the situation demanded, he plunged wholeheartedly into the efforts to set things right.
tried his best to seek a solution to the Kashmir issue, talked to the Naga leaders for a peaceful settlement of their issue, championed the cause of Tibet and erstwhile East Pakistan, and raised his voice on several other issues. Disgusted with the outcome of competitive party politics, he advocated partyless democracy to build broader political consensus on major issues of public concern. JP's activism on three important challenges can very well be seen and appreciated. First, he took up the case of growing Dakat minage in the Chambal Valley and succeeded in persuading the Dakats not to indulge in inhuman activity again. Second, with the severe of drought having affected North India, including Bihar, he visited several parts of the world and was honored with massive assistance from everyone. Third, to cap all, it was JP who denaxalized Musahari block of Muzaffarpur district of Bihar by his continued presence in the area, supplemented by his efforts to break the backbone of violence, supposed to be the only way to bring justice to the poor and downtrodden. Such was the charisma of JP's personality. The most glorious aspect of JP's personality appears towards the third end of his life. Mrs. Gandhi, though democratically elected, became a megalomaniac by achieving vast powers with the proclamation of a state of emergency in the country. JP appears a new avatar with a much debated theory of total revolution, which may be regarded as a synthesis of socialist revolutionary dynamism and the aggressive rural realism of Mr. Bhudan, which was based on the realization that Bhudan and Gramdan could not bring about any revolutionary change, having transformed grounds into self-governing units. In the words of JP himself, in short, the objective of my life has been total revolution. Quote, I would like to quote, in short, the objective of my life has been total revolution. I have always been dreaming of it. Whatever revolutions have so far taken place in history, in my view, most of them have been through violence. Now I wish that there be total revolution through non-violence based on the Gandhian principles. A new society will come into existence as a result of the total revolution, which will be different in every respect from the present day society. Great strategist JP, by combining the Gandhian method and the Leninist fervor, succeeded in mobilizing the masses on an unprecedented scale, involving even the ordinary people of the country. It was his methodology which worked well, ending in a tremendous success. Total revolution has been called by some as total confusion, but in fact it was a total success in the immediate pursuit of dislodging Mrs. Gandhi from power and restoring democracy in the country. Although the political experiment could not come to the logical conclusion and ended without achieving the much proclaimed objective. If for one thing JP may be remembered for long, it is this, that he taught the people that democracy is their right and any attempt to subvert it will not be tolerated by the people who are mature and capable enough to bring the system back on the right track. I would like to repeat, democracy is their right and any attempt to subvert it will not be tolerated by people who are mature and capable enough to bring the system back on the right track. Like John Locke, he concedes the people the right to rebel against a duly constituted government if it goes against the will of the people, and it is in this sense that he may be called the John Locke of India. JP may be called the John Locke of India. He went as far as to call upon the army to disobey the arbitrary and democratic orders of the government. It is difficult, however, to accept in all circumstances, although the revolution may not be unjustified, in the words of T.S. Green, if the government does not act in the general interest of the people. It is to his credit that he gave a weapon to fight an undemocratic and authoritarian government.
words of रामधारी सिंह दिनकर, 2 दिन पर्वत का मूल हिला, फिर उत्तर सिंधु का ज्वार गया, पर सौंप देश से हाथों एक नील तलवार. He gave us a new weapon. He gave us a sword to fight an undemocratic and authoritarian regime. What makes JP adorable and even admirable is his historic observation. What is legal may not necessarily be democratic, and what is democratic may not always be legal. I must repeat it. What is legal may not necessarily be democratic, and what is democratic may not always be legal. It is by virtue of this statement that JP becomes the greatest champion of democracy in post-independency. JP stands apart from the general bulk of leaders by virtue of his personality, learning and epoch-making view, representing the great political democratic thinkers as he does. He holds a distinctive position in Indian history. His ingenuity lies in his blending of the views of Gandhi, Locke, Rousseau, Green and Lenin in a way which suits the Indian condition. A great intellectual, JP was a great patriot as well, which is apparent from the lines written by JP himself. May God give me that much of wisdom and strength to that, so that whatever time I have, I may be able to spend in the service of the people and the nation. This is the greatest extent of service to God. Let God just 5 minutes. Let God keep my mind as well as my heart away from my. Please have patience. I am just समझ रहा है, समझने वाले लोग समझ रहे हैं, समझने वाले लोग essence just I am finishing. Don't be so impatient. I am just finishing. Just 5 minutes time. The relentless fighter, JP continued fighting till the end of his life. I am just shortening it. JP is an enigma because of differing assumptions at different stages of his political journey. But it is difficult to find the thread to which it is not difficult to find the thread which unites the idea. Abhorrence of violence and primacy of Lok Satta over Raj Satta may be treated as the integrating thread passing through his thought. This is the main theme of JP's philosophy. With these words, I once again pay my tribute to JP in the words of Dinkar. हैदर प्रकाश को नाम जिसे इतिहास समाधक देता है, बढ़कर किसके पश्चिमों को अंकित कर लेता है. I appeal to the enlightened audience here to rightly understand and follow his view to reinvigorate democracy and strengthen the nation. Thank you very much. I'm really thankful to the research work that has been there, but we don't have time. Your scholarship is always enlightening for all of us, and I'm really thankful to you from the inner core of my heart. Thank you very much, sir. Next speaker, guest of honor of this inaugural session, Professor R.K. Verma, Secretary, IIPA, Bihar, Patna. Please, sir. प्रणाम। पौराणिक महत्व गौरवशाली संस्कृति की परंपरा का मंडल मिस्र के आध्यात्मिक पांडित्य से सिंचित इस विद्यालय की धरती। मैं अपना नमन उस महान बुद्धि को करता हूँ जिनके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मैं लोकनायक जयप्रकाश स्मृति सभा को सुशोभित करने के लिए आए बड़े बड़े लोग, ऑनरेबल वाइस चांसलर मिथिला यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल वाइस चांसलर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, मैं एक अपनी भावना व्यक्त कर दूं, थोड़ा सा लाइन हो जाएगा। आज से 15 साल पहले मैं आपसे मिला था जबलपुर, और तब भी
मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि आप ही संजीव सर, और आज भी नहीं विश्वास हो रहा है कि आप ही संजीव सर। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर आर गोपाल रेड्डी सर, स्टेट हायर एजुकेशन पॉलिसी बिहार के उपाध्यक्ष प्रोफेसर अमरशेर झा सर, सभा के अध्यक्ष हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी एवं प्रोफेसर एम.एस. वर्मा जी, प्रोफेसर जितेंद्र जी, प्रोफेसर मनेश्वर जी तथा मुकुल बिहारी वर्मा जी, इस सभागार में बैठे बुद्धिजन, प्रिय छात्र छात्राओं एवं मीडिया के बंधुगण, मैं इसे बहुत कम समय दूंगा सर, 10 मिनट के अंदर समाप्त करूंगा। लेकिन 20 मिनट का समय है सर, इसमें है उसमें है वो नहीं था, समय 15 मिनट है, समय कटौती कुछ भी विषय पर कुछ भी बोलने के पहले मैं अपनी 2 विरोधाभासी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। पहला यह, मैं अति प्रसन्न हूँ कि मैं इतने बड़े लोगों के बीच में बैठा हूँ और आपके प्रांगण में आया हूँ, परंतु मुझे संकोच हो रहा है कि शायद मैं इस योग्य नहीं। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आभारी संयोजकों का, आयोजकों का, जिन्होंने मुझे समय दिया। आयोजकों की प्रशंसा में भी कुछ कहना जरूरी है। आज भारतीय विचार परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विमर्श के लिए मंच मुहैया कराने के इस महान प्रयास के लिए इस विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग, खासकर विद्वान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी एवं उनकी टीम, प्रोफेसर मनेश्वर यादव जी, डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा जी और ऐसे पूरी महान सितारा जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, उनका योगदान है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। भारतवर्ष में जिन मुट्ठी भर लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें जयप्रकाश बाबू का नाम स्वर्णाक्षरों में होगा और अग्रणी होगा। जयप्रकाश बाबू नेता नहीं, बहुत लोग बोलते हैं लीडर लीडर लीडर, ही वाज नॉट ए लीडर, ही वाज ए स्टेट्समैन। वो वैसे राजनेता थे जो एक देश के भविष्य की कल्पना करते थे, स्टेट्समैन। उनके विचारों की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो नवीन भारत, न्यू इंडिया की बातें मैं सुनता हूँ तो जेपी याद आता है। किस न्यू इंडिया की बात हम करते हैं, किस न्यू इंडिया की बात करते हैं? पिछले वर्षों में मैं यह समझने का प्रयास करता रहा हूँ कि कौन सा नया भारत। पिछले 2-3 टीप्सा के कॉन्फ्रेंसेज में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एस्पायरिंग इंडिया, वाइब्रेंट इंडिया, सर नाम देते रहे हैं, लेकिन ये सब मेरे समझ से बाहर है। वही व्यवस्था, वही ब्यूरोक्रेसी, वही सोशल स्ट्रक्चर, वही पार्टी सिस्टम, सब कुछ वही। तो फिर कौन सा है? अगर किसी दूसरे दल का सत्ता में आना न्यू इंडिया है तो मुझे कुछ नहीं करना। नारे बुलंद होते हैं, काम कम होते हैं। राजनीतिक दल अपने नीतियों का दामन छोड़ शक्ति संचय को प्राथमिकता देते हैं और घृणा के बोल चुनावी संभावनाओं जब हम किस इंडिया की बात, इसी अवसर पर जेपी रिलीवेंट हो जाते हैं। जेपी ने एक नए भारत की कल्पना की थी, उसको हम भूल जाते हैं। अभी प्रोफेसर शर्मा सर ने कहा
कि हम उनको जोड़ देते हैं 74 के आंदोलन से। इतने छोटे नहीं थे वो, एक आंदोलन से जुड़े नहीं थे, वो बहुत विशाल थे। इसीलिए आज हमें यह जानने की जरूरत है कि किस नए भारत की कल्पना जेपी ने किया। इसलिए मैं आपको I will not keep you all guessing कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सिंपल, मैं उनकी विचार यात्रा के विवरण के माध्यम से उनके सपनों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। कैसे उनकी विचार यात्रा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे स्थान पर पहुंची। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के कैंपस से उनकी प्रथम विचार यात्रा शुरू हुई। वो अंग्रेजों का वह शासन देखा था जिसमें आज्ञाएं दी जाती थी। अमेरिका गए, उन्होंने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी देखा और उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये दोनों ही किसी देश के लिए ठीक नहीं। तब उन्होंने मार्क्स पढ़ा और खास करके वहां उन्होंने उनके कुछ मित्र थे फॉले, उन्होंने लिखा है कि मार्क्स को जितना जेपी ने समझा अमेरिका में उतना किसने नहीं। और उनकी आवाज सबसे बुलंद थी कैंपस में। और वो मार्क्सिस्ट थे और सोचने लगे कि मार्क्स के विचारों के अनुसार ही भारत का निर्माण किया जाए तो अच्छा होगा। कालांतर में उन्हें महसूस हुआ कि मार्क्सवाद में लोक शक्ति की कोई चिंता नहीं, लिबर्टी का कोई स्थान नहीं। वहां क्या है? समानता है, अथॉरिटेरियनिज्म है। ये महसूस किया उन्होंने एक जगह कहा भी कि मार्क्सवाद एक जार से शक्ति छीनकर एक नए प्रकार के जार को शक्ति देता है और उसको न्यायोचित है। मार्क्स हमारे लिए, हमारे भारत के लिए उचित नहीं है। तब मार्क्सवाद से उनका मोह भंग होता है। उनके पास वो समाजवाद की ओर मुड़ते। उन्होंने देखा कि समाजवाद वंचितों के हितों की संरक्षा और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का हिमायती है। उन्होंने सोचा कि शायद समाजवाद में हमारे स्वर्णिम भारत का स्वरूप होगा। वे समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए तथा भारतीय समाजवादियों जैसे अशोक मेहता, मिनी मोसानी, अच्युत वर्धन आदि के संपर्क में आए और वे कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट कांग्रेस का निर्माण किया। उनका मानना था कि राजनीतिक दल और बैलेंस डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। आप लोगों ने पहले लिखा, बल्कि सत्ता आम लोगों के पास है। सत्ता या शक्ति प्रोड्यूसिंग मासेस के पास रहे, कहीं देखिएगा कहीं ऊपर, यह सुनिश्चित होगा तभी होगा। बाद में उन्होंने सोशलिस्ट नेशनलिज्म की चर्चा की और उन्होंने कहा कि ये सोशलिस्ट नेशनलिज्म किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, अपितु दमन से मुक्त करने के लिए सामाजिक पुनर्निर्माण का उपकरण होगा। वो मार्क्स और समाजवाद के जब समर्थक थे तो वो गांधी की खुलेआम आलोचना किया करते। जब वो भारत आए और गांधी से संपर्क हुआ तब उन्हें महसूस हुआ कि भारत की समस्याएं आर्थिक और
उनका लगाव गांधी जी से हुआ। उनका मानना था सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, वह हमारे समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तथा मानवीय नैतिक मूल्यों का ह्रास करते हैं। वे गांधी जी की ओर मुड़े और अपनी जिज्ञासाओं का हल उनमें दिखने लगा। सूक्ष्म स्तर पर पूर्ण सहभागी लोकतंत्र और गांधीवादी अर्थव्यवस्था के 1940 के बाद वे कट्टर गांधीवादी हो गए। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में वो गुरिल्ला युद्ध किया करते थे, परंतु बाद में अहिंसा के सर्वमान्य मूल्य को मानने लगे। कि गांधीवादी विचारों में विश्वास कारावास के दौरान विकसित हुए। अंततः लोक शक्ति की उनकी खोज सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति में समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि यही दो चीजें हैं जिससे जनता को शक्ति मिल सकती है। सर्वोदय दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की और संपूर्ण क्रांति में आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत की। सत्ता लोगों के पास है। वे जानते थे कि ये दोनों लक्ष्य तत्काल में प्राप्त नहीं किए जा सकते। इतनी जल्दी ये परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए एक डायरी में उन्होंने लिखा, इमरजेंसी के दिनों में बंद के उस समय, Here was I trying to widen the horizon of our democracy, trying to do it mainly by involving the people more intimately and continuously in the process of it. Here lies this gist of it idea, people power inject. This in two ways. One of creating some kind of machinery. वो कैसे इसको अभी तत्काल क्या पैरासीटामोल होगा इसकी चर्चा करते हैं। वो देखते हैं this in two ways. One by creating some kind of machinery through which there could be a major consultation with people in setting up candidates' names. Two, by providing a machinery through which the people could keep a watch on representatives and demand good and honest performance from them. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने पहले सेक्रेटरी एड्रेस में कहा था कि हम तब तक जब तक एक चरित्रवान कानून निर्माता के लिए निर्धारित नहीं कर देते हैं तब तक हमारा संविधान इफेक्टिव रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जी के पाठ पर सवाल है और जो मैंने कहा इससे ज्यादा मुझे बोलना भी नहीं था। इसकी व्याख्या करता मैं राजनीति विज्ञान विभाग खासकर जितेंद्र नारायण जी, बिहारी वर्मा जी और इनकी टीम जो है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, वो भी इतने बड़े लोगों के सामने। मैं बहुत हम तमाम अपील से क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा 2 बजे से हम सब लोगों को सुनना चाहते हैं और समय सबका नियामक होता है। हमारी व्यवस्था ये है कि 2 बजे से टेक्निकल सत्र एक यहाँ शुरू होना है एक डिपार्टमेंट में, इसीलिए समय निर्धारित किया गया था और उसके वजह से असुविधा हुई है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और बार-बार क्षमा मांगते हैं। लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया, समय पर ये कार्यक्रम खत्म करना हमारी व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए है। पुनः हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद सर। दरअसल अभी तक तो एक बार भारत के महान प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई। राजनीति के रेगिस्तान में मेरी कविता की धारा सूख गई। और आपने देखा कि ये गंभीर परिचर्चा और राजनीति बिना विवाद का, बिना द्वंद्व का, बिना संघर्ष का तो चलती भी नहीं। तो मैं आमंत्रित करता हूं इस रेगिस्तान में मेरी कविता के संचार के लिए आज के इस महती सभा की अध्यक्षता कर रहे मूर्धन्य विद्वान साहित्यिक
हमारे गुरुदेव प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी को अब आप रेगिस्तान में देखेंगे किसी से एक चमत्कार होगा जो नीरस था वह सरस होगा। धन्यवाद। मित्रों, आज राजहंसों के बीच हंस आ गए। राजहंस इसलिए विषय का नाम ही है, इसमें राज पहले ही जुड़ा हुआ है, राजनीति। लेकिन राज विशेषण है, बाद में हंस संज्ञा है और वह अमर। सभाध्यक्ष का पहला कार्य होता है कि उसके पूर्व जो वक्ता जो बोल चुके हैं कामेश्वर और बड़ा सुनने के लिए। सभाध्यक्ष का कार्य होता है कि उसके पूर्व जो वक्तागण बोल गए हैं उनका समाहार करें। मैं समाहार एक ही वाक्य में सबका कर देता हूँ। यद्यपि मेरे सामने संगीताचार्य बैठी हैं, 3 स्वर होते हैं, मंत्र, मध्य और ताल। इन 3 स्वरों का समागम मैंने इस मंच पर सुना है। मंत्र बादलों का स्वर होता है, मध्य सिंह का स्वर होता है और ताल हाथियों का स्वर। और मजे की बात है कि तीनों ही एक दूसरे के शब्द हैं। अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में भारती ने इसका उल्लेख किया है कि सिंह कभी गरजता है जब बादल गरजते। वो बादलों की ओर देखता है, चारों दिशाओं में देखते हुए देखता है, ऊपर से आवाज तो ऊपर मुंह करके गरज देता है। ऐसे योद्धाओं के बीच आज मैं खड़ा हूं। इन लोगों के संबंध में यही कहना है कि गोबर छोड़ कहत अपराध, स्वामी तुलसीदास ने लिखा है। लेकिन मित्रों, मैंने एक वाक्य कह दिया था वर्मा जी के भाषण में, बहुत कम लोग समझ रहे हैं। यह सत्य अकाट्य, इसलिए कि गोस्वामी तुलसीदास को मैं उद्धृत कर रहा हूं। गोबर छोड़ कहत अपराध, इतना ही आप लोग अधिकतर जानते हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति आप लोग नहीं जानते। सुनी गुण दोष, सुनी गुण दोष समुझी ही साधु। सामने जो है वे साधु हैं, वही आकलन करेंगे कि कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है। यह आकलन आप लोगों का काम है, श्रोतागणों का काम है। आरंभ में वर्मा जी ने श्रोताओं की किल्लत बताई थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने जो श्रोतागण हैं, विष्णु जी सामने हैं, तो बहुत बड़े आलोचक हैं भाई। हाँ, उनको भी देखकर थोड़ा भय हो रहा है, लेकिन विज्ञापन का एक शब्द है, डर के आगे जीत। और फिल्म का गीत एक है बहुत पुराना, वो संजीव जी पर मैं सेट कर रहा हूँ, कुछ साथ नहीं दे। इस आदमी के ऐसा मैंने नहीं देखा, और बहुत निर्भय नहीं है। मैं गलत मैंने कह दिया, अभय अभय शब्द का प्रयोग 2 ही आदमियों के लिए हुआ है, एक गौतम बुद्ध और एक महात्मा गांधी। इसलिए भय जाना ही नहीं है। हमारे सेनानी लड़ते हैं सीमा क्षेत्र पर, तो वे अभय नहीं हैं, निर्भय हैं। उनके सामने परिवार होता है, उनके सामने बाल बच्चे होते हैं, उनके सामने उनका वेतन होता है, उसके लिए उनको मरना है, इसके लिए उनको मारना है। इसलिए वे निर्भय अभय वह है जो भय को जानता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा अभिभाषण मैंने सुना। संजीव जी नहीं लगाना चाहता, बड़ा मस्त है। संजीव के स्वरों में मैंने जो सुना, मंत्र स्वर, मंत्र संगीताचार्य बैठी है, मंत्र स्वर जो होता है वो मध्य और ताल सब को पार कर जाता है। यद्यपि उसे
तीनों स्वरों को साध लेता है वही असल संगीतकार है। और यह कौशल संजीव जी ने दिखाया है। आप जानते हैं कि मैं भी कठोर शब्दों का प्रयोग करता हूं। अधिकतर भाषणों में मेरा पहला यही वाक्य होता है कि मैं कठोर बोलने जा रहा हूं। यह व्यक्ति, इस व्यक्ति ने तो मेरा गर्व भंजन कर दिया, मुझे खुशी है, प्रसन्नता है। यह शब्द कहते हुए इस व्यक्ति ने मेरा गर्व भंजन कर दिया, कठोर शब्द बोला है, अभय शब्द बोला है। तो मेरे पास ये तो समय ही समय होता है अध्यक्ष के पास और मुख्य किसी के पास। दो ही व्यक्ति ऐसे होते हैं सभा में जो जिनको छूट ही होती है कि वे जितना बोले। और मुझे तो ये दावा है कि मैं सुनता रहूंगा तो आप कुछ नहीं। मित्रों, मैं सबसे पहले जो धन्यवाद देना चाहता हूँ वो प्रोफेसर रेड्डी जी, जिन्होंने वैशाली का नाम, वैशाली का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लेते हैं, लेकिन आज जेपी के संदर्भ में मैं वैशाली के उन सत्य अपरिहारणीय धर्म बतला रहा हूं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो बुद्धकूट पर्वत पर जब स्पष्ट थे बुद्ध, तो अपने पट्ट शिष्य आनंद को बुलाकर उन्होंने कहा था, जब अजातशत्रु का आक्रमण वैशाली पर होने वाला, वैशाली को ध्वस्त करने, इसे जानना चाहिए कि सत्य अपरिहारणीय धर्म क्या है। जेपी की संपूर्ण क्रांति क्या थी? जेपी की संपूर्ण क्रांति क्या थी? यही ना, सात बिंदु उसमें भी थे। आप ध्यान दीजिए, राजनीतिक के विशेषज्ञ लोग, 7 बिंदु उसमें भी थे। और उन 7 बिंदुओं में और बुद्ध के इन सब अपरिहारणीय धर्म में कहीं कोई अंतर नहीं। पहला, बुद्ध ने कहा था आनंद, अजातशत्रु वैशाली पर आ रहा है। आनंद ने कहा हाँ, हम देखा, कह लो, वह जीतेगा नहीं। जब तक वैशाली इन सब अपरिहारणीय धर्म का पालन करती रहेगी तब तक वह जीतेगा। पहला क्या था? शासन के प्रति भक्त। पहला, शासन के प्रति भक्त। दूसरा, निर्णयों के प्रति कर्तव्य। तीसरा, वृद्धों का, गुरुजनों का सम्मान। चौथा, नारी और कुमारी दोनों की सुरक्षा। छठा क्या था? सांस्कृतिक संस्थानों की संरक्षा और सुरक्षा। और सातवां क्या था? देश विदेश से आमंत्रित विद्वानों और महात्माओं की विद्वत्ता के प्रति ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा। ये 7 अपरिहारणीय धर्म थे। और मेरे सामने राजनीति विज्ञान के धुरंधर तथा भट्ट सब बैठे हुए हैं। वे बताएं कि शब्द बिंदु जो थे हमारे जेडी के लिए क्या थे? राजनीति थे ना, सामाजिक थे ना, आर्थिक थे ना, बौद्धिक थे ना, शैक्षणिक थे ना, और सांस्कृतिक थे ना, और अंतिम आध्यात्मिक। इससे भिन्न कोई हो तो मैं चुनौती देता हूं, कोई कहे तो ये 7 उधर के साथ और इधर के साथ। मन तो कभी कभी ये जो 7 निश्चय कर रहा है उसको कह देने का मन होता है, लेकिन वे 7 निश्चय कहाँ है, कैसे हैं, क्षमा करना, माफ करना, कहा मैं कठोर बोलता हूँ। अगर बहक जाऊंगा, अगर बहकने की छूट अपने आप को दे दूं तो कहाँ कहाँ जाऊंगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन होगा वही जैसे जैसे उन जहाज के पंछी उन जहाज का काम। तो इसका उल्लेख नहीं हुआ है शब्द अपरिहारणीय धर्म का और शब्द बिंदुओं का उल्लेख अलग अलग थोड़ा होना चाहिए था, क्षमा करेंगे। और एक और तत्व का आप लोगों ने नहीं किया है उल्लेख,
होता है समन्वय का। अब्राहम जॉर्ज पियर्सन जो कहते हैं लोग कि आधुनिक मधुबनी जो है उसका एसडीओ हुआ करते थे और बंगाल और बिहार दोनों का शासन उनके अधीन था, तो उन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी और उसमें सभी भाषाओं का उन्होंने आकलन किया। उन्होंने कहा है कि बुद्ध देव के बाद उन्होंने सर्वप्रथम पहला लोकनायक किसको कहा? पियर्सन ने बुद्ध। लोकनायक बुद्ध, भारतवर्ष का सबसे पहला लोकनायक बुद्ध होगा और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसलिए रामचरितमानस आज भी अपूर्व है कि उसमें समन्वय की विराट चेष्टा है। यही लाइन यही बनी, समन्वय की विराट चीज। समन्वय का क्या अर्थ होता है? झुकना और कुछ झुकने को बाध्य करना। आज जो मैंने संजीव की विनम्रता की प्रतिमूर्ति देखी है, झुकना देखा है, तो मुझे अपने आप पर लज्जा महसूस हुई कि मैं इतना नहीं झुक पाता, उसके प्रति इतना नहीं। चार पंक्तियां मैंने किसी भाईला में आए थे राजनीति विज्ञान में, तो चार पंक्तियां अभी तक इस शख्स को याद है और उसने लिख रखी है। तो ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा आज हम इस स्थिति में हैं, जिस मनोभाव में हैं, वह किसके कारण? उस समन्वय के कारण। नारा था ना, जाति पात को छोड़ो तिलक दहेज को, यही नारा संपूर्ण क्रांति का मुख्य नारा यही था, जाति पात छोड़ो तिलक दहेज छोड़ो। किसने छोड़ा है? बहुत सारे विकट प्रश्न। तो समन्वय की बात मैं कह रहा था ना, तो समन्वय तो झुकता नहीं है और झुकाता नहीं, वह आदमी नहीं। नमनते, सुनिए, नमनते ना नमनती, ये आतताई कौन है पता है? किसी का वध करने वाला नहीं, गर्दन काटने वाला नहीं। आतताई किसको कहा गया? नमनते ना नमनती, ये जना आतताई। झुकने वाले के प्रति जो झुकता नहीं है वह आतताई। और आतताई इंदिरा गांधी की जयप्रकाश को झुकने के आगे नहीं झुकी। तो मनुस्मृति में क्या कहा कि आतताई को क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? इसीलिए ना मनुवादी लोगों को गाली देते हैं, बोलो मनु को गालियां कम को अधिक कम मिलती है। इसीलिए कि मैं जो सुनाने जा रहा हूं उसको सुनिएगा तो कम पायमाल हो जाएंगे सब लोग। क्या कहा? आतताई के लिए झुकने वाले के प्रति जो झुकता नहीं है वो आतताई है। और मनुस्मृतिकार ने क्या कहा? गुरुवा, गुरु हो, बाल वृद्धन हुआ, बच्चा हो छोटा सा, बूढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बाल वृद्धन हुआ, ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण क्यों न हो, बहुत कम और बड़ा विद्वान क्यों न। गुरुवा, बाल वृद्धन हुआ, ब्राह्मण हुआ, बहुत आतताई मायांतम। जो आतताई को तक आ चुका है, हत्या देवा अविचार्यम, बिना विचारे उसकी हत्या करो। उसके बाद सोचना होगा तो किसकी गुरु, किसकी ब्राह्मण, किसकी विद्वान, किसकी बच्चे की। आज बच्चा जो है किशोर 13 वर्षों का रेप करता है, उसे माफ कर दिया। क्या बात! अरे भाई, आप लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, राजनीति विज्ञान के छात्र हैं आप, लेकिन 1935 ने क्या कहा? दिनकर की बड़ी चर्चा हुई और दिनकर को मैं जब उद्धृत करने लगूंगा तो कहा 50 घंटे लगेंगे। आपने कामायनी को सुना? कामायनी का एक पंक्ति सुनिए जो 1934-35 के आसपास लिखी गई। क्या लिखी गई? शापित हो तेरा प्रजातंत्र, तेरा प्रजातंत्र
कुमार झा, हिंदुस्तान टाइम्स, और प्रमोद गुप्ता जी, फिर UNRPTI, आदरणीय मुकेश कुमार झा, प्रभात दास फाउंडेशन, और ये लोग हमारे बीच आए हैं। सर्वप्रथम विष्णु कुमार जी से तो हमारा परिचय बहुत दिनों से है, स्कूल के दिनों से है। मैं दूसरे को हम दोनों जानते हैं। और फिर प्रमोद कुमार गुप्ता, मुकेश झा जी, प्रभात दास फाउंडेशन से हमारा कोलैबोरेशन रहता है। हम इन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आभार प्रकट करने के लिए राजनीति विज्ञान विभाग के वरीय प्राध्यापक श्री मुकुंद बिहारी वर्मा जी आमंत्रित हैं। सर मंच तक आने का कष्ट करेंगे और उद्बोधन के लिए मैं भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। इस औपचारिकता के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है अपने विभाग की तरफ से। हमारे संगठन सचिव ने मुझे ये दायित्व दिया है। इस संबंध में समय तो बहुत लिमिटेड है। जो समय दिया गया था उसमें भी मैं चाहूंगा कम में समय दूं। हमारे भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने, जो कि भारत रत्न भी थे, एक वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत किया। हम उनके कुछ बातों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, कई लोग उनके बहुत बातों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनको पढ़ना, जानना, समझना जरूरी है अगर हम भारत में करना चाहते हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करता हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी का, जिनका लगातार मार्गदर्शन, सहयोग, समर्थन हमें मिलता रहा। और आज अचानक किसी कारण से, जरूरी कारण वो नहीं आ सके, लेकिन वो लगातार हमारा संपर्क बढ़ाते रहे हैं, हमारा समर्थन करते रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में ही, उनके सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो पाया। तो he is not physically with us, but his idea इस कड़ी में मैं आगे धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा सर का, जो कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के लगातार महासचिव रहे हैं और राजनीतिक विज्ञान के विषय को और राजनीतिक विज्ञान के शिक्षकों को उन्होंने एक नया मुकाम दिया है, जिसकी चर्चा हमारे विभाग अध्यक्ष महोदय कर चुके हैं। और हमारे अभी वर्तमान में हमारे कुलपति भी हैं, लेकिन उन्होंने आकर के हमारा सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। हम उनके आगमन से आह्लादित हैं और हम उनके कृतज्ञ हैं। मैं थोड़ा सा ये भी याद दिला दूं, हम लोग तो फरवरी से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फरवरी में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस किया था गांधी पर, उसमें वो आने वाले थे और तभी से बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारी आस पूरी हुई। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी साहब का, जो कि राजनीतिक विज्ञान के पुरोधा है, यूजीसी के मेंबर रह चुके हैं और वर्तमान में वो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के कुलपति महोदय हैं। तो उनके आगमन से भी हम लोग का हौसला बढ़ा है और उत्साहवर्धन हुआ है।
रामेश्वर झा जी का, जो कि वर्तमान में स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं, यहाँ कई लोगों के गुरु रह चुके हैं और राजनीति विज्ञान में उन्होंने कई किताबें लिखी है। ही इज नोन फॉर हिज बुक मैथमेटिक्स ऑफ पटेल, हिंदी में भी उनकी किताब है विद्युत बिहार, उससे पहले उनकी किताब आई थी बिहार का उत्कर्ष, उसको पढ़ने का मौका मिला आपको और वो हमारे बीच है, वो हमारे अंग है वो, लेकिन फिर भी वो आए, आशीर्वाद दिए, ये इसके लिए हम उनके प्रति आभार करते हैं। प्रोफेसर एम एस वर्मा सर, राजनीतिक विज्ञान की पकड़ बड़ी बनी है और उन्होंने कई जनरेशन के विद्यार्थियों को पढ़ाया राजनीतिक विज्ञान, हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान भी किया है और उसे उनके प्रेजेंस से ही हमें प्रेरणा मिलती रहती है। कंप्लीटली डेडिकेटेड लाइफ टू द टीचिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार वर्मा जी का, हमारे हेड साहब ने उनके बारे में बताया, वो इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन बिहार सर्किल, बिहार ब्रांच के IIPA उसके बिहार ब्रांच के वो सचिव है और उनके नेतृत्व में बिहार ब्रांच ने एक नई मुकाम हासिल की है, इसलिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार वर्मा। और अध्यक्षता कर रहे हमारे पुरोधा, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, उनके रिटायर किए हुए बहुत साल हो गए हैं, फिर भी उसमें उनमें इतनी ऊर्जा है, इतना जोश खरोश है और ज्ञान की जो गहराई है उससे हम लोग बहुत अनुप्राणित होते हैं। तो हमारे अध्यक्ष, आज के अध्यक्ष प्रभाकर पाठक सर, हम आभार व्यक्त करते हैं हम अपने विभागाध्यक्ष को प्रोफेसर जितेंद्र नारायण सर, he needs no introduction, वो जो रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लगे रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, लेकिन उन्होंने रात दिन एकदम सिंगल हैंडेडली उन्होंने पूरे अपने माथे पर ले लिया और हम लोगों के पीछे पीछे चलते रहे, तो इससे कार्यक्रम सफल हो पाया और हमारे एनर्जेटिक, डायनामिक, यंग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर भुवनेश्वर यादव सर, और ये भी हमारे हेड के साथ मिला के चलते हैं और वो भी किसी परिचय के मोहताज। इसके अलावा जब विभाग की चर्चा हुई, इसमें तो रैंक का हम ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जब विभाग की जब चर्चा हुई तो विभाग की बात यही खत्म करते। हमारे विभाग में जो स्टाफ, प्रताप नारायण सिंह बड़ा बाबू, कपिल है, विकास है, ये लोग भी रात दिन काम किया हम लोगों के साथ, तो इसीलिए काम इम्पोर्टेंट है, नॉट रैंक, वो कितना काम किया, इसलिए हम उन तीनों के प्रति, हमारे राजनीतिक विज्ञान विभाग के जो स्टाफ हैं, प्रताप नारायण सिंह, कपिल और विकास, उन लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे विभाग में, जैसा कि हमारे हेड साहब ने बताया, हमारे विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर है, डिफरेंट कॉलेज से है, प्रेजेंटली दे आर ऑन डिप्यूटेशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसमें से देखिए नाम करना जरूरी है, इसके आलोक रंजन जी है, ये भी लगे टेक्नीशियन है, रिपोर्ट्स है, कंप्यूटर वाला काम बहुत सारा करते थे, समस्तीपुर वाला भी काम करते हैं। हमारे रंजन जी है, रफी कुमार रंजन, समस्तीपुर कॉलेज में हमारे यहाँ डिप्यूटेशन पर, तो वो तो हमारे खजांची भी है और बहुत सब काम करते हैं, हर कंप्यूटर का भी काम करते हैं, तो इसलिए यंग एनर्जेटिक जो होता है सपोर्ट मिला हमको। श्रीमती नीति कुमारी जो बिहार से कार्य पर स्थापित थी, अभी टीचर है, तो उनका भी काफी योगदान रहा है। सबनम कुमारी इसके सवाल नहीं है, ये सबनम कुमारी है, इसके सवाल नहीं है। ओम कुमार सिंह, उन्होंने भी काफी काम किया है, आज अदालत को नहीं आ पाए, बहुत विवाद है इसलिए। इसके अलावा हम अपने विभाग के शोधार्थी जो कि अभी शोध कर रहे हैं, 11 भी हैं, वीडियो रिसर्च फेलोशिप मिलता है यूनिवर्सिटी से, मोहम्मद सद्दाम है ना, हमारे हेड साहब भी, हम सभी लोग उसके काम से बहुत प्रभावित है ना, वो बहुत सिंसियर, बहुत इंटेलिजेंट।
इन लोगों ने भी अच्छा काम किया है। इसके अलावा कई लोगों ने काम किया शोधार्थी में, जिसका नाम मैं नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अपने डिपार्टमेंट के बाहर दरभंगा में कुंवर सिंह महाविद्यालय के विभाग डॉक्टर जय कुमार झा, उन्होंने भी काफी काम किया है। इसके अलावा हमारे जो अभी अति विशिष्ट अतिथि है सचिव कुमार शर्मा सर, उन्हीं के विश्वविद्यालय के शोधार्थी है श्री विजय शंकर चौधरी, पीएचडी कर रहे हैं। उन्होंने हमारा काफी योगदान किया है, काफी काम किया है, आपने मेहनत किया। इसके अलावा स्नातकोत्तर पीजी के छात्र हैं, इसमें पीजी का कुछ फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, कुछ थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। तो वो सब छात्र में हेड साहब की चर्चा कर रहे थे, सिद्धार्थ राज, सनी कुमार, दीपक कुमार झा, संदीप कुमार चौधरी, तैयबा और मेघा कुमारी, उन्होंने ये बनाया है, रंगोली बनाया है। तैयबा और मेघा कुमारी, शशि, नंदनी, नेहा, प्रदीप कुमार, केशव कुमार चौधरी, विक्की, रुक्मिणी कुमारी, प्रीति कुमारी, इन सब लोगों ने काफी काम किया है। और हम प्रेस कर्मी, मीडिया कर्मी, वो जो हम जो कुछ भी करते हैं उसको समाज में ले जाते हैं और हमेशा हमको अच्छा कवरेज मिलता है। हमारे हेड साहब का भी इसमें योगदान है, लेकिन रईस हो जाता है मीडिया कर्मी को, जो हमारे कार्यक्रम को काफी फैलाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का नाम छूटा है, हमारे जो एलुमनस है श्री विवेकानंद झा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, सौभाग्य हमारे बीच है, और हम खुद पर राज है, हमारे एलुमनस रह चुके हैं। इसके अलावा संगीत की विभागाध्यक्ष लावण्य कीर्ति सिंह, इसके अलावा प्रोफेसर पुष्पम नारायण संगीत और नाटक विभाग की हेड है, और हमारे डीन साहब जो कि गुजर पड़े चले गए हैं, लेकिन वो थे हमारे उपस्थित थे, हमारे डीन साहब डॉक्टर गोविंद प्रसाद सिंह, उन्होंने 20 से ज्यादा किताबें लिखी है, समाजशास्त्र प्रोफेसर है, हमारे डीन भी है। इसके अलावा कौशलानंद श्रीवास्तव कुलपति महोदय नहीं आए, लेकिन कुलपति महोदय के सब काम को जब बातचीत करने वाले है ना, कि विश्वविद्यालय की धुरी है ना, श्री कौशलानंद श्रीवास्तव, तो वो हमारे पधारे हुए हैं कुलपति के बिहाफ में, तो इसलिए हम उनका भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे जो ऑडियंस है, जो श्रोतागण है, कोई कार्यक्रम होता है तो श्रोता मिलेगा, इसलिए हमारे जो श्रोतागण है, स्टूडेंट्स है, छात्र है, टीचर है, पार्टिसिपेटेड, उनका नाम मैं नहीं कर सका, उन सभी लोगों को हृदय से आभार। थैंक यू ऑल। थैंक यू प्रोफेसर वेरी मच सर। मुझे लगता है कि आप 2 मिनट का वक्त दें। एक तो राष्ट्रीय गान है और उसके बाद ये ऐतिहासिक क्षण को हम कैद करना चाहते हैं कैमरा में, इसलिए फोटोग्राफी का सेशन भी होगा, इसलिए 2 मिनट की अनुमति चाहिए। अब राष्ट्रीय गान के लिए आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं प्लीज। छात्रा फोटोग्राफी के लिए सभी छात्र पीछे खड़े हैं।
पलटेंगे, आप देखेंगे छात्राओं को आगे आने देंगे, छात्र पीछे जाएंगे, छात्राओं को अरे सभी छात्र हैं क्या? अरे ये दरभंगा के नागरिक भी हैं, आइए सर, सभी लोग आ जाए, छात्राओं को आगे आने दो, छात्राओं को आगे आने दें। अच्छा, शांति बनाए रखें। विजय, आप देखिए फोटो खींच रहा है कोई? आप नहीं आ रहे हैं सर, आप नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। धन्यवाद। अरे भाई समन्वय हो सकेगा? हो जाएगा सर। गणेश जी यार सब कुछ हो सकता है। विजय इधर आ रही, सनी इधर आ जाओ, सर आए क्या संदीप आ जाओ। यूजीसी के मेंबर भी हैं सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और सर स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल भी है, तो हमको क्या चाहिए? इसको रखेंगे सर हम कैमरा हो गया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा। हम ऑन करने चले, अभी बंद कर दिए। One is Dr. Manoj Kumar Mishra, Vice President and Professor, British American University, Florida. Second, Dr. Wakari Nagari, Vice President, Ethiopian Civil Service University, Addis Ababa, Ethiopia. Professor Mihir Boles, National Institute of Design, Ahmedabad. Professor Kanhaiya Jha, Secretary, Tribhuvan Teachers Association, TRM Campus, Unit Birgan, Nepal. Professor S.N. Singh, we have very distinguished scholars in this session, and it will be very nice to hear them, listen them, and their ideas. It is very important for us that a person from Ethiopia will speak on it, or the ideas of it. I have known him for last 6-7 months. He is a believer of peace, and he speaks on it. Therefore, he was agreed to participate in this seminar. Dr. Mishra is very much from India, very much from Bihar, and I am happy to say that he is very much from Bhojpur branch. He had been teaching in Amity University. Later he was selected as professor in Ethiopia, in
European Civil Service University. After working there for 2-3 years, he shifted to British American University, Florida. Florida falls in the southern part of USA Hello. and is a very, very important university for the students belonging to Hello. downtrodden sections. हाँ. कौन बोला? Mishra is basically an economist, an expert in econometrics, that is economics and statistics. Very detailed. Besides this, he had been secretary of Forum for Interdisciplinary Research Method. It is also an international organization, and he has been working on how to develop research ability among the young teachers, students, and from the Forum of Indian Institute of Public Admission, Bihar Regional Branch, we had organized 2 lectures, one by Professor Mishra, bearing title Developing Quality Research Paper, how to write a quality research paper. And then the other lecture was delivered by Professor Yatindra Singh Sitodia, Director of Institute of Social Science Research, Madhya Pradesh. He spoke on how to prepare socially relevant research. I don't know how much you are interested in this research method business, but they are very much methodical and academic. We will love to hear them. First of all, Samir Bhole, National Institute of Design, Ahmedabad, will address you. I'm very happy that you have not only listened to my words, but abide and followed it. I'm very happy that the students are disciplined and teachers are interested in academics. It is 10 minutes to begin with the foreign speakers. So in this 10 minutes, consider it 0 hour. Consider it 0 hour. Anybody can say anything. Chair is not bound to respond, but anybody can have any issue. Do you know what is 0 hour? I think all the students are of political science. Do you know what is 0 hour? Excellent. I have found very few students having idea of 0 hour. I have written a book in Hindi, Shunyakal Siddhant Evam Vyavhar. This book is published by government agency and was awarded by Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India. The beauty of 0 hour is that it is not regulated. It provides ample opportunity to the members to express and ventilate their ideas. You know that every business of the house is pre-decided by the speaker. And it may happen that somebody wants to say something, or something happens overnight. And overnight and of very important public interest. So this time of 10 minutes is open for all those. So it's very, very important bit of parliament
procedure and it provides parliamentary justice to its members. Has any other parliament in the world such kind of provision? There is no constitutional provision. There is no mention of 0 hour in rules of parliamentary procedure. But there has been a practice that question hour ends at 12, and after 10 minutes, other business happens. In between that period, people means less or parliamentarians started raising issues, and some of the issues became the main issue. Some of the issues became the main issue raised during the 0 hour. So our speakers decided to record the discussions of 0 hour. Sunne Kali ki Charcha. It is recorded under the heading of Sunne Kali ki Charcha. And that course, there is no fixed period known to us. It was just 1967 that press branded as NGO. And it became, sometime it became meanness to the parliamentary procedure. We took more time than 10 minutes when it was discussed in presiding officer's conference of legislators that it should be checked. But it was found that this is the boon to such members who are in very less number in the house, even single man in a party. And when the time is allotted, it is allotted according to the strength of the political. So small groups or independents or a single man or backbenchers do not get the opportunity to ventilate their ideas. So this hour, it is not of an hour, it is per minute, it is called hour. This hour, they can ventilate their ideas. The beauty of its चल रहा है वो अलग साइड लाइट लोड नहीं ले रहा है बंद हो जाएगा May I please unmute your mic. What is that? उनका आवाज नहीं You are not audible, sir. Hello. Hello. Can you hear me now? Yes. Okay, I'm audible. Let me try once again. Just a minute. Just give me a minute, please. We are very glad to. Okay, now is it? Can you hear me now? Can you hear me now? आप सुन सकते हैं मुझे? Yes sir, yes sir. Okay, okay, thank you. Gaurav हो गया, वो connect हो गया. Thank you, Gaurav. So first of all, I would like to express. Can I start now, sir? All right, thank you very much. First of all, I would like to express my deep thanks to the Ellen Mithla University, the Vice Chancellor, and my good friend, Professor Jiten Narayan, for having organized such a wonderful conference on one of the most eminent political personalities of our times, and probably all times, we can say, those who believe in him, in Jayaprakash Narayan. I think it's a great privilege to talk about a fearless revolutionary, a freedom fighter, a firebrand leader, political thinker, and above all,
a charismatic political personality whose thoughts and actions tremendously influenced Indian politics, both in the pre and post era. Before saying anything about him, about this great personality, I must say that I feel greatly humbled and remember him with all the reverence. I think the way Gandhi's mantra of Satyagraha influenced millions of minds during the freedom struggle, JP's call for Sampurna Kranti, I would like to begin from his experiment with Sampurna Kranti. JP's call for Sampurna Kranti, total revolution in English, during his famous movement in the early 70s, galvanized Indian politics and changed its nature, narrative, and direction forever. So much so that the focus of Indian politics, particularly the politics of the Hindi heartland, which I also incidentally belong to, being a native of Bihar, can easily be divided into two eras, the pre and post JP movement era. It not only truncated the all-pervasive political party Congress, but also created counterweight in the form of Janata Party, which later fragmented into several pieces and restrained Congress's political prospects substantially. As far as I'm concerned, my views are concerned, coming from a family whose past two generations had a very special connection with JP and his socialist movement and socialist experiment, I consider this to be a very special occasion, special opportunity to say a few words about him. My late grandfather, Sri Rameshwar Prasad Verma, I would like to recount some of my personal experiences just in order to enrich the program. My late grandfather, Sri Rameshwar Prasad Verma, a freedom fighter, came in contact with JP during the 1942 Quit India movement. He was an intelligence officer in the British Police Service who became a sympathizer of freedom struggle and passed on confidential inputs of the government to JP and his socialist friends, and thus made them evade arrest and punitive actions. However, his surreptitious association with JP and other socialist freedom fighters was noticed by the British government, and he was dismissed from the services and also had to face punitive action. My father, Sri Arun Bhole, a socialist by conviction, a lawyer by profession, and a noted author by erudition, came in contact with JP and other socialist leaders in his early teens and grew up under JP's close ideological shadow and tutelage. Hence, I can say that my knowledge about or information about JP and his persona and his ideological points of view stem from two secondary sources. One, of course, is my father's personal account, which from his renowned book titled Rajniti Meritocracy, which has memoirs of my father's interaction with JP and his political experiments, and remaining from the writings of other eminent scholars like Bimal Prasad and David Selburne and the rest. I personally had the opportunity to see JP twice in my life. In my childhood, I was much too young at that age when I saw him. And I must say that even at that time, I was too enamored by his personality and grace as my father used to be during his early teens when he came in contact with Jayaprakash Narayan. JP's earlier political leanings were towards communism, and like many others, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, अगर माइक आप बंद कर लें बाकी लोग तो मुझे लगता है बेहतर होगा. So I was saying that JP's early political leanings was towards communism, and like many others, he also had a great infatuation of sorts towards the romantic ideals of Marx, Engels, and which he came across during his studies abroad. A romantic infatuation of sorts with Marx, Engels, and even M.N. Roy made him believe that Marxian science of revolution was a surer and faster way as compared to Gandhi's non-violent methods, which were persuasive, which were based on persuasion and would have taken much longer.
to give us the result. Revolution, class struggle, dialectic materialism, dictatorship of the proletariat, all these left jargons and many other romanticized ideas did influence JP during his early political thoughts at the time when he came in contact with their ideas, and continued till he was able to discover something very remarkable. And what he discovered was the tyranny and opportunism of communism. He failed in his efforts to bring the communists on board against the British during the freedom struggle, and later was completely disillusioned with the display of communism in Soviet Russia, which disempowered people and subjected them to a bureaucratic system of power in the name of freedom and equality. For his revisionist views, which questioned leftist dogmas and doctrines, he was even called a fascist, an agent of imperialist, and so on, which interestingly our leftist friends are very good at. So anyway, nevertheless, JP's idea of democracy was against the concentration of power in any disguise. That is something which is very, very clear. So when we are talking about JP and his idea of democracy, this is something at the centrality of his whole political thought. So freedom from exploitation and poverty was another Marxian ideal that appealed to JP, and he was convinced that the purpose of independence should be to achieve the aforesaid objectives. But an astute political thinker and democrat that Jayaprakash Narayan was, he questioned the fundamental premise of communism. He publicly questioned in 1948, and I quote, "Is everything due to economic inequalities? Is capitalism the only evil? Can we entirely depend upon class struggle?" These are some of the very fundamental questions that he raised about his earlier leanings, his earlier association, his earlier thoughts, with which he was influenced, which was communism. And then further, his inquisitive excursions didn't stop there. In 1949, he again asked something very interesting. And I quote, "Does socialism mean solving problems of bread and butter alone, or does socialism also have some other agenda?" So again, a very fundamental question, which is also a question of democracy. Has it only an economic content? And he answered, "I refuse to accept this point of view." Perhaps in his worldview, in JP's worldview, the centrality of people in any political thought was the source of conviction in democracy. So even at the ripe age when he felt India's politics was centering around personality, we are talking about the 1970s, Indira Gandhi era and all that, rather than people who even in the independent India had to suffer from fear, hunger, corruption, and so on, this grand old man decided to rise, and this time against his own government, and put in place an alternative government, which only he could have done. Nobody else has that wherewithal. We have seen many leaders now. So he was an idealist and also a political maverick of sorts, who experimented with different political thoughts, not one. So at times he used to say that I'm a mixture of Marxism and Gandhism, Marxian thoughts and Gandhian thoughts. He experimented with different political thoughts, Marxism, Gandhism, socialism, and yet declined to join power politics. He wanted frontline leaders to denounce power politics, the way Gandhi wanted Congress to be disbanded after it has served its purpose of attaining freedom. You see, but anyway, this is all part of our political history. We may have different points of view about that. His democratic theory, whose scope far exceeds the range of critiques, was a theory of decentralized power. So power must be decentralized. His disgust, and that is what the essence of democracy is about, his disgust for political corruption and misgovernance was obvious, which put Congress party in tight spot. He saw two political models I'm talking about. One, which was running the Soviet Union through bureaucratic elite and other corrupt
and the other was with the corrupt place seekers in India. So his notion, JP's notion of democracy, refused to accept both. He denounced both the models. In no uncertain terms, JP asserted in 1952, and again I quote, "In the kingdom of dialectic materialism, fear makes men conform, and the party takes the place of God." He was trying to present socialism as the right answer to achieve democratic ideals. Even as the founder of socialist movement and the Congress Socialist Party during 1935, if I am correct, JP felt socialism had no meaning without democracy. So even his idea of socialism was deeply rooted into the idea of democracy itself. The way he would have liked to design Indian democracy, and I'm using this term particularly very deliberately because I come from a design institution, and uske baare mein hum baad mein kabhi charcha karenge, but then there is design in everything. Politics also has its own design. So JP felt socialism has no meaning without democracy, and the way he would have liked to design Indian democracy was a bottoms-up approach. And with more participation of people in the democratic process, with more and more honesty and more transparency, which he always found it was lacking in our democracy. So he believed Indian democracy rests on a very narrow base. That base needed to be expanded. So it required to reform and reconstruction of Indian politics, political institutions, to make them more democratic in their approach, in their functioning, both, which still we are fighting to attain. So he kept experimenting and revising his views. Some may like him, some may dislike him, some may just reject him. But the fact remains that his place in Indian politics remains one of great preeminence. That is something which we cannot deny. And finally, I would like to conclude, if with your permission, with the permission of the chair, just take 2, 3, 4 extra minutes. I would like to quote a passage from my father's book because he was an active participant in JP's movement during the emergency period. He was also part of the coordination committee. And this is what he has written in his book, which is also documented part of the history in his famous book, Rajniti Mein Presi. I'm quoting from a paragraph from his book, and I'd like to conclude with that. JP के निवास पे जो आंदोलन चल रहा था, उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो रही थी, उसकी बैठक हो रही थी, उसके सदस्य वो भी थे, और उनके साथ साथ बहुत सारे जो दिग्गज हमारे जो नेतागण थे उस जमाने में, ठाकुर दास बंग, चौधरी बम प्रकाश, महामाया प्रसाद, गुलाम सरवर, तकी रहीम वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग थे। तो उस दौरान, उस मीटिंग के दौरान मेरे फादर ने एक जो कुछ बात जेपी के संपूर्ण क्रांति के बारे में कही थी, मुझे लगता है वो बड़ा मुफीद है, बड़ा मुनासिब है इस मौके पे उसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि जेपी की जब हम बात करते हैं तो उनके संपूर्ण क्रांति से अलग हट के, उसको इग्नोर करके, उसको साइडलाइन करके हम बातें नहीं कर सकते। क्या आइडियाज थे उनके संपूर्ण क्रांति के बारे में। सिल्बर्न जैसे विद्वान वो कहते हैं, डेविड सिल्बर्न, कि माई फीलिंग इज दैट मूवमेंट वॉज नाइदर टोटल नॉर अ रेवोल्यूशन। सो इट वॉज टोटल रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों को सोचने की जरूरत है, उसने कितना रेवोल्यूशनाइज किया। और ये क्रिटिकल क्वेश्चन है जो हमें पूछने चाहिए, हम जरूर पूछेंगे, जानना भी चाहेंगे, विदाउट बीइंग putting any blame on that great personality, because he was constantly making experiments of sorts with the democracy. तो मैं इसकी आपकी अनुमति से ये पैसेज पढ़ रहा हूँ, छोटा सा पैसेज है। उस मीटिंग के दौरान मेरे पिताजी ने जो बातें कही उसको मैं उनके वर्बेटिम में दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के 2 लक्ष्य कहे जा सकते हैं। एक तात्कालिक लक्ष्य जो महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दूर करना और शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाना, और दूसरा इसका दूरगामी लक्ष्य में जो कि संपूर्ण क्रांति है। जनता ने अपनी पूरी शक्ति इस आंदोलन के पीछे लगा दी। कई पुराने लोगों का कहना है कि इतना जबरदस्त आंदोलन शायद उन्होंने आजादी की लड़ाई के दिनों में भी नहीं देखा था। सभी मजहब, जात और सभी तबके के लोग, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, जवान,
सभी इसमें जुटे थे। और मैं भी उस समय बहुत छोटा था, मतलब स्कूल गोइंग था, तो नारे पढ़ता रहता था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और एक आदमी ने उठा रखा है आम आदमी का सवाल। मैं तो समझता भी नहीं था, मैं तो स्कूल गोइंग था। आई वॉज हार्डली 10 or 11 years old at that time when all these things was happening, but they happened in front of me, in front of my eyes. So कुछ memories मेरी भी हैं, वगैरह वगैरह। तो लगातार 3 दिनों तक विशाल प्रदर्शन हुआ, मीलों लंबे जुलूस निकले। लगातार 3 दिनों तक सारा बिहार बंद रहा। फिर भी आंदोलनकारियों की मांग मानने को कौन कहे, सरकार उनसे बात तक करने को तैयार नहीं हुई। तो मैं इसे आंदोलन की नहीं बल्कि सरकार की विफलता मानता हूं, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार को जैसा संवेदनशील होना चाहिए, यह सरकार वैसी नहीं है। इससे यही प्रकट होता है, सुनते हैं विदेशों में लोग केवल काला बिल्ला लगाकर बांधकर उस पर इतना ही लिख दें कि मैं हड़ताल पे हूं, तो इतने ही से वहां प्रशासन बेचैन हो उठता है और हड़तालियों से समझौता वार्ता शुरू हो जाती है। और यहाँ इतना सब कुछ होने के बावजूद सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रही। लेकिन मुझे इसका अधिक रोना नहीं, असल में मैं चिंतित हूं आंदोलन के दूसरे लक्ष्य के प्रति, जिसे आप संपूर्ण क्रांति कहते हैं। इसका उद्देश्य तो यही है ना कि हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाए। जीवन के प्रति हमारा समग्र दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता, हमारे सोचने समझने का ढंग, हमारा तौर तरीका, आचरण, व्यवहार, सब कुछ बदल जाए, निखर जाए। अब अगर संपूर्ण क्रांति की यही परिभाषा है और इसका बिगुल भी बच चुका है, तो इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ जाता है, इस क्रांति के वाहक कौन होंगे? कौन लाएगा इस क्रांति को? जाहिर है हम ही सब लोग जो आज और अभी इस आंदोलन में जुटे हैं। ठीक है, अगर संपूर्ण क्रांति के वाहक हम ही लोग हैं, तब मैं आप सब लोगों से एक छोटा सा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल ये था, हमारे और आपके अंदर इस बीच ऐसा कौन सा तात्विक मौलिक परिवर्तन हो गया है जिसके आधार पर यह आशा की जाए कि समस्त समाज के जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकने की योग्य हम बन गए हैं और अपने अभियान में हम सफल होंगे? यह प्रश्न कर मैं बैठ गया। मैंने देखा कि जेपी की मुद्रा गंभीर हो गई। मैं यहीं पे इसको अंत करूंगा। और संपूर्ण क्रांति के बारे में उनके भी जो विचार थे, जेपी ने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था और शायद वो एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता तो बिहार ही नहीं पूरे देश की एक अलग दशा होती। लेकिन वो संपूर्ण क्रांति वास्तव में जिन लोगों के हाथों से वो क्रांति हुई, जो लोग उस क्रांति के साथ जुड़े रहे, उन्होंने उस क्रांति का बाद में क्या किया? क्या वो सच में क्रांति थी या सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट था? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रेवोल्यूशन एंड अ पॉलिटिकल मूवमेंट। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट होकर रह गया और जेपी के जो बड़े आइडियल्स थे संपूर्ण क्रांति के, वो शायद सफल नहीं हो सके? सिल्वर ने भी ये प्रश्न उठाया, मेरे पिताजी ने भी ये प्रश्न उठाया और कई सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रश्न उठाया। लेकिन इन सब को समझने के लिए हमको एक बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव के साथ जेपी के पूरे विचारों को, उनके पॉलिटिकल थॉट्स को, उनकी आइडियोलॉजी को और उनके ग्रेटनेस को उस लेवल पे जाके समझना पड़ेगा। हम गांधी ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, भूल हुई, गलतियां की। नेहरू के भी एक्सपेरिमेंट्स भारत के साथ बहुत अच्छे नहीं हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ अच्छे नहीं हुए। इसकी वजह से इन लोगों की जो महानता थी, जो समाज में देश के लिए उनका जो एक पैशन था, जो आग थी, वो कभी भी कम नहीं होती, चाहे वो नेहरू हो, चाहे गांधी हो, चाहे जयप्रकाश हो, चाहे दूसरे लीडर हो। तो मुझे लगता है कि शायद हमको एज ए ह्यूमन बीइंग भी उनको देखने की ज़रूरत है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि उनके विचारों में सच्चाई कितनी थी और उस सच्चाई के साथ वो कहाँ तक पहुँच सके। बहुत समय मैं नहीं लूँगा, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी हैप्पी that you have wonderful, not only wonderful audience, but also wonderful speakers, a galaxy of wonderful speakers who are going to address you today, and you will have a fascinating experience listening to all of them. So, thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Namaskar.
Now I call a person who is well traveled, who has taught in India, taught in Ethiopia, and taught in Florida. वे समय का प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी, are you online? मनोज कुमार जी? Yes, sir. I'm present. I'm here. Yes. So let me introduce you. मनोज मिश्रा जी बहुत ही ब्रिलियंट इकोनॉमिक्स हैं, मैनेजमेंट साइंटिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं और विश्व के कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में अपना योगदान दे चुके हैं। इनकी मेरी मुलाकात आज से 20 साल पहले MIT यूनिवर्सिटी में हुई थी। MIT यूनिवर्सिटी में ये एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। वहाँ से इनका चयन इथियोपिया के लिए हुआ और ये चले गए। इनके जाने के बाद मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन इनकी लेखनी प्रकाश में आती रही, मैं इससे परिचित होता रहा। इनकी लिखी हुई किताबें मैनेजमेंट कॉलेजेस में प्रेस्क्राइब है। वहाँ से पता नहीं इथियोपिया से कब ये निकल लिए प्रोफेसर एंड वाइस प्रेसिडेंट। हम वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं तो उसको आप ऐसा समझिए प्रो वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ब्रिटिश अमेरिकन यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा। आप जानते हैं फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी भाग में है, जहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वहाँ इन्होंने पढ़ाया और रिसर्च किया। इनके कई आर्टिकल हमने अपने जर्नल में छापे हैं और विदेशी जर्नल्स में छपे हैं। इनके लिए विदेशी नहीं था, हम लोगों के लिए विदेशी। इसके अलावा ये सेक्रेटरी हैं फोरम फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मेथड, और ये पिछले 2 साल से ये फोरम काम कर रहा है और इसका लाभ हम बिहारी शिक्षकों को, बिहारी छात्रों को मिल रहा है। पिछले 2 महीने के अंदर मैंने इनका एक लेक्चर कराया था, डेवलपिंग क्वालिटी रिसर्च, और पूरे भारत ने उनका ये पेपर सुना था और लर्नेड लोगों ने यह कहा कि अगर ये फॉर्मेट हमको पहले मिलता तो हम इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए आर्टिकल लिख पाते। तो इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मिश्रा जी, उतने ही सरल हैं, उतने ही सरल हैं। इसलिए मैं अब आग्रह करूंगा प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी, या आप अपने संभाषण से हम लोगों को संबोधित करें और लाभान्वित करें। प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा। Thank you so much, sir, for very nice introduction about me. So today it is the birthday of one of the great, not Indian leader, but the international leader, the leader of the people, the leader of society, the leader who believes in the progress to all and complete movements. So in this today, as so Honorable Vice Chancellor of this LN Mithila University, Darbhanga, Professor SP Singh, the President of this conference, Professor Jitendra Narayan, and HOD Department of Political Science, LN Mithila University, Darbhanga, the convener of this conference, co-convener, organizing secretary, and all the delegates from the different parts of India and abroad, and particularly Dr. R.K. Sinha, the Secretary, IIPA Patna, and Professor Jitendra Narayan. I am very obliged and I feel very happy to be the part of this great international seminar on the very pertinent topics on the birthday of a great global leader, Jai Prakash Narayan,
The topic is Jayaprakash Narayan and his experiments with Indian democracy. So in this today international seminar, I will discuss on the Jayaprakash Narayan, a developmental vision. I will discuss on this. So issues to be discussed in today my presentation. First of all, I will discuss what is the development. Then I will discuss the direction of international development, in which direction international development is going. Third one, I will discuss JP Democratic Development Model. That is the very important, and that will give the new direction to the world developments. And I will also discuss the development, nationalism and internationalization. In spite of this, in the final, I will discuss the Jayaprakash Narayan and Sustainable Development Goal fixed by the UNO. So all those issues I will discuss in today my lecture. So first of all, what is development? What is development? Development means what are we thinking? In the general terms, it is said that the desired development, the planned development is the development. The modernization of the economic is development. In the terms of economics, we can say that increase in the national income, increase in consumption level, saving, investment, trade and employment opportunities, that is the development. Means generally we can say that increase in the per capita income, increase in the employment opportunities, the consumption level of people, the saving, the investment level, the trade, all those things, the people consider development in economics. But in the case of social development, it is focused on the education and health. There should be the technical and professional education, the desired education to all the people of society. In spite of this, the health of all the people should be good, because education and health are the social things, and that is beneficial for all the society. That is the social things and not the individual thing it is considered. In spite of this, when we discuss about the political development, that is concerning to the good governance, state and democracy. Any decision of the state is taken by the wishes of the people, and the people who are leading the democratic society should follow the wishes of all the people, and they should be the representative of all the people, and they should focus on the inclusive development and inclusive democracy with the good governance in all the parts of world or a particular state or particular region. And a state should play the dominant role in making the harmony of all the social, economic and political variables, all tending to the development of society and inclusive democracy and inclusive growth. In the case of cultural and religious development, we believe on the Satyameva Jayate, that is concerning to the development of all the people on the society living in the any parts of the region of the world. In spite of this, we can also think about the environmental development, that is concerning to the sustainable development. The development should not be seen at the present time only, that be seen for the future also, for our coming generation. So in this case, we have to focus on the regional development also, and the development should be the homogeneous development, balanced development, development of all the country, development of all the state, all the continents, all the parts, even the developed part and underdeveloped part of region, remote areas, backward area, cities, rural area, all the parts, there should be development. That is the development. So in this case, it is also important to develop the natural resources. That is the need of our, and we should not try to dominate on the nature. Nature is not our servant. We should make the we should think that nature is our friend philosopher, and we should believe on the neo-determinism, that everything is not possible in the world and everything is not impossible in the world.
So we should have to balance with the nature without making the good harmony with the nature. We cannot think for the any development that is concerning to the democratic developments. So finally we can say that that should be related to the inclusive development and inclusive democracy, and the benefit of development should reach to the poorest person of society. That is the importance. The gap between the rich and poor should decrease in the path of developments. So finally we can say that development can be managed in better way for sustainability. Sustainability is very development, very important. Today we are seeing that from maximum we are seeing that in maximum country the democracy is not strong. So this is the need of our, the democracy should be strong, and the participation of all the section should be in the democracy. Therefore the belief of the people should increase in democracy, and democracy should, the state should care all the people of society balancely, their inclusive development. That is the important need. So it should be based on the balanced, justifiable, and not only justifiable, there should be viable development. That is also the important in the case of development. So to achieve the objective of all those development, Chanakya has told that udoge nasti daridram japato nasti patakam मौनेनः कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। जहाँ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित होते हैं वहाँ दरिद्रता नहीं होती है। परमेश्वर का जहाँ नाम लिया जाता है वहाँ पाप नष्ट हो जाते हैं। मौन धारण करने से कलह नहीं होता, तथा जो व्यक्ति सदा सतर्क और जागरूक रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। जयप्रकाश नारायण has think, so we can say that there is no poverty where there are many industries. There are no sins where the name of the God Almighty is always recited. Where people maintain silence, there is no quarrel, and where people are alert and watchful, there is no fear. So in this case, we can say that for the solution of, for achieving the democratic development, there is need of the development of industries in all the parts of India and in all the countries of the world, particularly in the underdeveloped countries, because without achieving the economic democracy, we cannot achieve the political democracy. That is also the important. So social democracy, political democracy, economic democracy, religious democracy, cultural democracy, so all type of democracy are essential and equally important for the balanced, justifiable, and viable development of society, and for giving the employment to the people, for the development of all the people of society, as like the concept of the Sarvodaya, on which the thoughts of Jayaprakash Narayan was based. So all those things are very important. So now we are discussing in which direction the international development is going. So we are seeing that at the international level, North America is highly rich, South America is poor, European countries are rich, some part of Eastern Asia are rich. In the south part, only Australia is rich, but maximum of the country of the Asia are poor. And when we discuss about the African country, particularly the sub-Saharan country, they are very poor. This is the situation of world. That is saying that there is heterogeneous development approach and there is heterogeneous development pattern at the global level. And the global society, the development process is going to be blind. That is the heterogeneous development. In the case of continents also, when we discuss in the case of country, there is also heterogeneous development. Some countries are very developed while some countries are very poor. As we can say that the 20%, only 4%, only 20%
20% rich people of the world, the highest rich people of the world have 74% income of the world, while second 20% rich people have about about 15% income of the wealth, while 20, 20 and 20, 60% people of the world have only about 12 to 13% income of the world. This is the condition of world disparity. So now in the case of India, we are also seeing that some states are rich while some states are comparatively very poor. So that is also the heterogeneous development. In the case of urban and rural areas, we are seeing also not democratic development. Most of the population live in the villages while very less employment opportunity and very less income in the rural areas also, where the main livelihood is the agriculture. While if we discuss about the villages of American country, Canada and USA, the villages are also very developed. In the village of America, in the villages of the Australian countries, in the villages of European countries, the villages looks like the cities. All infrastructural facilities, the road facilities, transportation facilities, uh, electricity facilities, education, hospital, colleges, schools, banking, financial service, market, industries, all those things have been developed in the villages also. Where, but when we discuss about the developing country, we find that in the developing country, the condition of villages are very poor. They are lacking the democratic development in the underdeveloped and developing country. This is the situation. And at the world scenario, we are also seeing that previously the objective of the industrialist was the profit maximization. Uh, Before this, the objective of the people was need maximization, then tends to the profit maximization, and now it has tend to the greed maximization. And I think greed can never be maximized. This is the main cause of conflict among the countries at the global level, at the individual level, and that is the concept. And this intention of the greed maximization is disturbing the social harmony of the society of any parts of the country and also in many countries also. So that is tending to Excuse me, sir. Excuse me. on the Let me intervene, please. The slot allotted to every speaker is 20 minutes, and you have 4 minutes to conclude. So please pardon me. 8 minutes, 8 minutes, sir. Sir, I thought that I have to speak more because Dr. Wagari Negari is in the meeting of Ministry of Education. Okay, sir. Okay. You can keep the Wakari Nagari share. Yes, yes. So I can take only 18 minutes, possible? More 18 minutes? Hello? You have 10 to 12 minutes more. Okay, okay. Thank you. 12 minutes. Okay, sir, no problem. So now we are seeing that the many countries, just like the China, is interested to capture the world resources. That is the problem. And that is posing the question on the democracy. Democracy also, and this extension policy of development is a danger to all. So that is leading to the conflict, war, and mental peace losing of the people at the world level. And natural resources are being in the crisis. The climate is also changing, and development will be in danger in the future also. So now the case is that JP Democratic Development Model I am discussing. Jayaprakash Narayan was believing in the democracy and poor in the center of development. This was the view of Jayaprakash Narayan, and that was concerning to the inclusive democracy, healthy democracy, sustainable democracy, and sustainable development also. His belief was his his belief was in Sarvodaya, that is the progress to all, inclusive growth, that was focusing on the bottom poor, education and skill development and attitude development of all the people of the society also.
that is also related to the employability of the people, the health issue, the natural rule, the clean, green and healthy and wealthy world. He was believing in this approach, but all those things with the democratic mode. His views were also concerning to the Swadeshi also because he was Gandhi also. So he was believing in the Swadeshi Indianization, entrepreneurship development, a small and cottage industry development, reduction in disparity. He was in the belief that when a small and cottage industry will be opened in the village, established in the village, and entrepreneurship development will be, there will be reduction in the disparity, and that will tend to the homogeneous development in the society. So his view is seen as the people development. His development was the people's development. So first he was believing on the national development, but secondly he was also believing on the international development. He was believing from nationalism to globalization. Jayaprakash Narayan was believing in the nationalism to globalization, and he was focusing more problem of the national issue that are the very important for the point of view of Jayaprakash Narayan. That is also believing on the Gram Swaraj, decentralization of power, rural development was very important for the point of view of Jayaprakash Narayan for the democratic development and employment in the village, infrastructural development in the village, homogeneous development, he was in the favor. So this JP democratic development model is very important for the inclusive development of rural as well as urban area and all the area of the nation also. That is believing on nationalism to globalization. He was more focusing on the national problem, then he was thinking about the global problems also. So in the case of development, nationalism and internationalization, we can say that according to the JP, national and international level both are important, and duties and responsibilities of the people are more important than rights, and therefore it will tend to the social harmony. He was saying that the right is important, yes, of course, but duties and responsibilities are more important than right, and all the people of society should become the responsible person, responsible students, responsible government, responsible farmer, responsible teacher. Even he was seen as a responsible consumer, responsible producer, responsible government, responsible citizen. All those things he was thinking as a responsible to achieve the democratic development. As a national citizen, we should think ourselves a national citizen as well as we should also think ourselves as a global citizen that will lead to the reduction of the global conflict and the global and national problem will be solved. So humanity and justice is different. He was believing in humanity and justice, and by this path the development can go. So country as a part of global society, he was seeing that. And not only this, he was also seeing that all the parts of a country are integrated and are related to the national objective. And the country is also a part of global society. So he was believing nationalism to globalization. So country should be seen as a part of global society, inclusive development, that is way of the development of Jayaprakash Narayan. He was in the view of respect to the others and get respect from others. He was also believing in this fact. So now in the case Jayaprakash Narayan and Sustainable Development Goals. The Sustainable Development Goals, the 17 objectives have been fixed at the global level. 17 objectives. Before this, the Millennium Development Goal, where there were only 8 objectives. And the time period of Millennium Development Goal was 2001 to 2015. But Sustainable Development and Millennium Development Goal was only concerning to the developing and underdeveloped country.
but the sustainable development is concerning to underdeveloped, developing and developed country all. That is concerning to the development of water bodies also, land bodies also, all the parts of the world, the global developments. So when we discuss about the views of Jayaprakash Narayan was a global leader. All the people from rural areas, the people from urban areas, the students, the farmer, the businessmen, the industries, the teachers, even all the caste of society, all the religion of society, believing on the views of Jayaprakash Narayan. So Jayaprakash Narayan was, his approaches is giving the base to the sustainable development goals, so that goal for the welfare of the world. So we can say that he was thinking that world as a family, and he was believing at Rashtra Kutumbakam, nation as a family. In the same way, he was also believing that Vasudhaiva Kutumbakam, sustainable development, but he was thinking the nature as a god, and rural development to achieve the objective of this sustainable development as far as it was the view of the Jayaprakash Narayan that time, that is matching to the sustainable development. He was believing in the rural development and infrastructural facilities development in the rural areas that will tend to the self-reliant India. So states, institutions and society all should take the responsibility. Only it is not the responsibility of government to do the development. Institutions, universities, colleges, any institutions have the same role, should play the same role. Even the people of the society should play the same role for the development. Development is not achieved by only government, so state, institutions and society all should play the vital role for development that tends to optimum burden on nature. We should give the optimum burden on nature, and we should control the population also. Inclusive development and inclusive democracy, that is the need of our, and education, employment and employability and skill development, that is also the need of our to achieve the developmental vision of the Jayaprakash Narayan. Because in the case of India, only 10% employability in the graduates, while in the developed country, that employability is 80% or 90%. So we are producing only the degree holders, but they are lacking the employability. So that will pose the question on the democratic development, that will pose the problem on the development vision of Jayaprakash Narayan. Therefore, it is the responsibility of all to develop the employability and skill also. As the new education policy, the objective is also matching to this. So green world, clean world, healthy world, and wealthy world, all those things there is need of, for achieving the all those things, there is need of inclusive democracy, healthy democracy, sustainable democracy, and sustainable development, and all those things was the views of the Jayaprakash Narayan for making the good nationalism a global citizenship and a national citizenship for the development of all the people of society, particularly the bottom of the society, the poorest of society, and all the section of society. So thank you so much for giving me this chance, giving me this opportunity to express the democratic development model and developmental vision of a great global leader, Jayaprakash Narayan. So thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for propagating JP's ideas on development, sustainable development, and a sound democracy in the global perspectives. Thank you very much. And you have also posited that the institution, state, society, and all the sectors of society should be responsible, and the poor, downtrodden, the deprived should be included in all the spheres, society,
Thank you so much, sir. Thank you to all. Now I request Professor Devendra Mishra ji from Trivandrum University, Nepal. Are you on line, sir? Professor Devendra Mishra, sir. नमस्कार। नमस्कार। Thank you. Welcome, sir. Welcome to this session. And may I request you to proceed on your speech. Professor Devendra Mishra, sir, please. Am I audible to you? Yes. Sir, Yes, you please deliver your speech. And the time allotted is 15 minutes. सर्वप्रथम तो मिथिला यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट हमारे विजय ने मुझे इस पे शामिल किया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही एक मिनट, जी सर। हाँ, और आज लोकनायक जयप्रकाश जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो ये सेमिनार आयोजित किया गया है, ये काफी सराहनीय है और मैं जयप्रकाश जी और लोकनायक जयप्रकाश जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहता हूँ। जयप्रकाश जी, मैं तो नेपाल से हूँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय में कार्य करता रहा, अभी रिटायर्ड हूँ पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से। और मैंने देखा कि जयप्रकाश जी की जितनी महत्व भारत में है, उससे कम महत्व नेपाल में नहीं है। डेमोक्रेसी की लड़ाई में जयप्रकाश जी ने जो भूमिका नेपाल में अदा की है वो काफी सराहनीय है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम लोगों ने जिस तरह से उसे देखा है वह ऐतिहासिक है, लेकिन काफी सराहनीय है। आज जिस पार्टी की रूलिंग सरकार है नेपाल में, नेपाली कांग्रेस, उसकी स्थापना भी जयप्रकाश जी के ही प्रयास से हुई है कलकत्ता में। इसके बैकग्राउंड में ये ऐसा कहा जा सकता है कि जिस वक्त यहाँ जो फाउंडर रहे हैं इसके नेपाली कांग्रेस के, जो अभी नेपाली कांग्रेस पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके जो फाउंडर रहे हैं विशेश्वर प्रसाद कोइराला भारत में पढ़ते थे। उन दिनों सोशलिस्ट मूवमेंट में वो भी वन ऑफ द मेंबर थे। जो कांग्रेस के अंदर में जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते थे, जो विद इन द कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में हुआ करता था, उसमें वो भी मेंबर हुआ करते थे। और उन्होंने वहां पे भारत में उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, खास करके 1942 में, जिस वक्त जो है सो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और तमाम नेपाल के लीडर्स लोग जो भारत में पढ़ रहे थे, उन दिनों लीडर नहीं थे, वो क्रांतिकारी विद्यार्थी थे जो भारतीय सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, वो सभी गिरफ्तार हुए। उसी को कलेक्ट करके जयप्रकाश जी ने, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, इन सभी लोगों ने कोलकाता में आकर के नेपाल के लिए डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ो कह करके उन्होंने प्रेरणा दिया और इस तरह से वो वहां पे नेपाली कांग्रेस का जन्म उन्होंने करवाया। इतना ही नहीं, तो जयप्रकाश जी तो क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, वो वायलेंस भी करते थे, नॉन वायलेंस के प्रति भी उनकी विचारधाराओं को देखा जाए तो बहुत डायनेमिक है। कहीं पे उन्होंने वायलेंस के लिए भी काम किया, कभी नॉन वायलेंस की भी काम किया, कभी गांधी जी के काफी करीब भी रहे, कभी सुभाष चंद्र बोस के भी काफी करीब दिखाई दिए। और लेकिन वो नॉर्थ से, मतलब वामपंथी विचारधारा से काफी प्रभावित थे। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण जो उन दिनों ब्रिटिश के विरोध में उन्होंने काफी जोर शोर से काम किया। और ब्रिटिश के विरोध में, ब्रिटिश रूल तो नेपाल में नहीं था, लेकिन था क्या कि नेपाल में ब्रिटिश के ही अंडर फैसिलिटीज में कहिए या उसके ही छत्र छाया में नेपाल की शासक
राज्य कर रहे थे, जो राणा रिजिम था, उसको राणा रिजिम को डेमोक्रेटिक चैनल में लेके जाना था। उस वहां से अंग्रेजों को भगाना नहीं था, क्योंकि अंग्रेज वहां नहीं थे, अंग्रेज भारत में था। तो भारत के आंदोलन में नेपाल के लोग जुड़े हुए थे, और नेपाल के आंदोलन, नेपाल के राणाओं को भगाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी की अहम भूमिका हम लोगों ने महसूस किया और उन दिनों के लीडरों ने महसूस किया। हालांकि ये आजकल के इंसिडेंट, ये नेपालीज पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में ही ये सिमट करके रह गया है, क्योंकि लोग चर्चा के विषय नहीं बनाते हैं, नेपाल में लोग नहीं जानते हैं। और आपने जो ये किया, इस जो सेमिनार किया जयप्रकाश जी के उस जन्मदिन पे, इससे नेपाल के लोग भी काफी लाभान्वित होंगे इस विचारों को जान करके कि नेपाल में जयप्रकाश जी, लोहिया जी लगाए तमाम सोशलिस्ट लीडरों का ही नहीं, गांधी जी आदि इत्यादि का जो समय समय पे क्या देन रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी ने अपने मूवमेंट को शुरू करने के लिए उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया था, उसमें उन्होंने इंडस्ट्री को बंद करवाया था, असहयोग आंदोलन करवाया था। नेपाल में भी बीपी कोइराला आदि को उन्होंने कहा कि आप नेपाल के राजाओं, नेपाल के जो शासक हैं, उस शासक को अगर आप कमजोर करना चाहते हो तो आपको आंदोलन करना होगा। और इस तरह से विराटनगर, जो कलकत्ता के काफी करीब है, वो खास करके विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला का घर भी था, वहां पे कुछ मिल वगैरह थे, इंडस्ट्रीज वगैरह थे, उसमें उन्होंने उसको आंदोलन करवा दिया। और आंदोलन करने के बाद काफी लोग गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो जाने के बाद उन लोगों को काठमांडू ले जाया गया, उनके लीडर खास करके विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। मैं ये प्रसंग इसलिए यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी कहाँ तक नेपाल के राजनीति में और नेपाल के डेमोक्रेसी में उनकी भूमिका रही है। और इसके बाद जब वहां पे वो पकड़े गए, इसके बाद उसको छोड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। अब करवाया था लोहिया जी और जयप्रकाश जी ने, तो उनका मोरल दायित्व बनता था कि इनको जैसे भी छुड़वाया जाए। तो वहां पे शासकों ने उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जयप्रकाश नारायण जी ने एक चिट्ठी लिखी, बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी उन्होंने, किसको, तो जो डिप्लोमेट, नेपाल के प्रतिनिधि जो भारत में रहते थे, तो उन दिनों कलकत्ता में रहा करते थे, ब्रिटिश इंडिया था, कलकत्ता में रहा करते थे। तो उनको उन्होंने चिट्ठी लिखा विजय शमशेर को कि तुरंत इनको छोड़ा जाए, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। जयप्रकाश जी की बात विजय शमशेर ने नहीं माना, जिसका परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने इसको फॉरवर्ड किया दिल्ली में। उन दिनों गांधी जी के साथ जयप्रकाश जी की काफी अच्छी बनती थी, काफी अच्छा संबंध था। गांधी जी को इन्होंने चिट्ठी लिखा। देवेंद्र प्रसाद कह करके एक लीडर हुआ करते थे, सोशलिस्ट लीडर पटना के, वो जाकर के उनको, गांधी जी को मोटिवेट किया। गांधी जी ने इस बात को एशियन कॉन्फ्रेंस में उठाया, जहां सुवर्ण शमशेर नेपाल के एक ब्यूरोक्रेट्स आए हुए थे, जो लीडर थे बाद में, वो आए और उन्होंने इस बात को उठाया। और इस तरह से जब नेहरू के कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने उठाया, नेहरू जी ने स्टेप लिया और बीपी कोइराला वहां से छूटे। तो डेमोक्रेसी की लड़ाई में समय समय पे नेपाल में भी लोगों ने भारत के लीडरों ने, खास करके जयप्रकाश जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस पार्टी को उन्होंने स्थापना किया, वो पार्टी आज तक नेपाल में रूलिंग है। खास करके अभी जो शेरबहादुर देउवा वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसी पार्टी के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। उसका फाउंडेशन, उसको जो स्थापित भी उन्होंने ही किया। इस तरह से गांधी जी, नेहरू जी और लगातार सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जयप्रकाश जी की अहम भूमिका रही। इतना ही नहीं, जब डेमोक्रेसी आ जाने के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने के लिए भी जो संविधानविद लोग हुआ करते थे, उन लोगों की भी सिफारिश जयप्रकाश जी ने ही की थी। कि नेपाल के सरकार को उन्होंने कहा था नेहरू जी के थ्रू 1950 में कि आप जो है सो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहां डेमोक्रेसी सस्टेन कर सके, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ सके। तो भारत में उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी ही, इसके साथ साथ वो नेपाल में भी चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, और इतना डेमोक्रेसी के लिए वो लड़ते रहे सशस्त्र। इसके साथ साथ उन्होंने एक और सशस्त्र पे याद आ गया कि 1950 में जब नेपाली कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 47 में, तो 1950 में आकर के अंग्रेज के विरुद्ध में, इधर तो भारत स्वतंत्र हो चुका था, अंग्रेज के विरुद्ध में ये राणाओं के विरुद्ध में नेपाल में जो मूवमेंट चलना था, उस मूवमेंट में ये तमाम लीडरान, खास करके जयप्रकाश जी, लोहिया जी, मेहता जी, लगा तमाम लीडर जो हैं
ने उनको साथ दिया, साथ देने के लिए कि सशस्त्र आंदोलन किया जाए। अब हथियार कहां से आए? तो हथियार लाने के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी ने, लोहिया जी ने, जो ब्रिटिश के विरुद्ध में जो हैदराबाद में या जो हथियार का प्रयोग हुआ था ब्रिटिश के विरुद्ध में, जहां जहां जो प्रयोग हुआ था उसको कलेक्ट करके और नेपाल के उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक के, वेस्ट बंगाल तक के तमाम बॉर्डर पे हथियारों को सप्लाई करके और सशस्त्र आंदोलन 1950 में जयप्रकाश जी ने करवाया। और इस तरह से नेपाल में डेमोक्रेसी 1950 में आई। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बावजूद भी उनके जिंदा रहते ही, क्योंकि वो 1955 के बाद वो निष्क्रिय हो गए। जयप्रकाश जी अपने आंदोलन में विनोबा भावे के साथ चले गए। विनोबा भावे के साथ जाने के बाद वो निष्क्रिय हुए। लेकिन 1960 में जब नेपाल में डेमोक्रेसी को खत्म किया गया, वहां के राजाशाही ने कू करके डेमोक्रेसी को खत्म किया। इसके बाद फिर जयप्रकाश जी एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में 1960 में, और उसी क्रम में भारत के पॉलिटिक्स में भी वो एक्टिव हुए, क्योंकि वहां भी इंदिरा रिजिम में आकर के इमरजेंसी लागू हुआ और इमरजेंसी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। संपूर्ण क्रांति की व्याख्या अभी एक प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छे ढंग से किया ही था। संपूर्ण क्रांति, अब हम लोग तो ये मॉडर्न एज के पॉलिटिक्स में उसका इम्पैक्ट को देखते हैं, तो डेमोक्रेसी आ जाने के बाद भी क्रांतियां नहीं रुकती हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी अपने आप में रिन्यू करते हुए चलने की चीज है। डेमोक्रेसी आ जाने के बाद लोग निश्चिंत हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे तो वहां कू हो जाएगा, कोई डिक्टेटर आ जाएगा, कोई डिक्टेटरशिप आ जाएगी। इस तरह से हुआ। भारत में भी इंदिरा गांधी का रिजिम आया और इंदिरा गांधी ने वहां इमरजेंसी लागू कर दी, और इमरजेंसी लागू करते ही वहां जयप्रकाश नारायण जी जबकि बीमार हो चुके थे, बहुत वृद्ध भी हो चुके थे और संन्यास भी ले चुके थे, बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे, तथापि उन्हीं के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति लाने की बातें की गई। संपूर्ण क्रांति की जो व्याख्या की है, एक दो स्टेटमेंट मैंने देखा है जयप्रकाश जी का। संपूर्ण क्रांति में उन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, एवरीवेयर, एवरी सेक्टर्स, लाइफ के हर एक सेक्टर में क्रांति की आवश्यकता है, नयापन की आवश्यकता है, क्योंकि वो जंग लग जाता है। और जंग जो है जब भी आपको डिक्टेटरशिप की ओर, तानाशाह की ओर ले जाता है, चाहे जितना भी डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों ना हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के बावजूद भी उसमें जंग लगता है। ये संदेश जो है वो सबसे लेटेस्ट एंड सबसे प्रैक्टिकल और आज के लीडरों को जानने की चीज है कि डेमोक्रेसी आ जाने के बाद भी हाथ पे हाथ रख के बैठने के बाद वहां कू हो जाता है। 1950 में नेपाल में डेमोक्रेसी आया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत से ही कॉन्स्टिट्यूशन विज्ञ लोग वहां गए, बना नहीं पाए और वहां फूटी फूटी कॉन्स्टिट्यूशन से काम चलता रहा। लेकिन वही 60 में आके जब वो कमजोर हो गया डेमोक्रेसी वहां, तो कू हुआ। वन मैन वन पार्टी लेस सिस्टम की डेमोक्रेसी आ गई वहां, और इस तरह से 30 वर्ष तक उन लोगों ने शासन किया। और 30 वर्ष के बाद फिर आंदोलन की आवश्यकता हुई, और फिर इसके साथ ये मैं आपको अनुरोध करूं कि फिर जयप्रकाश नारायण जी के ही शिष्य थे चंद्रशेखर जी 1990 में आकर के उन्होंने नेपाल के लिए फिर डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। नेपाल में आकर के उन्होंने काफी जो भाषण किया, और इस तरह से फिर डेमोक्रेसी 1990 में नेपाल में आया। इस तरह से जयप्रकाश जी के सोच हैं, जयप्रकाश जी के जो विचार हैं, ये सभी हर समय के लिए बहुत ज्यादा इस विचार के प्रति, इस विचार से जो है ये प्रेरित होंगे। एक ही चीज है, नेपाल में की बहुत आवश्यकता इसलिए है कि समय पे यहाँ दिखाई देती रहती है। भारत में भी, संसार में भी जो लीडर पुराने हो जाते हैं, कुछ दिन जाने लगते हैं, वो डिक्टेटर करने लगते हैं, वो तानाशाह हो जाते हैं, और उस तानाशाह उनके विरुद्ध में भी आंदोलन करने की आवश्यकता है। अर्थात जयप्रकाश जी ने डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक लीडर के विरुद्ध में आंदोलन किया, क्योंकि उसकी प्रशासकीय जो तानाशाही होता है, उसके ब्यूरोक्रेटिक तानाशाही होता है, उसके विरुद्ध में उन्होंने आंदोलन किया। और इस तरह से वो फिर पुनः ताजगी, पुनः जो है नयापन लाने की जो एक सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। उनकी संघर्ष, उनके
जयप्रकाश जी की जीवन पूर्ण संघर्ष की, संपूर्ण क्रांति की बात वो कहते हैं। वो स्वयं अपने आप में एक क्रांति थे, चाहे वो अमेरिका में रहते हो, अध्ययन करते हो, उस वक्त भी उन्होंने अपने जीवन से क्रांति की है, क्रांति की नयापन लेके आया। लेफ्टिस्ट विचारधारा की थे, सशस्त्र क्रांति की ओर भी गए, इसके बाद वो अध्यात्म की ओर भी गए, वो विनोबा भावे जी के साथ भी रहे, विनोबा भावे जी की विचारधारा को भी वो आगे लेके गए। लेकिन देखा कि देश में उनकी आवश्यकता है, तो वो 1975 में फिर कूद करके आए और फिर उन्होंने बहुत बड़ी आंदोलन की, और इतने बड़े तानाशाह इंदिरा गांधी को उन्होंने खदेड़ दिया, एक कहिए तो उसे, मतलब उनकी एक सीट जीत नहीं पाई, वो सत्ता से विहीन हो गए, और नयापन आया वो अलग बात है। इसके बाद उसको फिर कैसे मैनेज किया जाए वो नहीं कर पाए, और या वो नहीं रहे। इस तरह से जयप्रकाश जी के प्रति, जयप्रकाश जी की तो बहुत इवेंट्स हैं नेपाल के साथ जुड़े हुए। एक प्रसंग आपको बता दूं अगर मेरे पास टाइम है तो। जिस तरह से नेपाल में, भारत में जब वो गांधी जी के साथ जुड़े 1942 के बाद, उन्होंने रेडियो प्रसारण की बात शुरू कर दी, रेडियो प्रसारण वगैरह भी किया था। और जिस तरह से उन्होंने रेडियो प्रसारण वगैरह करके जनता को मोटिवेट करने की बात, जनता को अवेयरनेस करने की बात किया। भाई जी वो जब बीपी कोइराला से उनका संबंध हुआ, जब वो बीपी कोइराला वगैरह के सानिध्य में आए, तो वो नेपाल में जाकर के रेडियो उन्होंने खोला, और रेडियो खोल करके वहां से ब्रॉडकास्टिंग करने लगा अंग्रेज के विरुद्ध में। 1947 की बात कर रहा हूँ। और वहां वो पकड़े गए, नेपाल सरकार को पकड़ लिया, पकड़ करके उनको नेपाल के जेल में डाल दिया, हनुमान नगर जेल में उनको डाल दिया गया। वहां के आपका व्याख्यान अत्यंत महत्वपूर्ण था, इंफॉर्मेटिव था, और आपने जो ये बात कही कि जयप्रकाश जी ने केवल भारत में डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि विदेशों में भी किए, और नेपाल की डेमोक्रेसी उन्हीं के प्रयासों की देन है। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोग के पास और वक्ता हैं, इसलिए समय तेजी से भाग रहा है, रनिंग आउट फास्ट, so we cannot deprive other speakers to speak. Thank you very much sir. Professor Misra sir, thank you. प्रोफेसर कन्हैया झा सर, प्रोफेसर कन्हैया झा आप लाइन पर हैं क्या? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना वक्तव्य रख सकते हैं अभी। जी सर, धन्यवाद सर। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना विचार जेपी एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी पर, या जो भी आपका अपना विषय है उस पर अपना संबोधन दें कृपया। जी सर, धन्यवाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के सभापति महोदय आदरणीय जितेंद्र नारायण सर एवं आज के इस कार्यक्रम के अतिथि, सर्वप्रथम तो मैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें यह गौरव प्रदान किया। अब मैं आज की जो यह जेपी एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स विद इंडियन डेमोक्रेसी, जेपी के प्रयोग को मैं दो पार्ट में देखता हूं। एक भारत के अंदर की बात और एक भारत के पड़ोसी देश नेपाल के संदर्भ में, नेपाल के डेमोक्रेटिक मूवमेंट के संबंध में। और मुझे लगता है कि यदि हम नेपाल के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जेपी की बात नहीं करेंगे तो नेपाल के डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इतिहास नहीं लिखी जा सकती है, पूरी नहीं की जा सकती। सर्वप्रथम मैं भारत में उनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ बातें अपनी रखना चाहूंगा। एक बूढ़ा आदमी इस देश में है मत कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। राष्ट्रकवि दिनकर ने ये कहा था।
अमेरिका से आने के बाद अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका में पूरा करने के बाद वो भारत आए और भारत में आने के बाद नेहरू जी के संपर्क में आकर वो कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस को ज्वाइन करते हुए भी उनकी जो वो सोशलिस्ट विचारधारा थी उसके लिए उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी का कांग्रेस के अंदर ही गठन किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और 1947 में जब भारत से अंग्रेज लोग चले गए तो जेपी का कहना था, जेपी का सोचना था कि राजनीतिक क्रांति समाप्त हुई, अब हमारी आवश्यकता नहीं है और उन्होंने राजनीति से अपने को अलग कर लिया और अलग करके उनकी यह धारणा थी कि समाज को सुधारा जाए, समाज को आगे बढ़ाया जाए और उसी समय आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी और उसमें उन्होंने अपना सहयोग दिया। ये भूदान आंदोलन ने इतनी बड़ी कामयाबी दिखाई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसके बारे में सोचने को विवश हो गए और ये क्या था कि मार्क्सवाद का भारतीय भूमि में एक नवीनतम प्रयोग था। दान में लेकर के, जमीन दान में लेकर के गरीबों को जान में देना, ये बहुत बड़ी बात थी और उस कार्य के लिए उन्होंने मेहनत किया। उस समय 5 करोड़ भूमिहीन लोग भारत में थे। वो देश में उत्पादकत्व की कमी थी, लाखों एकड़ जमीन बंजर थी। जिनके पास जमीन थी उनके पास मैन पावर नहीं थे, जिनके पास जो मैन पावर थे उनके पास जमीन नहीं थी। अतः भूदान के माध्यम से इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश हुई और इसे बलपूर्वक नहीं होकर के शांतिपूर्ण ढंग से, ये संसार के इतिहास में ऐसी भूदान आंदोलन कहीं नहीं देखी गई और जिसका रिजल्ट यह हुआ, सर्वप्रथम 1951 में इन्हें 100 एकड़ जमीन रामचंद्र रेड्डी द्वारा तेलंगाना में प्राप्त हुआ और इसके बाद 20 वर्षों तक 40-45 लाख एकड़ जमीन इन्होंने भूमिहीनों को दान में दिलवाया। इस तरह भूदान आंदोलन को आगे बढ़ाया। भूदान आंदोलन का उद्देश्य था आर्थिक उपलब्धता तथा शक्ति का विकेंद्रीकरण, गांव में शक्ति का विकेंद्रीकरण, जमीन पर सभी का अधिकार, नई सामाजिक संरचना की स्थापना। इस तरह भूदान आंदोलन को जेपी और विनोबा भावे जी ने आगे बढ़ाया। उसके बाद ये जुड़ गए सर्वोदय आंदोलन से। सर्वोदय आंदोलन, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, द वेलफेयर ऑफ ऑल। सर्वोदय आंदोलन का उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण एवं गांव में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर का उत्थान हेतु शांतिपूर्ण एवं सहयोग पूर्ण साधन था। सर्वोदय सह अस्तित्व एवं भाईचारे पर जोर देता है। महात्मा गांधी ने इसे रस्किन के दर्शन से अंगीकार किया, जो कालांतर में उनके रचनात्मक दर्शन का आधार बना, जिससे कि गांव में बसने वाले लोगों का कल्याण हो सके। जेपी इस दर्शन से अति प्रभावित थे क्योंकि इससे व्यक्ति एवं समष्टि सोसाइटी दोनों के सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त हो सकता था। सर्वोदय समग्र रूप से समाज, अर्थ, राजनीति, नैतिकता एवं आध्यात्म का मिला जुला रूप था। इसके बाद ये 2 सामाजिक क्रांति हो जाने के बाद तात्कालीन 70 के दशक में जेपी राजनीति से निरपेक्ष थे पर 70 के दशक में भारतीय राजनीति में प्रजातंत्र के अभाव को उन्होंने महसूस किया। उनकी दृष्टि में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही थी एवं भ्रष्टाचार मुंह चिढ़ा रहा था। उन्होंने एक बार फिर इन कुव्यवस्थाओं के प्रति एक क्रांति की आवश्यकता महसूस किया। आपातकाल की घोषणा एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया और 1974 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। संपूर्ण क्रांति किसी एक पक्ष को लेकर नहीं
अपितु मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में आमूल परिवर्तन के प्रति लक्षित था। 1975 में लेटर टू पीपल ऑफ बिहार में उन्होंने अपनी बातें स्पष्ट की थी। इसका एक उदाहरण है, जैसे उन्होंने कहा था उस लेटर में कि कोठारी कमीशन के मेंबर लोग और विभिन्न शिक्षाविद लोग ने शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता को उठाया, पर वह संभव नहीं हो पा रहा। विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वह दोष रहित नहीं था और उनकी भविष्य अंधकार में थी। इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने कहा कि हरिजन और आदिवासी गरीब और पिछड़े हैं। सामाजिक रूप से हरिजन की स्थिति और भी खराब थी। हरिजन को जिंदा जलाया जा रहा था और ये आदिवासियों की तो क्या कहना, वो ऋण के बोझ तले दबे जा रहे थे। इस तरह उन्होंने संपूर्ण क्रांति के सिपाही को इसकी सकारात्मक समाधान की दिशा में सोचना होगा कह के उन्होंने आग्रह किया। और उस समय उन्होंने ये कहा कि आज के युवा पंक्ति जो है वो दहेज प्रथा के विरुद्ध जागरण करना होगा, जात पात के विरुद्ध जागरण करना होगा, छुआछूत और सांप्रदायिकता के विरुद्ध आगे आना होगा। यह अपने आप में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में समग्र रूप में क्रांति का सूत्रपात था। इस तरह उन्होंने एक दर्शन दिया संपूर्ण क्रांति का और उसको एक सरकार, तत्कालीन सरकार जो थी उसे उखाड़ फेंकने में सफल हुए और नए लीडरशिप जो आज भी हम लोग भारत के राजनीतिक परिवेश में देखते हैं, वो लोग सभी लोग कहते हैं कि ये जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। हम लोग नेपाल से यही देखते हैं, यही समझते हैं। अब मैं कुछ बातें नेपाल की कहना चाहूंगा। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी जी हजारीबाग जेल उनको लेके जाया गया, उनकी यह मान्यता थी कि सभी लोग जेल में रहेंगे तो आंदोलन कौन करेगा। और वो दो चार और क्रांतिकारी मिलकर उस जेल से भागने में सफल हुए और वो भाग करके नेपाल के सप्तरी जिला के कोइलाड़ी बरसान में जाके उन्होंने शरण ली। वहां पर तत्कालीन नेपाली कांग्रेस के में लगे हुए रामेश्वर प्रसाद सिंह जी के घर में इन्होंने शरण ली और वहां पर ये सभी लोग गुप्त रूप से रहने लगे। भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि नेपाल में तत्कालीन राणा शासन को प्रेशर दिया कि भाई इस आदमी को ढूंढो और इसको पकड़ो। और रामेश्वर बाबू ने क्या किया, लास्ट में जब देखा कि अब गांव में रहना मुश्किल है तो कोसी टप्पू वाइल्ड रिजर्व है उसके अंदर एक झोपड़ी बनाकर क्या किया, इन्हें वहां पर रखा। और दूसरा ग्रुप जो था, दो ग्रुप थे, एक ग्रुप में जेपी नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सूरज नारायण सिंह, नित्यानंद सिंह, ये लोग थे। और सप्तरी के पश्चिम में जंगल में सहरसा के क्रांतिकारी कार्तिक प्रसाद सिंह के नेतृत्व में दर्जन से भी ज्यादा क्रांतिकारी उनके घर में पहले से ही शरण लिए हुए थे। और इसके बाद क्या हुआ कि जंगल में पश्चिम में, सप्तरी के पश्चिम में सरदार नित्यानंद सिंह और गुलाबी गुप्ता के नेतृत्व में गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण संचालन हो रहा था। वहां पर इन्होंने रेडियो स्टेशन संचालन किया, अपने से क्रांतिकारियों से बातें करने के लिए उसको संचालन कर रहे थे। और इसी बीच में अंग्रेज के दबाव में आकर नेपाल के राणा शासन लोग ने इन्हें गिरफ्तार करके सप्तरी के हनुमान नगर जेल में रखा। उसी रात जो सप्तरी के पश्चिम में जो गुरिल्ला युद्ध में ट्रेनिंग ले रहे थे वो सभी लोग आए रामेश्वर सिंह के घर में। रामेश्वर सिंह ने क्या किया कि अपने भतीजे तारनी प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सभी लोग मिलकर जेल पर आक्रमण किया। 2 सिपाही मारे गए और बाकी ये क्रांतिकारी जेपी लोहिया, डॉक्टर बैद्यनाथ झा और विजय पटवर्धन सहित अनेक नेता लोग को वहां से सब छुड़ा लाने में सफल हुए। और रात सभी को कोसी के माध्यम से नाव में बैठाकर उन्हें नेपाल से बाहर
भारत की ओर प्रस्थान किया गया, सुरक्षित उनको रखा गया। इस तरह भारत के आंदोलन में भी नेपाल के जमीन की, नेपाल की भूमि की उपयोगिता सिद्ध होती है। फिर इसके बाद अब नेपाल के डेमोक्रेसी में जेपी ने क्या किया कि उस समय दो नेपाली कांग्रेस, एक नेपाली नेशनल कांग्रेस था और एक नेपाल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, एक सुवर्ण शमशेर जी चला रहे थे, दूसरे बीपी कोइराला चला रहे थे। दोनों को जेपी जी ने बुला करके बैठा करके समझाया कि आप लोग यूनाइट होइए, अदरवाइज नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और ये दोनों लोग बैठे मिलकर एक नेपाली कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ और इस तरह नेपाल में राणा शासन को समाप्त किया गया। और उसके 10 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद नेपाल के इतिहास में प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोइराला हुए, जो कि जेपी के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। और उन्होंने क्या किया कि जमींदारी उन्मूलन की काम शुरू की। उन्होंने जंगल जो राजा रजौटा लोग रखे हुए थे अपने में, उन सभी को क्या किया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस तरह वहां के तत्कालीन जमींदार लोग नाखुश हुए और राजा ने क्या किया, बीपी कोइराला को हटा करके कू किया और पार्टीलेस सिस्टम उन्होंने शुरू किया। इस तरह नेपाल में जो प्रजातंत्र आई थी उसकी समाप्ति हो गई, पर जेपी का नैतिक समर्थन जारी था। 1969 में जब नेपाल से कुछ विद्यार्थी लोग जेपी से मिलने पटना में आए तो जेपी ने कहा कि जब तक आप लोग यूनाइट नहीं होइएगा, आप लोग एक होइए, उसके बाद ही नेपाल में डेमोक्रेसी आ सकती है। और उसके बाद नेपाली कांग्रेस का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नेपाल विद्यार्थी संघ 1970 में एस्टेब्लिश हुआ। और देखिए ये जेपी की दूरदृष्टि थी कि उसके ठीक 8-9 वर्ष बाद नेपाल में बहुत बड़ा विद्यार्थी आंदोलन हुआ, जिसके चलते राजा को जनमत संग्रह कराने की नौबत आई और उसमें सभी लोग जनमत संग्रह में भाग लिए। इस बीच बीपी कोइराला जेल में थे। जेल से निकलने के बाद भारत आए। भारत आने के बाद जब भारत में इमरजेंसी लग गई तो नेपाल में के लोगों को, क्रांतिकारियों को भारत में रहना मुश्किल था। वो लोग वापस देश में जाने लगे। तो जेपी ने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी आम सभा की और वहां पर उन्होंने कहा कि बीपी कोइराला जो 35 वर्ष के उम्र में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, उनसे राजा को आग्रह किया कि राजा आप और बीपी कोइराला मिलकर इस देश को समृद्धि की दिशा में ले जाइए। बीपी ऐसा आदमी मिलना मुश्किल होगा कह के जेपी ने कहा और उस दिशा में राजा ने कोई काम नहीं किया। तब जेपी ने कहा कि बीपी सिर्फ नेपाल के नहीं, भारत के भी नेता है, संसार के सोशलिस्टों के लीडर हैं। क्योंकि बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, मातृका प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये सभी लोग भारत के डेमोक्रेटिक मूवमेंट में भाग लिया था। और जेपी ने कहा था कि ये तो हमारे लिए काम किए हैं, हमारे देश के आजादी के लिए, उसीलिए हमें भी कुछ करना चाहिए कह के इन्होंने भी क्या किया, नेपाल को सभी किस्म से सहयोग किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव सिताब दियारा में जन्मे हुए महानायक, महामानव जयप्रकाश नारायण जो संसार में प्रसिद्ध हुए। इस तरह जेपी ने अपने समय में विभिन्न किस्म से ये आंदोलन को, डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, नॉट ओनली इन इंडिया, नेपाल में भी उन्होंने सहयोग किया। और इस तरह ये अपने आप में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात था। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, वही सो गए दास्तां कहते कहते। 76 ईयर्स में 1979 अक्टूबर 8 को वो हमें छोड़ करके विदा हो गए। और इस तरह उन्होंने जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में अपना योगदान दिया वो हमारे लिए
चिरस्मरण रहेगा। और अंत में मैं नेपाल की जनता की तरफ से महानायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को सत सत नमन करते हुए मैं अपना वाणी को यहीं विश्राम देना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। By Professor Kanhaiya Jha, Secretary Tribhuvan Teachers Association, TRM Campus University, Deepganj, Nepal. Now, the next speaker, I think, Professor S.N. Singh, retired University Professor, Central University, Gaya, Bihar. Sir, in case you are online, please. Hello. Hello. Professor S.N. Singh, University Professor, Central University, Gaya, Bihar. Hello. अनम्यूट करें सर। म्यूट कर गए। आगे सर। आए हुए हैं म्यूट में, अनम्यूट करेंगे तो। वहाँ लिख दीजिए। सर प्लीज अनम्यूट। सर प्लीज अनम्यूट सर। Sir, your mic is not on. Please. Hello. 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 म्यूट में है सर। हेलो। यस Hello. यस यस। ठीक। Very good afternoon, sir. Professor S.N. Singh, sir. University Professor, Central University, Gaya. Sir, you are most welcome. हाँ, मैं बोलना शुरू करूँ? Yes, sir. Why don't you? Please. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभाग के द्वारा आयोजित इस सेमिनार में मुझे बुला करके जितेंद्र जी जो सम्मान दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। मैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय राजेश जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस विभाग को इतने बड़े अच्छे आयोजन करने की अनुमति दी और हम लोगों को भी सम्मिलित करवाया। आज हमारे देश के दो महानायकों की जन्मदिन है, जयप्रकाश नारायण की तो है ही और साथ साथ नानाजी देशमुख की भी है। और दोनों की जोड़ी को भी हम बिहार में देखते हैं कि जो 74 के आंदोलन हुए थे तो दोनों साथ साथ थे नए बिहार बनाने के लिए, और देश में इमरजेंसी का विरोध हो और पूर्ण क्रांति वगैरह की बात में दोनों साथ साथ थे। जयप्रकाश जी की जो 74-75 वाली स्थिति में देखता हूँ नाना जी के साथ, वैसी स्थिति पहले भी हजारीबाग जेल से उनका पलायन हुआ था, निकले थे तो उस समय सूरज नारायण सिंह थे, उनके साथ थे। हजारीबाग जेल से 1942 के आंदोलन में निकले और देश में आजादी की अलग। तो आज मैं नानाजी देशमुख को भी जेपी के साथ साथ याद करता हूँ और जयप्रकाश नारायण की जो समग्र क्रांति है, संपूर्ण क्रांति है, उनकी विचारधारा पर मैं अपने ज्यादा विचार रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन कुछ अपना भी व्यक्तिगत अनुभव में शामिल करने का प्रयास करूंगा। मैं भी जेपी आंदोलन का एक सहभागी था 1974 में, जो मैं इंटर का स्टूडेंट था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से आह्वान किया कि 1 साल की पढ़ाई छोड़ो और हमारे आंदोलन में आओ। और जेपी की बात पर उन्होंने, जेपी उस समय कहते थे बिहार के छात्र तुम ही तो मेरे हो, मेरे अपने कोई नहीं है। यदि तुम राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में हमारे साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। बहुत सारे हजारों लाखों छात्रों ने जेपी की बात को कि तुम मेरे ही हो, तो उस बात की अवमान करके उन्होंने परीक्षा की बहिष्कार किया और जयप्रकाश आंदोलन में सम्मिलित हुए। सम्मिलित होकर के विभिन्न आंदोलनों में जाने का भी, और जेपी को भी हजारीबाग की जो एक सेंट्रल जेल की कनबरा इकाई थी तो वहां उनसे मिलने का भी, उनका कार्यक्रम कराने का भी मौका मिला। पटना कॉलेज में पढ़ता तब भी मुझे जयप्रकाश नारायण की जो कदम कुमार आवास था तो कभी कभी सच्चिदानंद जी, और उस समय में मुझे जाने का भी मौका मिलता था। एक आध उनके हमारे मित्र थे तो उस समय उनके पिए, उनके भी सानिध्य से भी मुझे मिलने का मौका मिला, कुछ सीखने का, जीवन के बारे में जानकारी। ये मेरा जेपी का मेरा व्यक्तिगत अनुभव था। लेकिन मैं एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे पिताजी गोवर्धन सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे, दरभंगा जिला में काफी काम किया
और ताम्रधारी तो जेपी की और पंडित दरभंगा के ही पंडित रामनंदन मिश्र के बारे में जो है वो काफी बताया करते थे। उन लोगों की देश में जागृति लाने में और खासकर के क्षेत्र में उनके काम की भी चर्चा हुआ करता था। जेपी की बिहार उत्तर बिहार के लोग आज भी याद करते थे, जब अकाल का समय होता था तो उन्होंने भी काफी काम किया। लोगों ने चर्चा नहीं की। जयप्रकाश नारायण ने एक रिलीफ कमेटी बनवाई थी जिसमें 65-66 वगैरह में जब थे तो लोगों में विभिन्न जिला में मतलबे जी का भी था रिलीफ का काम, और जेपी ने भी बहुत अच्छा काम करवाया था। तो समाज सुधार के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए। बाद के जीवन में जो छात्र 74 के आंदोलन में आए, जनता पार्टी को बनवाए, तो इनकी राजनीति की जो कई अलग रहे स्टेप्स रहे हैं। इसको यदि हम वैचारिक रूप से देखें, एपिस्टेमोलॉजिकली यदि देखने का प्रयास करें, मेकिंग ऑफ द जयप्रकाश नारायण, तो एक सिताब दियारा में जन्मा हुआ बालक बड़ा होता है, स्कूलिंग करता है और गांधी के असहयोग आंदोलन में जो कहता है स्कूल की पढ़ाई बंद करो, तो उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। बाद में वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई नहीं करके वहाँ बिहार विद्यापीठ में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और उस समय भी जयप्रकाश जी आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया गए थे। संयोग की बात है कि उसी समय जो बिहार के स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध थे बृजकिशोर जी, तो उनकी सुपुत्री प्रभा जी से उनकी शादी हुई, कुछ समय यहाँ रहे और बाद में उच्च अध्ययन के लिए वो विदेश अमेरिका चले गए। वहां जाकर के भी उन्होंने समाजशास्त्र, सोशल वर्क पढ़ा और कई बार तो उन्होंने दूसरे विषय भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उस समय उनके जो मूल विचार थे वो मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित हो गए थे। उनका भी था एक सोच था कि जो हम खूनी क्रांति के द्वारा, आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा ही देश में आजादी प्राप्त कर सकते हैं। जब 1928 में भारत आए तो वे गांधी जी, नेहरू जी के संपर्क में आने के बाद में उनके विचारों में थोड़ा परिवर्तन हुआ, और खास करके परिवर्तन का वजह यह था कि प्रभा जी कस्तूरबा जी के साथ हो गई थी और उस आंदोलन में जो है गांधी जी के आंदोलन में थे। आजीवन उन्होंने ब्रह्मचर्य का भी व्रत ले लिया था। तो गांधी जी के कहने पर जयप्रकाश नारायण भी लगभग धीरे धीरे गांधीवादी विचारधाराओं से सहमत हो गए और भारत में परिवर्तन की उनकी जो मार्क्सवाद के द्वारा, हिंसा के द्वारा सत्ता में परिवर्तन लाना, देश को आजादी पाना और सर्वहाराओं को अधिकार दिलाने की बात थी। तो उसमें उन्होंने गांधी जी के विचारधारा वाली बात थी कि सर्वोदय के माध्यम से, धीरे धीरे में समाज के सहयोग से, ग्राम विकास के माध्यम से, छुआछूत के उन्मूलन के माध्यम से, महिलाओं के अधिकार के माध्यम से, महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक कुरीतियों के दूर करने के माध्यम से, इन सब विचारधाराओं का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ना पड़ा और धीरे धीरे वो मार्क्सवाद से थोड़ा सीधे हुए तो सोशलिस्ट विचारधारा के हुए। लगभग 1935 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस भी उन्होंने स्थापित करने में लोहिया जी इन लोगों ने करवाया और सोशलिस्ट विचार, समाजवाद की विचारधाराओं को ज्यादा प्रश्रय देना प्रारंभ किया कि देश की आजादी मिले तो खेतिहर मजदूरों के भी, श्रमिकों की भी ये बात होनी चाहिए। और उस समय नारा देते कि जहाँ श्रमिक है, जहाँ खेतिहर मजदूर है, जयप्रकाश वहाँ है, तो उनके लिए भी बराबर वो काम करते रहे। 1942 के आंदोलन में तो उनकी अभूतपूर्व योगदान रहा। सब लोग गिरफ्तार हुए भारत छोड़ो आंदोलन में, वो भी जेल गए, लेकिन उनका एक चंचल मन था, हमेशा कुछ करने की प्रवृत्ति। हजारीबाग जेल से भी सूर्यनारायण सिंह और कई लोग, जो 6-7 लोग कैदी वहां से बाहर निकले और अपने जो जंगल में भी रह करके उन्होंने समाज सेवा का काम किया। मैं गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, तो वहाँ के पास के ही जंगल में उन्होंने जो एक जगह काफी दिनों तक रहा और आदिवासियों के क्षेत्रों में लोगों में काम करने का उन्होंने प्रयास किया। बाद में जाकर के वे वहाँ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन उस क्षेत्र में गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके छिपे हुए भी उन्होंने उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए काफी काम किया। देश की आजादी मिलने के बाद वो दुविधा की स्थिति में थे कि सत्ता में जाऊं या सत्ता के बाहर रह करके काम करूं। उनका सोच था कि सत्ता में जाने के से भी अच्छा काम यदि हम सत्ता से बाहर रह करके समाज के सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए काम करते हो तो ज्यादा महत्व इसी वहां में रहे। लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोग जो लोहिया जी वगैरह थे, इन सबों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उसमें भाग ली। लेकिन 1952 के चुनाव में जाकर के जो पराजय हुई, लोहिया जी की भी, इनकी भी, पंडित रामनंदन मिश्र, बहुत सारे जो आए थे समाजवादी में, तब उनको सत्ता से पुनः मोह भगना प्रारंभ हुआ। और बोधगया में 1953 में विनोबा जी के समक्ष वो समझिए कि ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामोदय के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया कि मैं जीवन में यही काम करूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊंगा, ग्रामीण में समस्याओं के समाधान के लिए काम करूंगा। किस तरीके से ग्रामीण जीवन के जीवन स्तर का उद्धार अच्छा हो, जैसे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन चीजों पर वो ज्यादा जोर देते थे।
गांधी जी ने भी जो चंपारण में आंदोलन किया था तो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई वगैरह पर, महिला शिक्षा पर जोर दिया था। उन विचारधाराओं को इन्होंने भी, जयप्रकाश नारायण जी भी ने 1953 के बाद भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन, इन सबों में उन्होंने इसको जोड़ने का प्रयास किया और उसके लिए अनंत बराबर उस काम को वो करते रहे और बढ़ाते रहे। खास करके जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में विनोबा भावे जी का कार्यक्रम था, उनका पद भवन हुआ, गांव में घूमे थे, तो जेपी भी उस समय में ग्रामीण विकास के लिए काफी, खास करके गांधी जी के जो बर्थ सेंचुरी थी और मनाया गया सेलिब्रेशन था, उस समय भी जो गांधीवादी विचारधाराओं को प्रचारित करना और ग्राम विकास, भूदान वगैरह का काम उनका काफी रहा। उस समय में समाज कल्याण के लिए लगे रहे। उसके बाद देश में एक स्थिति आती है 1971 की, जिसकी कम चर्चा की जाती है। जब बांग्लादेश से भारत में रिफ्यूजी आना प्रारंभ कर दिए हुआ, तो उस समय में भी बहुत सारे 90 लाख लोग, काफी लोग जो आ गए थे, तो उनको किस तरीके से भारत में हो, इनको किस तरह से वापस भेजा जाए, भारत सरकार पर दबाव था। तो श्रीमती गांधी और अंतर्राष्ट्रीय जनमानस भारत पर दबाव था, रिफ्यूजियों को रखिए, उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए, सब काम कीजिए। और बांग्लादेश में जो स्थिति काफी खराब थी, बंगालियों पर पश्चिम पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा जो किस तरह से अत्याचार किया जाता था, अन्याय किया जाता था, हत्याएं होती थी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होते थे, उनका वो विरोध करने का प्रयास किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमानस जागृति करने के लिए जेपी को श्रीमती गांधी ने निक्सन से मिलने के लिए, यूरोपियन देशों से मिलने के लिए, यूएनओ में और काफी जगह भेजा। उन जगह जा करके उन्होंने भारत की बात को रखा कि रिफ्यूजी की समस्या भारत के लिए कैसी है, बांग्लादेश को आजाद होना कैसे जरूरी है और भारत को जो उसमें क्या कर सकता है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय से सहयोग मिले। जब अंतर्राष्ट्रीय जनमानस भारत में का पक्ष में बना, उसके बाद श्रीमती गांधी ने जो एक्शन लिया 16-17 दिनों तक जो मुक्ति संग्राम में भारत को उन्होंने मदद दिया, तो उसमें भी जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी योगदान थी, देश में जनमानस बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जनमानस बनाना। एक वक्ता ने नेपाल की बात की, लेकिन बांग्लादेश वाली बात जो है चर्चा में कम है। बांग्लादेश की तो कांग्रेस की स्थापना के लिए भी हमारे एक साथी ने चर्चा की और बराबर गए भी, उस पर बढ़ाते भी रहे। फिर जाकर के देश में जो ऐसी आ जाता है, जो तेल की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ता है, किसान आंदोलन कई जगह होते हैं, मजदूरों का आंदोलन कई जगह होता है, और दक्षिण बिहार में कई जगह, जमुई में और कई जगह पर जो आंदोलन हुए थे, गांधी जो जेपी के साथी थे सूर्यनारायण सिंह भी, उसमें जो पुलिस के हाथों जो उनकी जो जितने उन पर साथ पिटाई हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई, कुछ और लोग भी हुए। तब गांधी जी भी, जो जयप्रकाश जी का भी विचार श्रीमती गांधी की लगा कि इनके प्रति जो है, श्रमिकों के प्रति अत्याचार, अन्याय हो रहा है, नेताओं के प्रति अन्याय हो रहा है, तो वह थोड़ा बहुत झुकाव ले परिवर्तन की तरफ उनका गया। और उसी समय में बिहार में 18 मार्च के जो 74 को जो छात्र आंदोलन हुआ, तो उसके बाद से जो 18 मार्च को जो पटना में जो पुलिस का तांडव था छात्रों का, मुझे भी वो देखने का मौका मिला था, जो किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, सुकास के गोले गए और छात्रों के साथ अत्याचार किया गया, अरेस्ट किए गए। तब जेपी जो है छात्र आंदोलन भी उस समय की जो संपूर्ण जो छात्र संघर्ष समिति थे, जो लालू जी थे, नीतीश जी वगैरह थे, नरेंद्र सिंह, काफी लोग थे, मोदी जी वगैरह थे, सुशील मोदी हो गए, इन सबों ने उनके आग्रह करके इनको छात्र आंदोलन में जोड़ा। उसके बाद जेपी ने बिहार में और गुजरात के नवनिर्माण में और विभिन्न भागों में जाकर के जो एक चेतना जागृत की कि सत्ता को ज्यादा शक्तिशाली नहीं होनी चाहिए, सत्ता के सामने आप झुके नहीं, मनुष्य अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करे, और यदि सत्ता यदि बात मानती नहीं है तो उसका विरोध किया जाए। तो जेपी ने 74 के आंदोलन को नेतृत्व दिया, बिहार में ही नहीं और हर जगह दिया। उस समय नारा भी था कि नया बिहार बना, नया बिहार बना या नहीं बना, नए देश बनाने की बात, पूरा जोश था। मुझे भी मौका था कि उस समय भी नारे लगाए जाते थे, चुप चुप की हो जाए प्रकार, माँ बहनों की यही पुकार, इस तरह के बहुत सारे थे लोगों की पूरी बिहार में और गुजरात के अन्य भागों में भी जो जेपी के प्रति जो है लोगों का सम्मान बढ़ा था और लोगों को लगा का जो एक संबंध जो क्रांतिकारी था और उसी रूप में हमारे सामने में है। हाँ, वही आंदोलन जाकर के जो है उसको उन्होंने बताया। उसी समय 5 जून को 75 को उन्होंने संपूर्ण क्रांति की जो विचार को था, पटना में भाषण देते समय उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक हमें सत्ता परिवर्तन के बाद अच्छे लोग चुन करके आवे और सत्ता के जो वास्तविक है उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंदर जो है अंदरूनी है,
केवल सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विभिन्न तरह के क्षेत्रों समाज क्षेत्र है उनमें परिवर्तन की बात की जानी चाहिए। तो उन्होंने उस बात को संपूर्ण क्रांति की बात को रखा। हालांकि कई विद्वानों ने इस पर काफी चर्चा, वेस्टर्न विद्वानों ने भी इस पर काफी चर्चा की जेपी का जो टोटल रिवोल्यूशन था क्या वो वास्तव में रिवोल्यूशन था या नहीं था। हालांकि जेपी के मन में ये मार्क्सवाद की विचारधारा रिवोल्यूशन वाली थी, उसी विचारधारा से हट करके हिंसा से जब नहीं, लोगों के सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से, जन सहयोग के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो जयप्रकाश नारायण ने उस विचार को दिया और उस विचार को ही आगे बढ़ाते हुए जो 77 के आपातकाल की जो घोषणा हुई उसके बाद से जो है परिवर्तन आया। आपातकाल की घोषणा के संबंध में भी जयपुर के जो भाषण है बड़ा ही निर्णायक माना जाता है कि जगमोहन सिन्हा थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे, उन्होंने राजनायन के पिटीशन पर जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है उन्होंने गलत बता दिया कि है, तो उसके बाद जो कहा गया कि वो इस्तीफा दें और जयप्रकाश नारायण ने भी अपने जो आग्रह किया कि इस्तीफा दें, अगर नहीं मानता है तो हम उनकी बात नहीं माना। तो इस स्थिति में आपातकाल की घोषणा श्रीमती गांधी ने 26 जून को किया और जयप्रकाश नारायण सहित बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और जयप्रकाश नारायण की तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई। बाद में उनको जेल से छोड़ दिया भी गया। ये पटना कॉलेज का छात्र था, उस समय भी जेपी को देखने का मौका मिला कि वो दरभंगा हाउस में मंदिर का जो उसमें सांस्कृतिक कहिए और धार्मिक कहिए कि लोगों के बीच में कैसे जाए, कहीं किसी को मिलने दिया नहीं जाता था। उन्होंने कहा कि दरभंगा हाउस में काली की जो है माता के दर्शन करने के जाओ, आए पूरी सुरक्षा बल से। तो धीरे धीरे खबर फैल गई पटना कॉलेज में और दरभंगा हाउस में पीजी के स्टूडेंट सभी छात्र आगे जो उस रोड को लगभग घेर सा लिए थे। तो जेपी का जो उस समय भी जाकर के उन्होंने दर्शन किया, छात्रों को केवल इशारा के ही माध्यम से वो अपनी बात को रखी। लेकिन जेपी की उपस्थिति से ही छात्रों में, शिक्षकों में एक जोश आ गया था कि हमें आपातकाल का विरोध करना चाहिए और विरोध जारी भी रहा और सत्ता में परिवर्तन भी हुआ और नई सरकार बनी भी। नई सरकार में भी नेताओं को उन्होंने आग्रह किया था कि भ्रष्टाचार नहीं होंगे, शपथ भी ले दिलवाया उन्होंने गांधी जी के समाधि पे ले जाकर। लेकिन नेताओं में आपसी स्वार्थ इतनी भरी हुई थी ये पार्टी चल नहीं पाई और जेपी का जो डायलिसिस वाली समस्याएं थी तो उसमें वो बराबर उसी में रहे, तो उसका स्वास्थ्य गिर जाने के कारण वो जो अपनी समग्र क्रांति की विचार को तो आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन एक रूप से जब ये भ्रष्टाचार तो दूर नहीं हुआ, शिक्षा बेरोजगारी वगैरह समाप्त नहीं हुई, जनसंख्या बढ़ती गई, समस्या यूं ही बनी रही। लेकिन मैं भी एक सामाजिक परिवर्तन में भी समग्र क्रांति का एक रूप है अभिजात्यों, चेंज इन द एलीट। जो रूलिंग क्लास है उसका केवल सत्ता में परिवर्तन वंशवादी नहीं समाप्त, उनके कंपोजिशन में परिवर्तन होना चाहिए। तो रूलिंग एलीट जो भारत के थे उसमें परिवर्तन हुआ। जो पहले उच्च वर्गों के हाथ में ऊंची जात के लोगों के भी देश में ही सारे, खासकर उत्तर भारत में उनकी शासन था। तो धीरे धीरे मध्यम जातीय दलितों के भी राजनीतिक पार्टिसिपेशन बढ़ा और बिहार, वेस्टर्न भारत में तो कहे जो भी कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार वगैरह में, तो अभी जो अभिजातियों का एलिट वर्ग का एक ऐसा परिवर्तन हुआ जो आरक्षण भी उन लोगों को मिला और फिर सत्ता में बिहार में ही लालू नीतीश जी की अनवरत राजनीति एक मध्यम वर्ग की जातियों की जागरण हुआ। हालांकि कुछ लोग इस बात को देते कि अनवरत प्रयास था में जो कर्पूरी ठाकुर जी का प्रयास था, समाजवादी पार्टियों का प्रयास था, तो वो सीमित दायरे में था। लेकिन जो सत्ता में परिवर्तन, सत्ता की भागीदारी जिस तरीके से हुई और जो लालू जी को जो सत्ता मिल गई, तो इस तरह से जो एक हुए बिलान सिंह की कई जगह यूपी में मिली तो इस तरह से जो सत्ता में मध्यम जातियों की जो भागीदारी हुई, कई जगह दलित जातियों की जब हुआ, जैसे बीएसपी का जागरण हुआ, तो टोटल जो रिवोल्यूशन वाली बात थी अभिजातियों की परिवर्तन में सामाजिक संरचना और राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी में बड़ा परिवर्तन हुआ। और आर्थिक क्षेत्रों में किसी के क्षेत्र में भी एक महान परिवर्तन ये हुआ कि जो आरक्षण के बाद से बहुत सारे जो संबंध थे दूसरे जगह चले गए, मध्यम जातियों के पास में जमीन आई, किसी के स्ट्रक्चर में भी जाकर के काफी परिवर्तन हुआ। तो जेपी की जो समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति की विचारधाराएं थी, तो सामाजिक स्तर में परिवर्तन की भी, सामाजिक न्याय की बात हुई और समाज के जो हेलो सर, kindly conclude please. हो गया
टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, क्या कर रहे हैं? अब देखिए हो गए हैं सर। एक बार ऑन करके देखिए। नहीं हम नहीं कर सकते, वही खुद करें, हमने म्यूट नहीं किया। अच्छा उन्होंने किया, ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हुआ। मेरा कर्सर वहां आता है, मैं कर्सर देख रहे हैं, कर्सर यहाँ पर। थैंक यू। अब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है। कन्हैया कुमार, सिद्धार्थ दास, ज्ञानवती देवी, विकास कुमार पासवान, विष्णु कुमार, पवन कुमार, रविशंकर, सत्यम कुमार, डॉक्टर नंदन कुमार, कमलेश कुमार, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, ये ऑनलाइन बोल रहे हैं, ये ऑनलाइन, पहले ऑनलाइन फिर ऑफलाइन। कुलेंद्र कुमार, रंजन प्रसाद, ऋषिकेश कुमार, सोनी कुमारी, नेट बंद हो जाएगा 5 बजे क्या करो? डॉक्टर गौतम कुमार, डॉक्टर रवि कुमार राम, श्रवण कुमार राम, डॉक्टर श्रवण कुमार राम, आशुतोष पुरुषोत्तम, रंजीत कुमार. These 20 names are there. They are not online. Better we should shift to the offline presentation. सरवन कुमारी, पार्टिसिपेंट हैं, वो फिर से बोल दो ऑनलाइन के लिए सेक्शन देख रहे हैं, चेक कर लीजिए। सर ये सब ऑफलाइन है ना? नहीं ऑनलाइन सर बोले हैं, तो ऑनलाइन ही होगा। 20-20 पार्टिसिपेंट ऑनलाइन है। Anyone participant in online available? Yes sir. Yes sir. Yeah, kindly introduce yourself and conclude your presentation in 3 minutes. Naranja. To Yes, sir. begin मैं with, Dr. Abha Kumari, sir. heartfelt. Excuse me, sir. This is Pratima Saxena from DAV College, Kanpur. बारी-बारी से बोलिए आप लोग। हाँ, शुभम झा बोलिए। I'm DDM College, Muzaffarpur. शुभम झा। Yes sir. शुभम झा बोलिए। Hi, this is Raghavesh Naranja. To begin with, a very good afternoon to all my teachers, respected dignitaries and dear friends. Today we are celebrating the Lok Nayak Jayaprakash Narayan's 190th birth anniversary. On this pious occasion, I would like to portray his administrative thoughts on plenty of his welfare and developmental changes of the country, in which I would like to convey 4 points of Jayaprakash Narayan's administrative thoughts among his consensus. Number 1, views on socialism. Number 2, views on nationalism. Number 3, modern democracy. And the last one is total revolution. Number 1, views on socialism. Jayaprakash Narayan was a great proponent of socialism, and his idea about socialism was depicted in the book Why Socialism. According to him, economic disparity and private ownership on the means of production is the root cause of all the problems, and if we provide means to everyone, then the problem of economic disparity will be reduced automatically. He further said, mere nationalization, the industry will not be established. The socialization, because it will strengthen industries, will not
be established the bureaucracy and promote the tendency of centralization. Hence, he proposed the idea of decentralization in socialism, such as number one, decentralization of small scale industries will remove its economic disparity. Number two, decentralization in agriculture, the ownership of the land must be with the land cultivators and promote cooperative agriculture. Number three, by promoting government loan and market system in agriculture sector will save the land cultivator from the exploitation of sahukar and other businessmen. Now, coming to the next point, he also suggested the ethical and democratic means for the socialization of the agriculture and industries. He believes that the high ideals of socialism can only be established in the independent India, and we have to develop political consciousness among workers, peasants, and poor middle classes to end foreign slavery. He expressed the belief that socialization will be established when class consciousness will emerge among all the weaker sections, farmers, Dalits, and poor. According to him, Marx socialism has developed in accordance with the basic ideals of Indian culture, always sharing and consuming, emancipating from low quality desires and the instinct of grace. Therefore, it is misleading to call socialism an anti-Indian culture. Jayaprakash Narayan suggested three interpretations of socialism. I will conclude. The Please conclude. fake socialism or communism, established through methods of violence. The second one is democratic socialism, established by law state power. The last one is spiritual socialism, established by changing the attitude and nature of people through voluntary efforts. In this way, Jayaprakash Narayan was searching. Next participant. आभा कुमारी. आभा कुमारी. Yes, sir. सर मैं आभा कुमारी एमडीडीएम कॉलेज मुजफ्फरपुर से हूँ. आज बड़े गौरव का दिन है कि जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला है. इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ. सर मैं जयप्रकाश नारायण के ऊपर बहुत कम समय में प्रकाश डालना चाहती हूँ. लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी आधुनिक भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान रखते हैं. ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने का गौरव हासिल किया है. उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी. 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया. इससे पूर्व 1950-60 के दशक में भूदान आंदोलनों में भाग लेकर लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की और बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली. गिरते स्वास्थ्य के बावजूद जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ देश को एकजुट करके 1977 में इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया. संपूर्ण क्रांति का दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में तो बदलाव लाया ही, साथ ही देश में सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ. आज़ादी के बाद वे बड़े बड़े पद हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने गांधी के आदर्शों की सोच नहीं छोड़ी और सादा जीवन जीकर वे त्यागमय जीवन व्यतीत कर गए. 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के एक छोटे से गांव में सिताब दियारा नामक गांव पर जन्मे जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे. वे ऐसे समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है. 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त समाज सेवा के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी नवाजा गया. इतना ही नहीं, पटना के हवाई अड्डे का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया. जयप्रकाश नारायण के जीवन की विशेषताएं उनके व्यक्तित्व के आदर्श विलक्षण और अद्भुत हैं, जिसके कारण वे भारतीय राजनीति में अन्य नायकों से अलग स्थान रखते हैं. जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में ब्रिटिश शैली के स्कूलों की पढ़ाई को छोड़कर वे बिहार विद्यापीठ से उच्च शिक्षा प्राप्त की.
1948 में आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। बाद में वे चुनावी राजनीति से अलग होकर विनोबा भावे के साथ जुड़ गए। जीवन भर समाजवादी विचारधारा के जरिए सामाजिक परिवर्तन करने वाले देश के ऐसे पड़ाव पर राजनीति में वापसी की जब देश के युवा बिना नेतृत्व के चल पड़े थे। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए वे संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण को 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। कंक्लूड करिए, कंक्लूड मैडम। ओके सर। इंदिरा गांधी जी को पदच्युत करने में उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। सर समय कम है। विकास कुमार पासवान। म्यूट करके अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। जी सर, मैं विकास कुमार पासवान, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, LNMU। सर मैं कहना चाहता हूं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी रहे हैं। मैं इनके बारे में बहुत कम समय में 2 लाइन बोलना चाहता हूं। सर, यदि एक ऐसे गांधीवादी व्यक्ति का नाम लेने को कहा जाए तो आवश्यकता पड़ने पर क्रांति का मार्ग अपनाने में भी पीछे न हटा हो तो जुआ पर केवल एक ही महान व्यक्ति जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा, जो अपनी जुझारू प्रवृत्ति और अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के कारण अपने समकालीन युवा वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और जनता ने उन्हें लोकनायक के संबोधन से विभूषित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार प्रांत में छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और कहना चाहूंगा आगे, अमेरिका से लौटने के पश्चात कुछ समय तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता रहे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उद्देश्य से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वर्ष 1934 में कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट नवयुवकों ने जब अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो जयप्रकाश नारायण इसके संगठन मंत्री बनाए गए। इस पार्टी में उनके साथ राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और आचार्य नरेंद्र देव जैसे राजनेता भी थे। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश दोनों ने मिलकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण देश भर में कंक्लूड करिए। जी सर, थैंक यू सर। ऑनलाइन कोई और है बोलने वाले? यस सर। क्या नाम है? सुलोचना कुमारी, होम साइंस डिपार्टमेंट। सर मैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। पार्टिसिपेंट हैं आप क्या? जी जी जी, जी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जी। जयप्रकाश ने संविधान और लोकतंत्र में स्पष्ट रूप से भेद किया है। संविधान में सत्ता कानून के हाथ में होती है, लेकिन लोकतंत्र में सत्ता लोक के हाथ में होती है। संविधान जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने की व्यवस्था नहीं करती है, किंतु लोकतंत्र भ्रष्ट प्रतिनिधियों को 5 वर्षों के भीतर वापस बुलाने का समर्थन करती है। जयप्रकाश ने लोकतंत्र में जनता के 3 अधिकारों को स्वीकृति दी। पहला, प्रतिनिधि को वापस बुलाना। दूसरा, राजनीतिक दलों से अलग जनता का उम्मीदवार खड़ा करना। तीसरा, सरकार से मुक्त लेकिन सरकार के सहयोग से गांव-गांव, नगर-नगर का जीवन चलाने की स्वायत्तता। जयप्रकाश नारायण का भरोसा था कि नवीन युग संसदीय लोकतंत्र का युग है।
संविधान, राजनीतिक दल और चुनाव की इसमें अहम भूमिका है, लेकिन ये चीजें महत्वहीन है। अगर लोगों में नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं होता है, इसलिए वे दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा पर बल देते थे। दलीय राजनीति से कभी भी उस स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसके लिए वे और अन्य लोग लड़ाई लड़ रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन राजनीति के लिए 4 बड़े सुझाव दिए थे। पहला, राजनीतिक दल समाप्त कर दिए जाने चाहिए। चुनाव का जो ढंग है उसे बदल दिए जाने चाहिए। उन मत की प्रभाव के द्वारा ही ग्राम से लेकर केंद्र तक चुनाव होना चाहिए। दूसरा, सर्वोदय समाज दलगत नीति से स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा, सभी दल के लोगों को सर्वोदय के कार्यों के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि दलीय राजनीति का अंत हो। चौथा, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए उम्मीदवार को अपने दल की प्रतिबद्धता का त्याग कर देना चाहिए ताकि दलीय सिद्धांतों के कठोर कवच से निकलकर वे स्वतंत्र रूप से काम कर सके। थैंक यू सो मच। हो गया सर ऑनलाइन। हेलो सर, हमारा नहीं हुआ है। श्याम मोहन मिश्रा, डॉक्टर श्याम मोहन मिश्रा। अब जुड़ रहे हैं सर, उसके बाद फिर आ रहे हैं। हेलो डॉक्टर श्याम मोहन मिश्रा। अभी जुड़ रहे हैं। हेलो प्लीज स्टार्ट। हेलो मिश्रा जी। जी सर। प्रणाम करिए। जी सर नमस्कार। सभी वरिष्ठ शिक्षकों को सादर प्रणाम, सहयोगियों को सभी को नमस्कार। आज आयोजित सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार, जो संपूर्ण क्रांति के जनक श्री जयप्रकाश नारायण जी के जन्म शती पर आयोजित हो रही है, उसमें मेरा विषय है श्री जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन में उदारवादी लोकतंत्र की समालोचना। इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि आज जब पूरे विश्व में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के साथ एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का जो प्रयास किया जा रहा था, क्या वह फेल हो गया है? जैसा कि दावा किया गया था जब सोवियत संघ इसी अफगानिस्तान में पराजित होकर वापस जा रहा था, तो तमाम पश्चिमी अमेरिकी राजनीतिक चिंतकों ने यह दावा किया था कि हमें सोवियत संघ के पतन के साथ ही उदारवादी लोकतंत्र ने अन्य सभी प्रकार की शासन प्रणालियों, जो वैकल्पिक शासन प्रणालियां थीं, विशेष रूप से मार्क्सवादी शासन प्रणालियों, समाजवादी शासन प्रणालियों पर अपनी अंतिम विजय हासिल कर ली है। फ्रांसिस फुकुयामा जैसे राजनीतिक चिंतकों ने इसे इतिहास के अंत की संज्ञा प्रदान की और कहा कि उदारवादी लोकतंत्र संपूर्ण और अंतिम शासन प्रणाली के रूप में अपनी अंतिम विजय प्राप्त कर चुकी है। इसके आगे अन्य कोई शासन प्रणाली उदारवादी लोकतंत्र को चुनौती देने में समर्थ नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि उदारवादी लोकतंत्र के बारे में हमेशा से ऐसे दावे किए जाते रहे हों और उन्हें चुनौती न मिली हो। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही भारतीय राजनीतिक चिंतन में उदारवादी लोकतंत्र की मूलभूत स्थापनाओं के बारे में शंका व्यक्त की जाती रही है और उसकी समालोचना प्रस्तुत की जाती रही है। गांधीवाद के रूप में गांधी जी ने सर बंद हो। बंद कर दिया। नहीं मैं नहीं बंद किया। एक ये बीएचयू के हाँ हेलो सर। हाँ हेलो सर। हेलो हेलो सर। हाँ मैं डॉक्टर प्रभाकर, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। वेरी गुड सर। व्हाई डोंट यू स्टार्ट सर प्लीज। जी बोले सर। सर मेरे टॉपिक का नाम है जयप्रकाश नारायण और भारतीय लोकतंत्र।
हेलो 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 सर, आवाज आ रही है क्या? बोलिए ना भैया, बोलिए। आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है पूरी अच्छी तरह से। ये सर, भारतीय राजनीतिक मूल्यों के रक्षक, महानायक एवं जननायक जेपी ने भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक नारा दिया था कि जात पात को तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यह तत्व तब से लेकर के आज तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करती आ रही है। वर्ष 1974 में तत्कालीन राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्षुब्ध होकर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय सामने आ रहा है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर कड़ा प्रहार है। जयप्रकाश नारायण ने कहा, विधायिका का विघटन मेरे क्रांति का उद्देश्य नहीं है। भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस व्यवस्था की उपज है। वे तभी पूरी हो सकती जब संपूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए क्रांति अर्थात संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। जेपी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए संपूर्ण क्रांतियों में 7 क्रांतियां शामिल हैं। ये क्रांतियां हैं राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। लास्ट में जेपी ने कहा, संपूर्ण क्रांति से मेरा तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना है। जेपी के आदर्श और उनके मूल्यों पर चलकर भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद सर। Yes, sir. Kindly conclude. हो गया, conclude कर दिया। अच्छा, तो next. ऑनलाइन हेलो सर। हेलो सर। Yes, ma'am. Why don't you introduce yourself? सर, माई सेल्फ प्रतिमा सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डीएवी कॉलेज कानपुर। So you are from सर, मेरा टॉपिक है please. सर मेरा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण एवं उनकी संपूर्ण क्रांति की अवधारणा। उससे पहले बहुत सारे लोग संपूर्ण क्रांति के विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं, तो ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी ने छात्र राजनीति और युवा नेतृत्व के अंतर्गत लोकतंत्र को गति देने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि जो सबसे दलित, शोषित और वंचित लोग हैं समाज के, उनकी भी लोकतंत्र में सत्ता में समान रूप से भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल ऊपर कास्ट के या ऊपर वर्ग के लोग ही सत्ता में अपनी भागीदारी करें। उनका ये तात्पर्य था लोकतंत्र से कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र से लेकर के और निम्न स्तर तक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। समाज के सभी लोगों को, सभी दलित वंचित वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए सत्ता में। और अभी जैसे मुझसे पहले उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति से उनका तात्पर्य समाज के सबसे अधिक दबे कुचले और व्यक्ति को सत्ता के शिखर पर देखना था। तो जो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल रेवोल्यूशन में उनकी 7 तरह की क्रांतियां हैं, जिसको उन्होंने अभी बताया है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक। तो उनका मत ये था टोटली कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज में हर स्तर पर समान रूप से अपनी भागीदारी करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोकतंत्र के जो 3 आधार स्तंभ हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों का ईमानदारी से पालन करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को हर प्रकार से उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। थैंक यू सर। इसके अलावा Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू सर। Next. I think nobody is online. Now you conclude this session. And better we should start the offline. Online session is over with the kind permission of the chair. Without having the president, is addressing the president.
We have not been. You see, you are not declared for sale. तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशन सब लोग कुमारी एब्सेंट देन कर देना है एब्सेंट ए भी कैपिटल बी भी कैपिटल एब्सेंट I think Professor Alok Ranjan should speak later on. Let others speak, right? That would be better. It would be a concluding remark. तो you stand for equality. 3 मिनट में समाप्त करना है आपको। सोचने में लगेगा 3 मिनट। बोलिए बोलिए, अरे आवाज आ रहा, बोलिए ना। सम्माननीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित हमारे ऑनरेबल सर डॉक्टर मुनेश्वर यादव सर, डॉक्टर मुकुल बिहारी वर्मा सर एवं उपस्थित हमारे रिसर्चर्स और साथी, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बड़े खुशी की बात है कि आज हम लोग जयप्रकाश नारायण जी की जयंती समारोह में शिरकत कर रहे हैं। हम सबों ने सुना, विभिन्न विचारों को सुना, विभिन्न विद्वानों को सुना, उनके जेपी के आज कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर, उनके दर्शन पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चर्चा हुई। हम लोगों ने सुना जेपी जिन्हें कई रूपों में हम याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक नेता के नायक के रूप में, सर्वोदय नेता के रूप में और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता के रूप में उन्हें याद किया जाता है। जीवन को जेपी के जीवन यात्रा को मोटे तौर पर 3 चरणों से गुजरा है। पहले मार्क्सवादी विचारधारा, के साथ साथ समाजवादी क्रांति के सपना संजोए। उसके बाद भूदान आंदोलन से जुड़कर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, जो जमींदार थे उनसे हृदय परिवर्तन करा के उन्हें जमीन मुहैया कराने का जो आंदोलन था उसमें शिरकत किए। और उसके बाद जो 1974 में संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया। इन 3 चरणों का हम अध्ययन करें, हम देखें तो उनके पूरे जीवन में जो बातें आती है कि जो कम्युनिस्ट की विचारधारा है उसमें उसकी छाप कहीं ना कहीं हर एक आंदोलन पर दिखती है। यूं कहे तो उनका पूरा जीवन गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, पीड़ितों के जो डेमोक्रेसी में समायोजन हो सके, वो लोकतंत्र उन तक पहुंचाना चाहते थे। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी चाहते थे, फॉर्मल डेमोक्रेसी की जगह सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी चाहते थे, ऐसा उनका विचार था। उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा था और उन्होंने जो देश के सामने मिसाल कायम की वो बहुत ही कम नेताओं में दिखती है, बहुत ही कम लोगों में दिखती है। या यूं कहे तो भारतीय इतिहास में अगर
दिख रहे हैं, जिस तरह के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिख रहे हैं, ठीक वैसे ही परिस्थिति में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष किया था। आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और समाज में जिस तरह से तानाशाही रवैये जैसा किसी पार्टी के द्वारा, किसी एक पार्टी के द्वारा कि लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई पार्टी तय करेगी, इस तरह से जो समाज में विकृति फैल रही है और वो डेमोक्रेसी में लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, आज जिस तरह से समाज में दिख रहा है, हम सोशल जीवन में देखते हैं तो गाहे बगाहे मिलता है और जिस तरह से कम्युनिज्म जैसी बात होती है, उसमें उनका जो जीवन है, उनका जो दर्शन है, निश्चित रूप से हमें प्रेरित करता है और राजनीति के लिए आगे आने वाले समय के लिए हमें प्रेरित करता है। एक मिनट सर कंक्लूड करेंगे। उनका जो दर्शन था उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कैसे एक गरीब आदमी, कैसे एक जो 50% से ज्यादा है जिसकी संख्या, उसका प्रतिनिधित्व कैसे हो पाएगा? इतना महंगा चुनाव हो गया है, कैसे गरीबों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा? कैसा वो दौर था जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हुए और आज के दौर में जो चुनाव सुधार की बात करते थे, राइट टू रिकॉल की बात करते थे और उनके पीछे जो दर्द था, अब उसको समझने की जरूरत है। हम ज्यादा नहीं कहेंगे। जब जब लोकतंत्र को बचाने की बात होगी, जब जब व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, निश्चित रूप से जयप्रकाश नारायण याद आएंगे और प्रासंगिक रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। केशव कुमार चौधरी, 3 मिनट। कोई इंट्रोडक्शन नहीं। सरलता, सज्जनता और सुजनता की प्रतिमूर्ति माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं केशव चौधरी, MA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक, आज का टॉपिक है जयप्रकाश नारायण के सामाजिक विषय। मैं उस पे अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक क्षितिज पर एक जज्वलन वाली अमान ऐसी नक्षत्र हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा और एक दिशाहीन पथ पर अपमानित, लांछित, अपेक्षित लोगों को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी। साम्यवाद से प्रभावित होकर पुनः समाजवाद की ओर उत्प्रेरित होना उनके जीवन यात्रा का एक बदलता कदम है। राजनीति से संन्यास लेकर सर्वोदय के सिद्धांतों को आत्मसात कर भूटान और ग्राम दान जैसे हृदय परिवर्तन करने वाले आंदोलन में उनका सम्मिलित होना, उनके उदार मन, ये सच्चे आत्मिकता होना परिचायक है। सर्वोदय से संपूर्ण क्रांति तक की जीवन यात्रा उनके व्यक्तित्व के उठते, उभरते, टहलते, मिटते उनके सिद्धांतों की कहानियां हैं। जयप्रकाश नारायण विद्रोही गीतों के साधक और गायक थे। उन्होंने अन्यायियों को मौन रखकर स्वीकार नहीं किया, बल्कि अन्यायियों के प्रति उन्होंने सदैव संघर्ष किया। आधुनिकीकरण की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। भारत की सत्ताधारी शक्तियों के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करके अपनी कम सामर्थ्य का समुचित परिचय दिया। जयप्रकाश नारायण के अनुसार हमारे देश में क्रांति के मार्ग में जन विरोधी सरकार तो एक बहुत बड़ी रुकावट नहीं है, स्वयं समाज कम रुकावट नहीं है। वर्णों, संप्रदायों, जातियों में बैठे हुए समाज के कारण हमारे अंदर ऐसे गलत मूल्य, संस्कार और अंधविश्वास हो गए हैं कि उनका न्याय और क्षमता की जीवन पद्धति से मेल नहीं बैठती। इसलिए जेपी यह मानते थे कि समाज की बुराइयां, छुआछूत, जात पात के झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े सब समाप्त होने चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम इंसान हैं, यह विचार फैलाना चाहिए। गांधीनिस्ट सामुदायिक लोकतंत्र को एक दूरगामी लक्ष्य मानते हुए जेपी ने राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति के लिए तत्काल उपयुक्त परिवर्तनों की हिमायत की थी। 1959 में प्रकाशित अपने निबंध भारतीय राज व्यवस्था का पुनर्निर्माण और 1961 में प्रकाशित लोक स्वराज में जेपी ने जनता की व्यापकता, हिस्सेदारी वाली समुदाय, दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की थी। लेकिन 1974 के बिहार आंदोलन के दौरान जेपी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना आंदोलन का तत्कालीन उद्देश्य हरगिज नहीं है। यह एक अति दूरगामी उद्देश्य है जिसे एक वर्गीय और जातीय विहीन यह अवसर देने विभाग माननीय अध्यक्ष
नीतू कुमारी, मोहम्मद फखरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन अंसारी, विजय शंकर चौधरी। सर सीधा कंक्लूड बुलवाइए ना, टाइम भी 4:35 हो गया। विजय जल्दी लास्ट रिजल्ट बोल रहे। डिस्कस क्या है? आदरणीय मंच, सम्मानित मंच, मेरा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण के दलविहीन प्रजातंत्र पे कुछ बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली भारत की जो समाज है, जो मेंटल सोसाइटी है, यहाँ पर देखते हैं कि हम जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और अलगाववाद और जहाँ तक सवाल है समाज का, तो कुछ गाँव सब का जो प्रवेश देखेंगे, जैसे कभी काल बहुत जो है हैवियर होता है, जैसे मंदिर कीर्तन और जो भोज भात में चाहे भोज में एक साथ कुछ चीज ऐसे हो जा रही है कि जो इसमें अलगाव की स्थिति हो जाता है, विरोध का स्थिति हो जाता है। एक प्रोफेसर आसिम राइट सचू बाजब हो रही, उन्होंने कहा था कि लैटिन अमेरिका में जब बात होता है तो जिस तरह जयप्रकाश नारायण बाबू का जो विचार था उसी तरह लैटिन अमेरिका में है कि उसमें सुधार रिफॉर्म्स उसने कहा था कि मुझे सत्ता में आना नहीं है, बट सत्ता में राजनीतिक सुधार करना है, जो बात कर रहे थे। और जब गांधी और जयप्रकाश नारायण के जो है काफी करीब, क्योंकि समय कम है तो बहुत मैं संक्षिप्त बोलना चाह रहा हूँ कि जब दोनों में डायलॉग होता है तो जयप्रकाश नारायण जो शुरू में सारे मार्क्सवादी थे, फिर उन्होंने आचार्य नयन देव को पढ़ा तो उसके बाद वो समाजवादी हो गए, घोर हो गए। उसके बाद उन्होंने अशोक मेहता तमाम जो है कांग्रेस पार्टी का भी उन्होंने गठन किया था और ऐसा डेमोक्रेसी की बात करते थे जिसमें गांधी और इसमें ये होता था, गांधी चाहते थे रिपब्लिक विलेज की बात। गांधी चाहते थे कि जब रिपब्लिक विलेज ऐसा हो जिसमें जनता जो है स्वयं शासन करे और राज्य सरकार का कोई कानून नहीं है। गांधी को भी कहते हैं कि अजंतावादी कहते हैं, राष्ट्रीय अजंतावादी। लेकिन जयप्रकाश नारायण बाबू कहते थे कि जब रिपब्लिक विलेज होगा लेकिन उसमें पावर के लिए नहीं होगा, पावर से अलग होगा, पावर के लिए हम नहीं रहेंगे और इस जो है सर्वसम्मति या समन्वय पे और अधिक से अधिक जो है हम जो है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति को विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज करेंगे और डिसेंट्रलाइज करेंगे इसका यही मकसद था कि डिसेंट्रलाइज करेंगे तो पार्टी पॉलिटिक्स से मुक्त होगा और उनको ये पूरा दुर्गामी जो आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है उसको था कि जब पार्टी लेस होता है तो उसमें निगेटिव खड़ी रहती है और कोई स्वार्थ हित में काम करता है और जो कोई भी राजनीतिक दल जो है समाज को तोड़ने का काम करता है, तो जाति से, धर्म से, भाषा से, अब जानते हैं भाषा के आधार पर ही राज का निर्माण हुआ था। उनको ये बात दुर्दशा थी कि जो है पार्टी जो राजनीति में लोग स्वार्थ हो गए हैं कि अपने अपने हित की बात करेंगे, परिवारवाद की बात करेंगे, एक टॉपिक की बात करेंगे। गांधी भी यही कहते थे जब कांग्रेस पार्टी का जब हुआ था स्थापना और भारत की आजादी हो गई, बापू से कहा कि भारत की आजादी हो गई, आप क्या करेंगे? गांधी ने कहा था कि आपको कांग्रेस पार्टी का विघटन हो जाना चाहिए और कोई सत्ताधारी नहीं होना चाहिए। पूछो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग जनसेवक करेंगे, स्वयं सेवक करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की जो है सुख दुख दर्द में उनकी जो तमाम जो है मुश्किल में समस्या को जो आवाज उठाएंगे। तो जयप्रकाश नारायण बाबू का यही कहना था कि जो समाज में जो लोग हैं, जो विकेंद्रीकरण है उसमें सारे लोग जो है वो जनता के हित की बात करेंगे, अपने उसकी जो प्रतिनिधित्व करेगा और स्वावलंबी विकास करेंगे। सारे लोग की जो है और जो गरीब और निर्बल जो है समाज से जो कट चुके हैं उसको जो है उसको समाज में लाना है, उनको जो है उनका सत्ता में लाना है और अपना हित का जो है स्वावलंबी है, विकेंद्रीकरण खुद करेगा, वो किसी प्रकार का सरकार उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। देखिए अभी गुजरात में कुछ पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हर जिला में जो है चुनाव जो होता है हर जिला में होता है, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनमें सर्वसम्मति से चुन लेता है, उसको अवार्ड दिया जाता है 5 लाख 10 लाख सरकार की जिसमें दिया जाता है कि आप जो है सर्वसम्मति से चुन लीजिए अपना नेता को, ग्राम सभा चुनिए, सारे लोग उसमें इकट्ठा कीजिए, तमाम इशू को निदान करके हो जाता है। इसका आइडियल चुनाव। लेकिन आज के समय में जब उसका आलोचना हम करते हैं कि आज के समय में जब हम मैकेवर पेज को देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी पे जब काम किया ट्विटर है चाहे उसमें कहता है कि आज के राजनीतिक दल जो सीजर वार से अच्छा करने का सर्वोत्तम साधन है, राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक सरकार आज तक नहीं आ पाई है। तो हम आज आधुनिक भारत में जो 21वीं सदी में रहते हैं उसमें लोकतंत्र के बिना एक कहना आदर्श बात है कि गांधी के आदर्श वादे करते थे जयप्रकाश नारायण,
आम व्यक्ति जो है, समाज के दुबले कच्चे अंतिम पैदान के लोग जो है उस राजनीतिक दल में नहीं आ पाएंगे, नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जब जयप्रकाश नारायण उसके बाद संशोधन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि साहब ये तो है कि राजनीतिक दल हो सकता है, कि राजनीतिक दल की जो रवैया है, नेचर जो प्रकृति, उसमें जो चेंज करना होगा। समय कम है, इसलिए धन्यवाद। ताइबा खातून। नेपथ्य से आते हैं। मंच पे उपस्थित स्तर के सभापति, यहाँ उपस्थित मेरे गुरुजनों, आगे बढ़ो। मेरे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे साथियों को मेरा अभिवादन। मैं तैयबा खातून, मैं थर्ड सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। मेरा विषय है जयप्रकाश नारायण एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिसिपेशन ट्रस्ट। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति विचार में दलहीन लोकतंत्र की धारणा भी महत्वपूर्ण है। वे दलीय राजनीति के विरोध क्योंकि इससे समाज में नैतिक पतन, भ्रष्टाचार और स्वार्थ प्रथा फैलती है, जिससे दल का बहुमत हो जाता है। वह समस्त शक्तियों के अपने हाथों में केंद्रित करके लोकतंत्र के नाम पर स्वेच्छाचारी शासन की स्थापना करते हैं तथा जनता को स्वशासन के नाम पर भ्रमित करते हैं। केवल सत्तारूढ़ी दल ही नहीं बल्कि विरोधी दल भी जनहित में कार्य नहीं करते। उनके विचार से लोकतंत्र की वास्तविक उत्पत्ति हेतु राजनीति और आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने पंचायती राज का समर्थन किया। जयप्रकाश नारायण ने उन नेताओं में सिमोर थे जिन्होंने भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में मार्क्सवादी थे, बाद में गांधीवादी तथा समाजवादी थे। अंत में सर्वोदय स्वतंत्रता के बाद सर्वोदय पश्चात कांग्रेस में सरकार द्वारा सपनों को पूरा न हो सके और देश की राजनीति द्वारा लोक स्वराज की रेखा न बनती देख जयप्रकाश नारायण ने विनोबा जी के सर्वोदय का मार्ग अपनाया। सभी राजनीति से दूर रहकर जयप्रकाश नारायण दान ग्राम कंक्लूड करो। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर संतोष कुमार रॉय, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, नाहिद प्रवीण, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर आशीष कुमार बढ़िया, अरुण कुमार सदैव, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद इमरान खान, कौन सा आमीन वसी, श्वेता कुमारी, अभी Good afternoon, everyone. The world is full of diamond sentences, and I'm glad to listen to all of them today. I need your support to make this event memorable and fantastic. To say I'm thrilled to see you all is an understatement. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all. My presentation topic is GP's social life. Jayprakash Nair's life happens to be a life of endless quest for getting suitable ways and means to resolve the socio-economic and political conditions of the toiling masses of the country. Born on 11 October 1922 in a village in Chhapra district in Bihar, his passion for Marxism was so strong that in 1936, JP published a booklet, Why Socialism, arguing that today more than ever before it is possible to say that there is only one type, one theory of socialism, that is Marxism. Total Revolution, Sampurna Kranti, was the last intellectual intervention of Jayprakash Nair in his unending quest to seek and establish such a socio-economic and political order in the country which would turn India into a democratic, federal, participatory, equitable, and prosperous nation in the world.
Gujarat and Bihar. JP's total revolution involved the developments of peasants, workers, artisans, tribes, and all weaker sections of society. He was always interested in empowering and strengthening India's democratic system. He was deeply disturbed by the growth of corruption in the Indian political system. Shweta. Now, just one second, sir. I will conclude. Jayaprakash was a great humanitarian, and his doctrine of total revolution is not only a system of social and economic reconstruction of the Indian society, but it is also a philosophy of moral and spiritual rebirth of the Indian people. He was the greatest mass leader in Indian history after Gandhi, and he was one of the greatest defenders of democracy in the 20th century. As an intellectual, he will continue to have an abiding base in the domain of the social sciences. Thanking you all for giving me this opportunity. Thank you. Shweta, one request is there. Why don't you expand Avinash Kumar, Asmita Ansu, Krishnadev Murari, Dr. Muhammad Jamil Hassan Ansari. Please. नहीं देखो is the assistant professor agro in Belwa or you are from history department? Mithila University. इतिहास विभाग का छात्र हूं, इसी देश में विश्वविद्यालय का मेरे शोध आलेख का विषय है जयप्रकाश नारायण और संपूर्ण हिंदुस्तान के इतिहास के हर दौर में जनमानस में से ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने न केवल बनी बनाई लकीरों को खोज कर लकीरें बनाई, बल्कि एक खुशहाल आजाद भारत के सपनों को नवीन आकार दिया। साथ ही अगर हम भारतीय राजनीतिक इतिहास को नजर दौड़ाएं तो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन महान नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1922 को विजयदशमी के दिन बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सारण के दियरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था सूर्यदयाल और माता का नाम रानी देवी था। अपने माता पिता के घर चौथे संतान के रूप में जन्म जब लिए थे तो पौल जी अर्थात जो बच्चे 4 वर्ष तक वो थे उस काल में उन्हें बोला नहीं जाता था, दांत नहीं आता, जिस वजह से उन्हें माँ उन्हें प्यार से पौल जी करके पुकारती थी। आगे चलते सन 1920 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का विवाह बिहार के मशहूर गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता राजकिशोर प्रसाद की 14 वर्षीय पुत्री प्रभावती के साथ हो गया। और संपूर्ण क्रांति पर कॉन्सेंट्रेट करें सीधे डायरेक्ट। ओके सर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने जन आंदोलन का लक्ष्य किया था संपूर्ण क्रांति। उन्होंने अपनी पुस्तक कारावास की कहानी में लिखा है कि क्रांति करने की जो तीव्रता मेरे मन में थी वह मुझे मार्क्सवाद की ओर अभिनववाद की प्रेम से क्रांति की ओर खींच गई। जयप्रकाश नारायण को बिहार के छात्र आंदोलन की दिशा को संपूर्ण क्रांति की ओर मोड़ने के लिए तत्पर किया और संपूर्ण क्रांति शब्द का प्रयोग जयप्रकाश ने सर्वप्रथम 5 जनवरी 1977 ईस्वी को गांधी मैदान पटना में आयोजित सभा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था और सहमति से जो उन्होंने संपूर्ण क्रांति को व्यापक रूप से संघर्ष का लक्ष्य मान लिया एवं समस्त बिहार में उनका संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। बहुत मतलब है कि माइकल दिक्कत नहीं काम कर रहा है लंबा जयप्रकाश नारायण ने तो संपूर्ण क्रांति 7 प्रकार के संपूर्ण क्रांति का समन्वय है यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक या तेजी से क्रांति होगी तो तेजी से आध्यात्मिक क्रांति के बारे में बताया। उन सभी क्षेत्रों में केवल सुधार और छोटे-मोटे सुधारों की बल्कि निराशाजनक परिस्थितियों को बदलने के लिए जीवन की मूल्यों को बदलने की आवश्यकता को जोर दिया और ये बताया। थैंक यू। इतिहास साक्षी है कंक्लूड करते हैं। ठीक है। नारायण का आक्रोश संपूर्ण व्यवस्था से था। उनके सुधार या परिवर्तन की धारणा व्यापक थी तथा उन्होंने हमेशा राज्य सत्ता के बजाय जनसत्ता का भरोसा किया और इस जनशक्ति के द्वारा सामाजिक परिवर्तन और निर्माण की समस्या को हल करने का संपूर्ण देखा। और संक्षेप में यदि आप कहें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति
भारतीय समाज के आमूल व्यापक परिवर्तन के अंत में इस पंक्तियों से कहना चाहूंगा कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और मेरे इतिहास अध्ययन का नजरिया यह कहता है कि जीवन में कभी सफलता कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, कोई प्रक्रिया है। शायद इसलिए कहा जाता है, यह सत्य भी है कि ज्ञान हासिल करना सही मायनों में सीखना है। धन्यवाद। मैं आपसे यही सब वेट करके आइए बैठिए। डॉक्टर एक नारायण साहब, डॉक्टर विश्वजीत पासवान, डॉक्टर सुधांशु कुमार, Oh, Gunjan Kumar is there. Please come. डॉक्टर गुंजन कुमारी, राजनीति शास्त्र विभाग की ओर से जयप्रकाश की नारायण जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण का आधुनिक भारत के इतिहास में अनोखा स्थान है। वे अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें देश के 3 लोकप्रिय आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने का गौरव हासिल है। जीवन को जोखिम में डालते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के खिलाफ आंदोलन में भाग लेकर लोगों की सोच बदलने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने का काम किया। उनके सामाजिक विचारधारा की चर्चा हम करते हैं। जयप्रकाश जी समाज में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता के कट्टर विरोधी थे। वे भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाना चाहते थे जिससे मनुष्य की शक्ति और क्षमताओं को सफल अभिव्यक्ति मिलने का मार्ग में आने वाली बाधाएं समाज को यथासंभव सामाजिक और आर्थिक विषमता समाप्त हो, सबको अवसर की समानता प्राप्त हो। उनके समाजवाद का उद्देश्य समाज का सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास करना था। इसलिए वे उत्पादन के साधनों पर समाज का सामंजस्यपूर्ण संतुलित विकास करना था। इसलिए वे उत्पादन के साधनों पर समाज के नियंत्रण के पक्षधर थे। राष्ट्रीयकरण के बारे में कहना चाहूंगी कि सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवादी समाज की स्थापना उत्पादन के साधनों के समाजीकरण द्वारा ही संभव होती है। जयप्रकाश नारायण जी ने समाजीकरण पर बहुत जोर दिया। सन 1940 में उन्होंने रामगढ़ कांग्रेस में एक प्रस्ताव रखा जिसका उद्देश्य बड़ी उत्पादन इकाइयों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित करना था। उन्होंने यह भी कहा था कि परिवहन तथा भारी एवं आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति पर आधारित समाजवाद जयप्रकाश नारायण का पूरा लेक्चर नहीं देना है। भौतिकवाद में विश्वास नहीं करते थे। समाजवाद के प्रमुख तत्वों को अपनाते हुए भी भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संस्कृति का यह सिद्धांत मिल बांट कर खाना चाहिए उन्होंने अपना आदर्श बनाया। निष्कर्षतः मैं यह कहना चाहूंगी कि भारत अमेरिका से जयप्रकाश एक कट्टर समाजवादी होकर लौटे। अमेरिका में मार्क्सवाद का गहन अध्ययन किया। गांधी जी के संपर्क में आने पर वे गांधीवादी हो गए और गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में उन्होंने जमकर भाग लिया। उन्होंने महसूस किया कि हिंसा के द्वारा हिंसा मुक्त समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। फलतः गांधी के प्रभाव में आकर उन्होंने समाजवाद का वह स्वरूप अपनाया जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। निष्कर्ष मैं यह कह सकती हूँ कि जयप्रकाश नारायण समाजवादी तो थे ही, उन्हें गांधीवादी समाजवादी करना ज्यादा उचित होगा। धन्यवाद। सनी कुमार, संदीप कुमार चौधरी, सुभाष मणि, दीपक कुमार झा, डॉक्टर कुमारी अनुपमा भारती, धरती के गौरव गाथा को भूलना नहीं। कुछ नहीं जयप्रकाश नारायण का सामाजिक राजनीतिक विचार की प्राथमिकता है। तो मैं अपना विचार जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने जीवन भर आम जनता के लिए कल्याण के लिए अपना संघर्ष किया। एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को
राजनीति में नैतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। वे हमेशा व्यावहारिक समस्याओं पर अनुरूप राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किए। आज वही है, राजनीति में इतना उच्च स्तरीय चुनाव का जो खर्च है, व्यय है, खासकर उस पर सुधार होना तो बहुत ही अनिवार्य लग रहा है। और उस दृष्टि से उनका विचार आज बहुत ही प्रासंगिक कहा जा सकता है। और इसके लिए नेतृत्व युवा को आगे आना होगा। नेतृत्व के लिए यदि युवा इसके लिए आगे नहीं सोचेंगे तो भविष्य हम लोगों का खतरा में है। और इसको हम लोग धरातल पर देखें तो काफी रूबरू हो सकते हैं। निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, राजनेता और आधुनिक भारत के अग्रगण्य विचारक थे। जयप्रकाश की राजनीतिक विचार आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने 30 वर्षों तक एक छत्र शासन करने वाली निरंकुश सरकार को हटाने के लिए गैर कांग्रेसी सरकार को पहली बार लाने में अहम भूमिका निभाई। गांधी से प्रभावित होते हुए जयप्रकाश नारायण राजनीतिक विचार अलग थे। अहिंसात्मक क्रांति और धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों की तरफ वो आकर्षित नहीं थे। उन्होंने साम्यवाद से प्रभावित रहे और तेज गति से होने वाली हिंसक क्रांति, सशक्त क्रांति और सत्तापलट क्रांति के समर्थक बने। अन्याय को सहन करना भी एक अपराध है। उनका संदेश युवाओं के लिए एक संकल्प है जो परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने, नेतृत्व करने और प्रेरित करने के लिए आकर्षित करता है। युवाओं और छात्रों में अन्याय के खिलाफ विरोध करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका विचार आज भी सर्वग्राही है। अपनी समस्या का समाधान करना चाहिए। शोषण के खिलाफ जनमत तैयार कर जनता को प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए। आज हम जनता सोए हुए हैं और जहाँ जैसे जैसे ये गवर्नमेंट को या समाज के जो वर्चस्व लोग हैं, वर्चस्व स्थापित करने वाले लोग हैं, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढाल रहे हैं। और उसी में हम यहाँ करके एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हुए भी जो सामाजिक विकृतियां है उसको सहते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं संकीर्ण मानसिकता में घिर जा रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत बारीकी से देखना होगा और थोड़ा उससे ऊपर उठ करके खासकर हम महिलाओं को जो हम लोग का समस्या है उसके लिए खुद आगे आना है, शोषण के खिलाफ और जनमत तैयार करना होगा। अभी है कि एक नारी यदि जनमत तैयार करे तो दूसरा उसके खिलाफ लेकर के फिर वो बैठ जाती है। हम आप भी पुरुष तो है ही, महिला भी उसमें एग्री है। इसके वजह से भी हम लोग थोड़ा नहीं बहुत पीछे होते हैं। कहने को सशक्तिकरण की ओर चाह रहे हैं लेकिन हम सोच रहे हैं कि बैठ हो रहे हैं। पुरुष और महिला कहीं सत्ता में जाती है और बस पुरुष के हाथ में। ये नारी सशक्तिकरण पर है क्या? सशक्तिकरण पे नहीं है, कहने का है कि अपनी समस्या जो है शोषण के खिलाफ मैं खुद लड़ सकती हूँ। जहाँ सत्ता में आज जो नहीं सर सशक्तिकरण की बात नहीं है, सत्ता में जहाँ महिला की जीत होती है और पुरुष उसका उपयोग सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत लेवल पर जितने भी देखते हैं कि मूर्ख या हो या पढ़ी लिखी महिला जाती है, उसका वो पद का उपभोग नहीं करती है, उसके पद का उपभोग हमारे पुरुष पद कर रहे हैं। महिला है कोई मुखिया, महिला पति है, वो पूरे समाज में अपना एमपी है, मुखिया पति। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो ये यहाँ से थोड़ा सा समाज में विकृति उत्पन्न हो रही है। जो शिक्षित सुशिक्षित वर्ग है उनको बहुत हो रहा है। हम लोग युवा जो है उसके लिए थोड़ा सा प्रेरित होंगे, हम लोगों को भी थोड़ा अपना समस्या समाधान में सुविधा होगी। सशक्तिकरण की बात मैं नहीं कर रही हूँ। थैंक यू मैडम। पुष्पांजलि अभी आज वक्तव्य दो नहीं था दे नहीं दो बचे हुए हैं सिर्फ दो। हाँ डॉक्टर श्वेता है। आज जयप्रकाश नारायण का सामाजिक राजनीतिक विचार पर प्रासंगिकता। तो मैं दिग्गज जी का एक कविता कहना चाहूंगी। वो देखो भविष्य पुकार रहा है, वो दलित देश का त्राता है, सपनों का दर्शाता जयप्रकाश भारत का भाग्य दिलाता है। वह देखो भविष्य पुकार रहा है, वो दलित देश का त्राता है, सपनों का दर्शाता जयप्रकाश भारत का भाग्य दिलाता है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगी जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अपना मूल्य योगदान दिए हैं। उन्होंने जीवन भर आम जनता के कल्याण के लिए संघर्ष किए। एक राजनीतिक दार्शनिक की अपेक्षा एक सामाजिक दार्शनिक अधिक थे। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार को सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ माना है और समय समय पर राजनीतिक सुधारों के बारे में अपने मूल्यवान
मूल्यवान सुझाव दिए हैं ताकि राजनीतिक में नैतिक साधनों का उचित प्रयोग किया जा सके। वे हमेशा व्यवहारिक समस्याओं के अनुरूप ही राजनीतिक विचार का प्रतिपादन किया करते थे। समाजवाद की अवधारणा उन्होंने समाजवाद को लोकप्रिय बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किए। उनका मानना था कि आर्थिक असमानता और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व ही सब समस्याओं की जड़ है। यदि ये जनसाधन को समान रूप से उपलब्ध करा दिया जाए तो वर्तमान आर्थिक क्षमता समाप्त हो जाएगी और अपने को समान रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी तो वर्तमान में आर्थिक क्षमता अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात लेनिन और मार्क्स साम्यवादी साहित्य से हुआ, जिसका अध्ययन कर उनकी सोच मार्क्सवादी बनी। मैं अपने शब्द को यही विराम देती हूँ। थैंक यू। जय बिहार, जय भारत। थैंक यू। ये पता नहीं अब हैरी की सीमा और डॉक्टर पुष्पा कुमारी, बस जो पहले कुछ बोला है वो शब्द नहीं बोले। डॉक्टर पुष्पा कुमारी, इतिहास विभाग, ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय, दरभंगा। मेरा आज का टॉपिक है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के शैक्षिक विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता। जयप्रकाश आंदोलन मूलतः युवा आंदोलन या छात्र आंदोलन के रूप में ही प्रारंभ हुआ। शिक्षा के स्वरूप, अर्थ और उद्देश्य को लेकर स्वाभाविक रूप से जयप्रकाश चिंतित रहे और चलती हुई शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए व्यग्र थे। वे बार-बार स्मरण दिलाते थे कि हमारी शिक्षा पद्धति भारतीय यथार्थ दृष्टिकोण एवं आवश्यकताओं से जुड़ी नहीं है। उन्होंने वर्तमान शिक्षा में शिक्षित युवाओं के मन में नौकरी की लालसा तो जगाई, पर उनमें सांस्कृतिक जीवन, मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण के प्रति उत्साह भाव नहीं जगाया। वे चाहते थे कि पूरी शिक्षा व्यवस्था नीचे से ऊपर तक बदली जाए, ज्ञान को क्रम से, सूचना को भावना से और आदर्शों को यथार्थ से जोड़ा जाए। प्राथमिक शिक्षा सबको मिले, परंतु उच्च शिक्षा ऐसी होगी जिससे शिक्षित रोजगार पा सके, उसमें स्वरोजगार भी शामिल हो और स्वाभिमान भी। वे नौकरियों को डिग्रियों से जोड़ना उचित नहीं मानते थे। शिक्षा और परीक्षा की प्रणाली ऐसी होगी छात्रों में स्वावलंबन विकसित हो सके। नौकरी का अर्थ आत्मा को गिरवी रखना न हो। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा युवाओं के मन में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा भी दे तथा विश्व स्तर पर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रतियोगिताओं के योग्य भी उन्हें बना। पुष्पा प्लीज, अभी एक दिन पूरा लेक्चर सुनेंगे सबका, दिन भर। एक मिनट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की शैक्षिक विचार अधिक क्रांतिकारी थे। वे शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाने की बात करते थे। वे जीवन प्रयोगी शिक्षा की हिमायती थे। वे राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के गुण एवं तत्वों के विकास हेतु कारगर कदम उठाने, मौजूदा संरचना से प्रत्येक स्तर पर सुधार लाना एवं माध्यमिक स्तर से शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाना ही उनका शैक्षिक सुधार की मुख्य योजना थी। जयप्रकाश नारायण जी ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षा का माध्यम, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा उपाधि, शिक्षा रोजगार, शिक्षण विधि, शिक्षा छात्र अनुशासन एवं स्त्री शिक्षा इत्यादि को व्यवहारिकता की कसौटी पर सफलतापूर्वक रखा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि कोई भी सभागार में क्यों आप बुला लेते हो? जल्दी जल्दी नाम बोलो। डॉक्टर श्वेता कुमारी सर। डॉक्टर नहीं, आप बिना पैसे की वकालत क्यों करती हो? मैं लिख के नहीं कर सकता, मैं पैसे का मेरा टॉपिक है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। हो गया समापन कर दीजिएगा इसके बाद। और भारतीय समाजवादी व्यवस्था की बात करेगी। सदाशिव गांधी
पुष्पांजलि आपके नहीं, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप 3 मिनट रुके, सर को सुन करके जाइए, धन्यवाद कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। नैतिक क्रांति डॉक्टर श्वेता, एक 2 वाक्य कहिए, 2 वाक्य बताइए। नहीं हुआ, ठीक है। समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। इस प्रकार से आंदोलन का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज आप धन्यवाद दीजिए। समाज से अन्याय तथा शोषण काम करना, एक नैतिक सांस्कृतिक क्रांति लाना, नया बिहार बनाना तथा हमको नया भारत बनाना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आपका, थैंक यू। दरअसल यह भी एक दिन का और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करना यह भी क्रांति से कम नहीं है लोगों के लिए। 8 to 8 ये 12 घंटे नहीं चलेंगे, 14 घंटे मेरी आवाज भी लगता रही है। अब नहीं, आप दोनों से डिसाइड करिए पहले कौन बोलेंगे। अभी हम अरे आप बोलेंगे पहले, कौन बोलेंगे? वो तब आप बोलेंगे, ये पत्रकार की चालाकी होती है। चंदन जी, पत्रकार तो कुछ कर रहे हैं, थैंक यू। अब हमारे को भी जरूरत नहीं है भाई, तो वैसे ही लाइव चल रहा है। हम खोल कर दिखा दे रहे हैं। कुछ कहा गया है सवेरे सर, ये डिपार्टमेंट में जाएंगे। राज्यसभा में शांति बनाए रखें। ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इंडियन पॉलिटिक्स की जब बात आएगी तो हार्डली कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जिसका ट्रैक जो है हमेशा चेंज हो रहा है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी से जेपी नारायण प्रभावित है शुरू में, और वो गांधीयन रोड पे चलते हैं। Then he goes to, सबने बताया, लेकिन मैं थोड़ा रिपीट करते हुए अपनी बात कंक्लूड करूंगा। Then he goes to America for higher studies. Again comes to India, इंडिया आते हैं और कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस में भी फिर एक अलग पार्टी बनती है, CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। उसके बाद वो असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 का है, उसमें अपना योगदान है उनका। उसके बाद एक और जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नाम की पार्टी बनाते हैं। उसके बाद उदार आंदोलन से जोड़ते हैं और फाइनली कल्मिनेशन होता है उनका संपूर्ण क्रांति के रूप में। तो जेपी नारायण जो है किसी एक पार्टी के नहीं हो सकते। जेपी नारायण, जेपी एक विचारधारा है। जेपी की विचारधारा अपने आप में स्टडी करने लायक है, रिसर्च करने लायक है। ये रिसर्च, उनका जो योगदान है 1965 में जब वो अपने क्रांति को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के जब सबसे ज्यादा एक्टिव रहे होते हैं उन वर्षों में, तब उनको समझा जाता है कि वो मैग्सेसे अवार्ड के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। लेकिन भारत के लोग 1999 में उनके मरने के 20 साल बाद उनको लगता है कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। 98-99 जो भी हो, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जेपी के विचार जो है वो किस स्पिरिट में लिया जा रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है। क्या हम मॉन्यूमेंट्स बना रहे हैं जेपी के, तो मॉन्यूमेंट्स बना देने से काम चलेगा? जब भी इलेक्शंस आते हैं जेपी के, आप सुनेंगे कि मॉन्यूमेंट्स यहाँ बन रहा है, वहां बन रहा है। जेपी के विचारों की बात आती है। 1974 में जब ये क्रांति हो रही थी, संपूर्ण क्रांति, तो उस समय बहुत सारे क्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, क्रॉस पॉलिटिकल लीनियज से लीडर्स निकले
में ही जाएगा फैसला। नाउ रिलेवेंस की बात करें तो जेपी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जेपी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात नहीं करते हैं। जाके 50% जो है वोटिंग हुई, 65% वोटिंग हुई, लेकिन उस तरह की वोटिंग से वो बहुत प्रभावित नहीं है। मेरा समय लिमिटेड है, इसमें मैं थोड़ा सा और बोलता, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसमें लोग जो है, लोगों की सहभागिता हो, लोग एक्चुअल जो है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। और वो बात करते हैं कि एजुकेशन और स्पेशली पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करते हैं। जब तक पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा होगा, अपने अपने लोग होंगे जिसको वो जो है प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, और यही होता है। तो डेमोक्रेसी की जब बात आएगी, जेपी प्रासंगिक हो जाएंगे और डेमोक्रेसी की बात आती रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन को आप ये नहीं कर सकते कि फला देश के लोग या फला राज्य के लोग पॉलिटिकली एजुकेटेड, राजनीतिक तौर पर शिक्षित हो गए, आप नहीं कर पाएंगे कभी। दूसरी बात आती है करप्शन की। करप्शन एक ऐसा इशू है जिसपे जो अनफॉर्चुनेटली हैज नेवर बीन लॉस्ट आउट ऑफ इंडिया। पिछले दशक के शुरुआती वर्षों में एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ करप्शन को लेकर के, बट अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, मैं उसके परफॉर्मेंस पे नहीं जा रहा, लेकिन जो इशू था वो इशू कितना सॉल्व हुआ इस बारे में कुछ फाइनाइट जो है कहना, कुछ स्पष्ट तौर पर कहना ये मुश्किल होगा। तीसरी बात है राइट टू रिकॉल। जेपी 1974 में राइट टू रिकॉल की बात करते हैं, 1974 में। और राइट टू रिकॉल क्या है, एक दो शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। राइट टू रिकॉल ये है कि पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है कोई, आपने बताया कि हम ये करने वाले हैं, एंड व्हेन यू कम टू पावर यू डोंट डू दैट, तो उस समय रिकॉल करने की जरूरत है, उनको वापस लाने की जरूरत है। जेपी ये बात 1974 में कहते हैं, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसके लिए एक बिल पास हुआ था, लेकिन बिल पेश हुआ था, सॉरी, जो पास नहीं हो सका। अगेन 2016-17 हम तेजी से आते हैं, 2016-17 में एक फिर प्राइवेट मेंबर बिल आता है जो कि फिर पास नहीं हो पाता है। बट ये म्युनिसिपल लेवल पे कुछ स्टेट्स में ये आइडिया आया है और इम्प्लीमेंट इसका लीगल प्रोविजन हुआ है। जेपी बात तो यहाँ इस मसलों पे, इन विचारों पे जेपी आज के डेट में भी रिलेवेंस है। अगला जो विचार है वो ये है पावर सीकिंग का। जेपी 1952 में जवाहरलाल नेहरू ऑफर करते हैं इनको कैबिनेट पर, और वो क्यों ऑफर करते हैं? क्योंकि 1950 में एक सीनियर लोग हैं कैबिनेट के, सरदार पटेल, उनका निधन हो गया है। आपको एक हो सकता है आप लोग जानते भी हो, एक मैं फैक्ट बताऊं कि जेपी को नेहरू इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, उनका समर्थन करें। जेपी को वो इसलिए चाहते हैं कि जब नेहरू कुछ गलत पॉलिसी डिसीजंस जो है, कई बार सही होता है, कई बार गलत पड़ता है, तो उस पॉलिसी डिसीजंस को चेक करने के लिए, वो चाहते हैं कि, क्योंकि जेपी तो है ही है, इंटेलेक्चुअल है, अमेरिका से पढ़े हैं, और एक कारण ये भी है क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जो है जवाहरलाल नेहरू देते रहे हैं, और चूंकि ये अमेरिका से पढ़े तो एक रीजन ये भी हो सकता है। तो जेपी को इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो उनकी बात मान लें, वो इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि उनको चेक किया जाए। एक और इशू है, तो इसलिए अब सोचिए 1942 में, 1942 में जो सूत्रधार है भारत छोड़ो आंदोलन का, उसको आसानी से मिनिस्टर वो किसी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पहुंच गया होता, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। अगेन
JP denotes the diversity of India. JP denotes the idea of India. What is idea of India? Idea of India is unity in diversity. JP is very happy. JP is very much comfortable to meet even RSS people. और ये मैं अभी रिसेंटली एक लेख में पढ़ा और इसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन लाइक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर वेंकैया नायडू ने लिखा है ये बात कि ही वाज इक्वली कंफर्टेबल टू मीट विद डिफरेंट पीपल। तो जो मैं कंक्लूड करूंगा सर, ज्यादा समय नहीं होगा, मैं इस पे कुछ और बोलना चाह रहा था। तो जो सूरज जी बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि अनएम्प्लॉयमेंट थे, अराजकता है, अरे भाई 1974 में ये लीडर्स वही तो थे जो आज बिहार में है, जो आज आने वाले जो 1974 के बाद के वर्षों में 20-25 जो साल थे उसमें ये लोग जो है यही तो थे सत्ता में। तो कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? तो इन सारे मुद्दों पे मुझे लगता है कि जब बात आएगी जेपी रिलेवेंट हो जाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट बनाने से जेपी के विचार नहीं आएंगे, हमको जेपी के विचारों को समझना होगा। एक और बात यहाँ मैं कहूंगा और उसके साथ साथ कंक्लूड करूंगा सर, परमिशन दिया जाए तो। जेपी वाज ठीक है, उन्होंने अलग अलग रास्ता तय किया, अलग अलग विचारधारा तय किया, लेकिन इस थर्ड लाइन है सोशलिज्म, ये सभी जानते हैं। बट सोशलिज्म पे उनका विचार तो था, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने वो मार्क्सिस्ट कहलाना पसंद करते थे, कम्युनिस्ट कहलाना उन्होंने, और ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा अगर आप लोग पढ़ें तो, कि नेवर लाइक टू बी कॉल्ड एज कम्युनिस्ट। व्हाई? क्योंकि उनको वहां पे शॉर्टकमिंग्स नजर आती। कंपटीशन जो पावर का होता है वो डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर सकता, ऐसा वो सोचते थे। और ऐसा ही वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में सोचते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया जो है, इंडिया अभी तक रेडी नहीं है, इस तरह की डेमोक्रेसी के लिए रेडी नहीं है। और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के इतर जो है यहाँ पे पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो कम्युनिटेरियन सामुदायिक लोकतंत्र की बात करते हैं, कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और ये बातें करते हुए वो इंडियन जाता है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आता है इंडियन और इंडियन, आई विल नॉट यूज द वर्ड नेशनलिज्म, बट इंडियननेस और सोशलिज्म में अगर कोई कॉन्ट्रास्ट आता है तो जेपी विल चूज इंडियननेस, वो भारतीयता को चुनेंगे दोनों के बीच में, और चुना है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये विचार भी ये विचार आना चाहिए कि आइडियोलॉजी कुछ भी हो, जिस सेटअप में आप रह रहे हैं, जिस सेटअप का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का आप पार्ट हैं, उसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा अगर कोई मतभेद आता है दोनों के बीच में। तो ये इन सारे मसलों पे मुझे लगता है कि जेपी रिलेवेंट हो जाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी रिपोर्ट थी 3.0 जो आपने सुन लिया और रिपोर्ट अच्छी रही। अब आप लोग एक मिनट सर, 1 मिनट सर, यू कैन हैव डिफरेंट नहीं सर बोल रहा हूँ सर, जैसे मार्क्सवाद से प्रभावित हो जो थे तो जेपी ने सर मार्क्स को और एंगल्स को ट्रस्टू भी पढ़ा था, लेकिन जो मार्क्स में जो आप उसी समय रूस की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, उसमें जो खूनी हिंसा हुई थी उसका विरोध किया था, और चाइना का सर तिब्बत के मामले पर उसका भी विरोध किए थे। इनका उनका मार्क्सवाद का समाजवाद ले लिया था, खासकर रैंड देव को उन्होंने पढ़ा था, तब उन्होंने जेपी का समाज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चंदन सबसे पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम, और साथ ही मैं बता दूं कि मैं राजनीति शास्त्र का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं अर्थशास्त्र में पीएचडी हूं। नहीं, आप तो डेली राजनीति शास्त्र पढ़ ही लिखते हैं लेकिन एक
को हमें समझना होगा। एक कॉन्फ्रेंस शोधार्थी के लिए सिर्फ इस चीज के लिए होता है कि अब जो भी आपका मतलब कार्यक्रम हो रहा है, आज जेपी साहब है तो मान लीजिए जेपी साहब के जो भी विचार है वो विचार हमारे समाज में कितना प्रासंगिकता हुआ और कितना लागू हुआ, हम सोच के रूप में उसे लागू करने की सोचे। आज 42 साल जेपी साहब के निधन का हो गया, लगभग 42 साल उनके निधन के बाद कभी आपने सोचा है कि क्या जेपी साहब की सच्ची श्रद्धांजलि जेपी के आंदोलनकर्ता को पेंशन देना होता है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। अगर जेपी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देनी हो, उनके मॉडल को एक्सेप्ट करना होता, तो शायद आज हमारे समाज में राइट टू रिकॉल लागू होता। सर हमारे सामने हैं, कई व्हाट्सएप ग्रुप से सर लोगों से मैं जुड़ा हूँ। सर सदैव देखते हैं कि मैं एक जीवंत पत्रकारिता करता हूँ, जितना ही करता हूँ लिखता हूँ, मेरा कोशिश है कि मैं अगर कोई भी काम करूँ, उस काम से अगर स्थान परिवर्तन ना हुआ तो ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है। आज पीएचडी का डबल एडमिशन है या ईडब्ल्यूएस की लड़ाई थी, कोई भी थी, जो मुद्दा मेरे संज्ञान में आया मैंने उस मुद्दे पे काम किया। आज एक टीचर से मेरी बात हो रही थी, विश्वविद्यालय के ही बीपीएससी बैच के टीचर हैं, उन्हें अपनी पीएचडी सबमिट कर दी है, तो उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि चंदन जी एक बात बताइए कि मुझे वो आइडिया नहीं था, आपने क्या किया? तो मैंने कहा सर मैंने ये किया। उन्होंने कहा कि देखिए थीसिस पे तो जो एक्सपर्ट को थीसिस जाएगी उस पे स्टूडेंट का नाम नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास कॉपी चेक करने के लिए आता है तो उस पे स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर नहीं होता है, तो थीसिस पर क्यों स्टूडेंट का, शोधार्थी का नाम और रोल नंबर एक्सपर्ट के पास जाएगा? मैंने कहा देखिए सर सॉरी मैं अभी कार्यक्रम में बिजी हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने मुझे ये मुद्दा दिया है तो मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा और ये मुझे लगा है कि नहीं उठना चाहिए। कभी-कभी कुलपति महोदय से कुलपति से भी साथ ही आपको धन्यवाद भी देना होगा और सभी प्रतिभागियों को एक बात और है कि जेपी इन प्रैक्टिस जो मुझे लगा कि थियरी और प्रैक्टिस दो बातें हो रही थी। अब उन्होंने कहा कि जेपी भी माइनस वायलेंस है, तो जेपी माइनस वायलेंस है, तो आप धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे और आपने देखा नाम थीसिस पर धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ठीक। अच्छा तो प्लीज करिए और थैंक यू। एक मिनट में कंप्लीट करता हूं। तो मेरा बस यही कहना है कि एक शोधार्थी के रूप में जब भी आप काम करें कोशिश करें। आप देखिए पूरा मतलब इंटरनेशनल सेमिनार है, आपके लिए सेमिनार हो रहा है, आप शोधार्थी की उपस्थिति देख लें, जिसके लिए सेमिनार हो रहा है वो लोग गायब हैं। तो मैं किसी भी चीज के फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा कहना है कि मैं इस चीज को भी जेपी से जोड़ के देखता हूँ। और मैं अंतिम लाइन ये कहना चाहता हूँ कि जेपी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन नेताओं ने क्रांतिकारियों को कब्जे में कर लिया। आज आपको सबसे पहले क्रांतिकारी और नेता के बीच के फर्क को समझना होगा कि क्रांतिकारी क्या है और नेता क्या है। कभी भी हम व्हाइट कॉलर में एसी में बैठ के रणनीति बनाने वाले लोग जेपी के चेले नहीं हो सकते, क्योंकि जो जेपी का चेला होगा वो धूप में खड़ा होगा, गर्मी में खड़ा होगा, किसानों के बीच खड़ा होगा, मजदूरों के बीच खड़ा होगा। लेकिन आज कितने लोग बात करते हैं, वो चाहे एक अनेमार में बैठ के काम करें या दिल्ली में अकबर रोड में बैठ के काम करें या किसी रोड में बैठ के काम करें, जब तक आप किसानों के बीच, भारत गरीबों का देश है, गाँवों का देश है, किसानों का देश है, जब तक आप गाँव से संपर्क नहीं डालेंगे जहाँ आपकी सबसे ज्यादा आबादी है, तब तक आप जेपी के बारे में, जेपी क्या, मैं किसी भी आंदोलनकर्ता के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में कहना चाहता हूँ कि बात नहीं करूंगा। वैसे भी आप ये जान लें कि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसको प्रैक्टिकल में लाना। आज मुझे एक छोटा सा 30 सेकंड में और लूंगा। एक सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा क्या कि आप अपना एक मॉडल बनाइए, मैं अमेरिका यूनिवर्सिटी को भेजता हूँ, हो सकेगा तो अगले साल आपको आउट ऑफ इंडिया जाने का मौका मिलेगा, वह मॉडल। तो मुझे बड़ी अजीब लगा, इस चीज की मुझे खुशी नहीं हुई कि वहां मुझे जाने का मौका मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी मिली कि उन्होंने कहा कि आप जो शोध कीजिएगा वो वहां पे मॉडल बनेगा। और हमारे यहाँ शोध क्या होता है, तो इस चीज को सबसे पहले जो भी काम कीजिए उस काम को जागृत कीजिए। कभी कभी हम लोगों का लहजा ऐसा होता है कि पत्रकार में कि अगले को मैं विश्लेषण करता हूं लेकिन उन्हें आलोचना लगता है। आलोचना मेरा कतई मकसद नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, बाकी मेरा कसूर ना था। अगर
भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए कब का वजीर हो जाता। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अरे दादा, तो ये देखो, अब एक काम रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ करना पड़ेगा, एकला चलो रे, तो सभी लोग निकल जाएंगे, मैं इनको बांध के रखा हूँ अब। लेकिन अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ही समाप्ति होगी, तो अध्यक्ष महोदय जो करना चाहते हैं कर ही सकते हैं। सर मेरे प्यारे डॉक्टर विनेश्वर यादव जी, जो मेरे छात्र भी रह चुके हैं, डॉक्टर एन.बी. वर्मा जी, वो तो मेरे छात्र नहीं रहे, लेकिन किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। इसलिए मैं उन दोनों को धन्यवाद देता हूँ। और आज जब मैं इतने छात्रों को अपने सामने देखता हूँ, तो मेरा कलेजा प्रसन्नता से भर जाता है। नौजवानों को मैं देख रहा हूँ, जो शिक्षक हैं उनको मैं देख रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर्स को देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और एक बार मैंने विजय शंकर चौधरी से भी कहा था कि जितने यंग रिक्रूट्स हैं जो आए हैं, जो अवेलेबल हो सकते हैं, मैं उन सबों को अपने रेजिडेंस पर वो एक कप ऑफ टी इनवाइट करना चाहता हूँ, ताकि मैं उनसे बातें करूँ। और उनको मैं ये भी कहता हूँ, ये भी मैं ऑफर देता हूँ, उन सबों को मेरे साथ मोबाइल पर फेसबुक से जुड़ना है। और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ यदि जुड़ेंगे तो हो सकता है मुझको भी बड़ी खुशी होगी और उनको भी कुछ फायदा हो सकता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन शायद कुछ फायदा भी हो, क्योंकि मैं फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो अब सवाल ये उठता है जेपी के बारे में। जेपी को मैंने बचपन में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। आपका जन्म समय नहीं हुआ होगा जब जेपी का आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था। बहुत जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन लोगों का जन्म जो है जेपी के आंदोलन के समय नहीं। और मैं जिस समय जेपी का आंदोलन हो रहा था, I was 31 years old and I had already become a lecturer at CM College दरभंगा। मैं CM College दरभंगा में लेक्चर हो चुका था, पूरा होशो हवास में। मैंने उस आंदोलन को देखा, उस आंदोलन के वो आंदोलन कितना पिक्चरस्क था, कितना इंटरेस्टिंग था, इसको मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने जेपी का जो स्वागत पटना में हुआ था, संजोग बस मैं भी पटने में ही था, और जेपी का जो स्वागत हो रहा था पटना की सड़कों पर, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और कहूं तो शायद अतिशयोक्ति न मानिए आप, उनका जो स्वागत हो रहा था, उनका जो रेस्पेक्ट हो रहा था, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लॉर्ड कृष्णा की तरह उनका रेस्पेक्ट हो रहा था। फूल मालाएं लोग हाउस टॉप से, फूल मालाएं रूफ टॉप से लोग उन पर फेंक रहे थे। इतना आदर, इतना सम्मान, इतनी श्रद्धा उस जेपी के प्रति मैंने देखी। इतना ही, जेपी ने जो लास्ट मीटिंग एड्रेस की है गांधी मैदान, जो अटेंडेड बाय लाख्स ऑफ पीपल, लाखों लोग उसमें सम्मिलित थे, उस मीटिंग में संजोग बस मैं भी था। 2.5 घंटे तक लगातार जेपी ने भाषण दिया, लगातार बिना, और इतना शानदार भाषण दिया था। भाषण का जैसे अंत हुआ, मूसलाधार वर्षा होने लगी, सबके सब भीग गए, मैं भी भीग गया। एल्फिंस्टन सिनेमा हॉल के बगल में जाकर मैंने शरण। जेपी ने क्या कहा? जेपी ने अपने भाषण में कहा कि मैं जब हिंदुस्तान लौट के आया था अमेरिका से पढ़कर, तो मैं घोर मार्क्सवादी था, और मार्क्सवाद यहाँ के लोगों को मैंने पढ़ाया था। मार्क्सवाद मैंने यहाँ के लोगों को पढ़ाया था, जो जेल में थे, जो प्रिजन में थे, उनको मैंने मार्क्सवाद पढ़ाया। और आज ये मुझको बिरला का दलाल देते हैं। मैं आज स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ, मेरा खर्चा कैसे चलता है। कोई बिरला नहीं मेरा खर्चा चलाता है। मैग्सेसे अवार्ड जो मुझको मिला है, उसके जो पैसे मुझको हैं, और मेरी खेती से जो पैसे आते हैं, उसका हिसाब दिया कि इतनी दाल आती है घर से, इतना चावल आता है घर से, ये सारा हिसाब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में किया, और बताया कि मेरा खर्चा तो इससे चलता है, क्या बिरला से चलता है। तो जिसको मैंने मार्क्सवाद सिखाया, वो मुझको कहता है कि मैं जो है वो बिरला का दलाल हो गया। 2.5 घंटे तक का वो भाषण जो है वो
वो हिस्टोरिकल स्पीच है, जिसमें पता चलता है उनकी जो पर्सनालिटी है उसका पता चलता है, उनकी जो वक्तृत्व शक्ति क्षमता है उसका पता चलता है। तो एक जेपी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, बहुत सारी जेपी को लोग कंफ्यूज मानते हैं। जैसे रजनी कोठारी, इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कहता है कि जेपी कंफ्यूज है। जेपी बहुत सी बातों में अपने स्टेंसेज को, अपने पोजीशंस को, एजम्पशंस को बदलते हैं। जब जेपी 7 बरस तक अमेरिका में रहने के बाद 1922 से 1929 तक अमेरिका में रहने के बाद जब भारत लौटते हैं तो वो मार्क्सवादी हो, और मार्क्सवाद में उनकी गहरी आस्था थी। लेकिन उन्होंने देखा, जैसे बी एस शंकर चौधरी ने इसका रेफरेंस किया, कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई वो बिल्कुल हिंसात्मक क्रांति थी, और किस तरह से लोगों को कुचला गया, लोगों की आवाज कुचली गई और लोगों को मारा गया। इस प्रकार की हिंसा से वो बिल्कुल चली। इतना ही नहीं, इसके आगे भी उन्होंने देखा कि जो सरकार बनी, लेनिन की सरकार बनी, स्टालिन की सरकार बनी, वो सरकार जो थी बिल्कुल टोटलिटैरियन। तो उस टोटलिटैरियन सरकार को जो उन्होंने देखा, उससे भी वो बहुत ज्यादा विचलित हुए और उनको इस पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। गांधी जी के संपर्क में जब आए तो जेपी जो है वो गांधीवादी। लोग यह सवाल उठाते हैं, क्या महात्मा गांधी, क्या जेपी मार्क्सवादी थे या गांधीवादी थे? गांधी जी के संपर्क में आने के बाद जेपी जो है बिल्कुल गांधीवादी बन जाते हैं, और फर्क गांधी से और दूसरे राजनीतिक चिंतकों से उस समय होता है जब गांधीवाद को समाज की ठोस समस्याओं के समाधान में लागू करते हैं। The difference appears when he applies the principles of Gandhism in the solution of the problems of Indian society. सवाल ये उठा कि भाई गांधी जी ने कहा, बहुत ऊंची बातें कही, लेकिन इन ऊंची बातों को हम कैसे भारतीय समाज में लाके और भारतीय समाज को बदल सकते हैं? यहाँ पर जो है वो फर्क हो जाता है। जेपी ने साफ शब्दों के कहा, जो मैंने कहा था इनॉग्रेशन सेशन के समय में कहूंगा, तो क्या प्रशांत रहेगा? हाँ, तो उन्होंने साफ कहा था कि मोरालिटी जो है वो मोरालिटी, मैंने ये वायलेंस का विरोध जो है वो मोरल कंसीडरेशन पर नहीं किया, मैंने वायलेंस का विरोध प्रैक्टिकल कंसीडरेशन कहा कि भाई कोई ऐसा समाज नहीं बन सकता है, हिंसा मुक्त समाज नहीं बन सकता है जहां हिंसा का सहारा है, और मुझको तो हिंसा मुक्त समाज। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो मार्क्सवादी थे कि गांधीवादी थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि उन्होंने समाज का क्या स्वरूप रखा, क्या अल्टरनेटिव स्कीम उनके पास था, इस पर विचार होना चाहिए कि क्या समाज का कोई रिकंस्ट्रक्शन चाहते हैं तो समाज का कैसा स्वरूप होने चाहिए। फिर टोटल रिवॉल्यूशन की बात आती है तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन सिंस लॉन्ग, लंबे समय से मैं टोटल रिवॉल्यूशन की बात सोचा, और मुझे आज तो मुझे याद नहीं है, मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुनीसा यादव जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और वो शायद इसका पता लगा सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस दिया, वह कन्वोकेशन एड्रेस मुझको पढ़ने के लिए मिला था, जेडी मिला ही नहीं, उसमें उन्होंने, और संभवतः वो ईयर में बता रहा हूँ 1966 या 67 का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत को यदि बदलना है तो यूथ पावर और स्टूडेंट पावर को पकड़ना होगा। ये 1966 और 67 में उन्होंने ये बात कही। तो टोटल रिवॉल्यूशन की बात जो उन्होंने की वो अचानक 1974 और 75 में आई, ऐसी बात नहीं है। टोटल रिवॉल्यूशन पर वो बहुत पहले से विचार करते हैं। अब ये भी सवाल उठता है जो जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, बहुत लोग कहते हैं भाई इसमें आखिर जेपी के विचारों में कोई इंटीग्रेटिंग लिंक है कि नहीं, कुछ जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात जो मैंने कही वो शायद बहुत बातें लोगों के दिमाग में नहीं आई क्योंकि मैं अंग्रेजी में बोल रहा था। एक सबसे बड़ी चीज, पूरे जयप्रकाश के राजनीतिक चिंतन पर यदि आप दृष्टिपात करें और गहन अध्ययन करें तो दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के कारण एबरेंस ऑफ वायलेंस, हिंसा से उनको नफरत, नंबर 1, और नंबर 2 जो उन्होंने कहा वो कहा कि एक टोटल रिवॉल्यूशन की बात उन्होंने कही।
तो ये जो बात उन्होंने कही, ये पूरे उनके राजनीतिक चिंतन को ये बात जोड़ती है। यही यूनाइटिंग लिंक, ऐसा नहीं कहा जा सकता जेपी ने आज कुछ कह दिया और कल कुछ कह दिया है। उसको जोड़ने वाली एक कड़ी है, तो जोड़ने वाली कड़ी का रिसर्च स्कॉलर्स को पता लगाना चाहिए। और मैं अभी हाल में पढ़ रहा था तो मुझको लगा कि नहीं, इस पर बहुत गंभीर रूप से सोचने और शोध करने की आवश्यकता है। इसीलिए मेरी अपील है नौजवान छात्रों से, नौजवान रिसर्च स्कॉलर से, नौजवान प्रोफेसर से कि जरा उस पर गहन अध्ययन करें और देखें कि वो कहां तक आजकल के लिए वो प्रासंगिक है। उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात कि एक ऐसा समाज बने जिसमें पार्टीलेस डेमोक्रेसी, उन्होंने स्वयं पार्टी बनाई थी 1952 में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की उन्होंने स्थापना की। लेकिन 1952 के जो इलेक्शंस हुए, ये आपको जानना चाहिए कि 1952 के इलेक्शंस में उस पार्टी ने प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरह और जयप्रकाश नारायण बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उनका यह पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट फेल कर गया और उसने उनको विवश किया कि अब इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनाने से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तब से लोग सवाल उठाते हैं कि कभी भाई पार्टी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कभी पार्टीलेस की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों लोग इनके विचार को जोड़ने वाली कोई कड़ी है? मैं तो कहता हूँ कि उनके विचारों को जोड़ने वाली कड़ी है, और उस जोड़ने वाली कड़ी को खोजना का दायित्व है। धन्यवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि आपका बहुत सुंदर और उज्ज्वल आप धन्यवाद का कार्यक्रम में मैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद देता हूँ। और मुझे लगता है कि एक बात सर ने जो बताई, जिस तरह से बिजली की तार है और कई कलर है, लेकिन उसके अंदर एक तांबे की तार है और प्लास्टिक ऊपर से कलरफुल है। मुझे लगता है कि जेपी की विचारधारा ठीक उसी तरह से प्रभावित और प्रवाहित होती रही है। मुझे लगता है उसमें जो डायनामिज्म है उसको समझने की जरूरत है, उसकी जो डायनामिक्स है उसको समझने की जरूरत है, उसकी जो गतिशीलता है उसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे कुछ नहीं कहना है, आपने मुझे झेला, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।